that's how this festival becomes momentous. अनुवाद विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच विचारों और सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान को के रूप में कार्य कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। Joining us also on stage is श्री हरीश जैन, भारतीय संसद में संपादक के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व आप कई मंत्रालयों में कार्य कर चुके हैं। आपको अनुवाद अध्ययन के व्यावहारिक और शैक्षणिक पहलुओं का गहन अनुभव है। He has translated more than 24 books of well-known publishers and authors. और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री J.L. रेड्डी जी को कि वे मंच पर हमारे बीच उपस्थित हों। A former associate professor of Hindi at Dayal Singh College, University of Delhi, Dr. J.L. Reddy is engaged in translation from Hindi to Telugu and vice versa. His more than 30 books have been published by Sahitya Academy, National Book Trust, Bharatiya Gyanpith and other leading publishers. आप साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सौहार्द सम्मान आदि से सम्मानित हैं। प्रकाश भातम्ब्रेकर जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि मंच पर हमारे बीच आएं। इनका नाम अनुवाद के क्षेत्र में सुपरिचित है। आप साहित्य अकादमी के क्षेत्रीय सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए और विगत 50 वर्षों से हिंदी एवं मराठी में परस्पर अनुवाद कार्य कर रहे हैं। अब तक आपने उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह और निबंध सहित 55 से अधिक पुस्तकों का अनुवाद किया है। जॉइनिंग अस ऑल्सो ऑन दिस पैनल इज रूमी लश्कर बोरा जी, an eminent Assamese fiction writer, poet and translator. She is a social activist also, has more than 2,000 books to her credit apart from translated works. Her books have been translated into other Indian languages also. आपको असम साहित्य सभा द्वारा विष्णु रामा पुरस्कार, माया मीडिया पुरस्कार तथा अन्य अनेक ऐसे सम्मानों से पुरस्कृत किया गया है। श्रीमती S. Shesharatnam is also on this panel. I request her to kindly join us on stage. एक प्रसिद्ध हिंदी आलोचक और अनुवादक हैं। आप आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम के हिंदी विभाग की प्रोफेसर हैं। आपकी 11 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और she has translated 9 books from Telugu into Hindi and 4 from Hindi into Telugu. She is a recipient of Sahitya Academy Award, Shubhadra Kumari Chauhan Puraskar, and so many others. And also, last but not the least, we have
Shrimati Shobhana Kumarji joining us on this panel, an award-winning poet, translator, and non-fiction writer. Her book of Highburn, A Sky Full of Bucket Lists, won the Rabindranath Tagore Literary Prize and the Touchstone Distinguished Books Award. Her poem, Just Married, was translated by Gulzar in A Poem a Day. तो ये हमारे पैनलिस्ट हमारे बीच सभी उपस्थित हो चुके हैं। बिना किसी विलंब के मैं निवेदन करती हूँ अध्यक्ष श्री भल्ला जी से कि वे कार्यक्रम का आरंभ करें। धन्यवाद। Thank you. Since we are starting late, we will still give every speaker the same amount of time, and so we will stop only at 1 o'clock. Every speaker will have 1.5 hours. It's 10:30 now. So 12:31. Oh, sorry, what time? 12, sorry. I can't add and subtract. That's why I have a degree called BSc Physics Honors. And I almost failed, which I should have. So every speaker will have 10 minutes, including myself, I presume. But I will not hopefully take that much time. I just want to make 2 or 3 propositions, and that's about it. One, I want to say that the Indian subcontinent is a translating culture, and it always has been. That's its civilizational strength. And historically, for us, translations were never sites of annihilating contestations, and they ought not to be. I say this because my experience of attending a variety of translation seminars is that they almost always turn out to be about people telling how awful the other translations are. And I really want to say that we need to change in certain ways that I want to suggest. And one should acknowledge, therefore, that troubled times and help us find consolations. And each new translation of an intellectually significant work, and I'm not bothered about bad works which are translated endlessly, but significant works in every age are a part of a series of transformating dialogues
estimate and the personal estimate. While the historical may often offer important insights, the personal may delight our emotional longings. It is only the real that will open what Chapman's translation of Homer did for Keats, that is, magical casements. Now, to avoid, and I have only 2-3 more minutes, to avoid stepping on the sensitivities of any Indian languages, I've selected as my examples of touchstones recommended by Arnold, lines from three of the best-known translations of Homer's Iliad. And I will take only a few sentences to illustrate it from different translations as to why it could be a touchstone against which we need to judge. The first one is, of course, from Alexander Pope, who translated the Iliad in 1715 and 1720 when he was 25 years old. And when it was published, Dr. Johnson said that it is certainly the noblest version of poetry that the world has ever seen. So let me just read you a version of one section, which I love, from Pope's translation of Iliad. And this section is when, for the first time, Helen appears on the scene. And she is walking towards the battlement to see what is happening on the battlefield. And there are old senators who are watching her walk by. And this is what happens. Chiefs who no more in the bloody fights engage, but wise through time and narrative with age, in summer days like grasshoppers rejoice, a bloodless race that sends a feeble voice. These, when the Spartan queen approached the tower, in secret owned resistless beauty's power, they cried, "No wonder such celestial charms for 9 long years have set the world in arms. What winning graces, what majestic mien. She moves like a goddess, and she looks like a queen. Yet hence, O heavens, convey that fatal face, have suffered years of agony, all for her, for such a woman. Beauty, terrible beauty, a deathless goddess, so she strikes our eyes. But still, ravishing as she is, let her go home in the long ships.
and not to be left behind. For us and our children, an irresistible sorrow. So I just want to say, if these are the texts, they deserve intricate critical analyses. And I might add, each one of them have inspired great painters and great poets, John Flaxman in the 18th century and Cy Tuboin in the 20th century. So given this, let me just stop by saying, quoting a line from Dryden, who was another great translator of Homer, and this is a line from his elegy on the death of his friend, Henry Purcell. And all the way they taught, and all the way they sung. And I think that's what translators or great translators ought to be doing. And our task as critics of translation ought to be to make intelligent judgments of each of them, for each has something to offer which is new and unique, including, of course, our painters and our musicians, who also translate texts and change, therefore, from being censorious to being questers after knowledge. Thank you. Next one. So let me invite, let me just invite Beena Biswas to speak. I'm afraid I will have to insist on about 10 minutes. We really have time, no problems. Thank you. Come. Honorable Chair, Dr. Bhalla, my dear fellow panelists, audience, a very good morning to you all. Now today I'll open my talk on the multilingual translation in a multicultural society in the context of India's multicultural tapestry. I won't quote much from text because I am a multilingual translator myself and I have worked on many languages, still working. So in the diverse multilingual landscape of India, the practice of translation serves as a crucial linchpin, connecting different linguistic communities and fostering a sense of unity. As we go deeper into the historical roots of translation, I did a little bit of Googling and found out that Epic of Gilgamesh was the first ever text in the Mesopotamian civilization to be translated from Sumerian to Akkadian. So there was a need. And then closer home, India's rich tradition includes translating sacred texts like the Vedas, Upanishads into various regional languages. And I again Googled and found that during Akbar's reign, Vedas and Upanishads were translated into Persian in 17th century. Moving to the contemporary context, with India embracing 22 officially recognized languages and more than 120 dialects, the need for translation extends beyond mere linguistic utility. It becomes a cultural imperative, influencing crucial sectors such as education, governance, business, and healthcare, ensuring inclusivity and equitable access to opportunities. The increasing global interconnectedness further emphasizes the necessity of translation. Now I will quote from my experience here that I have translated Modi's Man Ki Baat into various modern Indian languages for SAGE. So there I faced a lot of difficulties, though I hired translators from different states, but this part was looked after because it's a challenge. Translating into Odia, translating into Telugu, Tamil, all that, but I did it.
Now, I have translated, my first translation was Michael Madhusudan Dutt's Meghnad Badh Kabbo, followed by Life of Aroj by Dr. Masoom Raza from Bangladesh. And this was published by Bloomsbury, UK, Methuen Drama. Why I am quoting this? Because this is, for me, is a very, very important translation that I did, because it was full of dialects from interior Bengal, very difficult to translate. So, and presently I am working on on a translation from Rajbongshi Bhasha to English. Rajbongshi Bhasha is a dialect from Coach Bihar, and that I am doing for Rupa Publications. And also there is a lot of challenges there also. So celebrating these literary triumphs, we must acknowledge the challenges confronted by the translators. The task involves not just linguistic proficiency, but also a deep understanding of the cultural nuances and context embedded in each one. I am working on a book by Dr. Indira Das, My City Shuru Theke Fera. It's a very, very good, well-written book in Bangla, but again, I'm sweating on it because same interior Bengal Bhasha has been used, and it's very difficult, like gubgubiye hashi pacche, means there is some rumbling sound in my stomach, and how do I present it in English? English reader will find it very laughable, like what is this rumbling sound in stomach? And then running with his speed. So these smaller nuances, if we omit, then the original text suffers, and if we include it, then the reader will laugh. So there is a dilemma. So we have to get over it. Dialectical variations within languages add another layer of complexity, as I said, requiring delicate navigation to preserve the authenticity of the narrative. Best is if you can take help from the author himself, if the author is still there. As we conclude this exploration, the transformative power of translation emerges as a key theme. It is not only a tool for unlocking knowledge, but it serves as a bridge that unites India's diverse linguistic and cultural heritage. Empowering translators becomes synonymous with empowering the guardians of our collective intellectual wealth. Drawing inspiration from the literary giants like Tagore, we recognize that translation is not just a necessity, but a celebration of our shared human experience. Again, I'll quote from William Radich's translation of Tagore's short stories. And long back, I happened to attend one of his seminars where I asked him that how come you have left out, like बच्चों को माँ खिलाती है जैसे हाथ से उठा के, वो कैसे छोड़ दिया आपने? कहते nobody will understand. It's cultural essence. Like we feed our child India में या Asian societies में हाथ से बच्चों को खिलाते हैं. It's a part of our culture, but then nobody will understand, so he skipped it. So that is unfair. Now, like in this present global situation, these omissions should not happen. Now we have more than 120 languages. Efficient multilingual translation is crucial for administrative, educational, and cultural exchanges, ensuring no linguistic group is left behind. The challenges include accurately translating idioms, cultural nuances, and regional dialects essential for conveying the intended message. Socio-economic disparities among linguistic communities further demand accessible translation across various domains. And by translation, I don't mean only from the source language to English. It could be from Uriya to Bengali, Uriya to Hindi, Hindi to Uriya also. So in conclusion, while multilingual translation is a necessity for a harmonious society like India, overcoming challenges requires a comprehensive approach. This involves technological innovations and deep understanding of cultural and linguistic intricacies. To ensure the effective communication,
and inclusivity. The exemplary translations in India, ranging from Tagore, literary works, to the translation of Constitution by Dr. B.R. Ambedkar, serve as inspirations for breaking down linguistic barriers and fostering a shared cultural identity. The journey of multilingual translation is not just a linguistic endeavor, it is a testament to the strength of unity in diversity, where words become bridges connecting hearts across the vast linguistic mosaic of India. Thank you. Thank you very much for being well within time. You could have actually spoken for 2 more minutes. Thank you. May I invite Harish Jain, please, to come and speak. अध्यक्ष महोदय, परम स्नेही गुरुवर रंजीत साहब और मंचासीन विद्वज्जनों और सभा में उपस्थित श्रोतागण, साहित्य अकादमी के साहित्योत्सव प्रोग्राम के अंदर मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड ट्रांसलेशन, इसके बारे में एक सेशन होना अपने आप में ही एक इंडिया की जो रिच डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, उसकी इम्पोर्टेंस को अपने आप ही ये उजागर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस विषय पर बात करते हुए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, टावर ऑफ बेबल। बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कि भारत या विश्व की किस तरीके से मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल हुआ, उसकी एक आधार है। जैसे बाइबल के अंदर एक टावर ऑफ बेबल की कहानी है, उसके अंदर एक किस्सा होता है कि इंसान शुरुआत में बहुत एकता से रहता था, एकजुट होकर रहता था, बहुत यूनाइटेड था। तो इंसान ने, जैसे कि अभी सर ने भी बताया था, कि सुमेरियाई सभ्यता के अंदर मनुष्य ने यह सोचा कि हम एक इतनी ऊंची मीनार बनाएंगे कि हम ईश्वर तक, गॉड तक पहुंच सके। और धीरे धीरे मनुष्य अपने कोऑर्डिनेशन से, अपनी लगन से, अपनी एकजुटता से बड़ी ऊंची मीनार बनाता बनाता चला गया। एक दिन ईश्वर या गॉड को ये एहसास हुआ कि अगर ये सब लोग इतनी ऊंची मीनार बना लेंगे, उतना आसमान तक ऊंची बना लेंगे, ये हाइपोथेटिकल है कि इतनी ऊंची बना लेंगे तो ये सब लोग मेरे तक आ जाएंगे और ईश्वर की सत्ता को चुनौती देंगे। मीन्स ईश्वर तो एक ही है, गॉड एक ही है, तो उसको चुनौती देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि इस बिल्डिंग, ये जो ऊंची मीनार है, इसका काम रोकने के लिए उन्होंने एक जादू, एक मैजिक कर दिया कि सबकी भाषाओं को अलग कर दिया। सबकी भाषाओं को अलग कर दिया तो सभी का कम्युनिकेशन टूट गया, सभी का कम्युनिकेशन आपस में कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। तो इसी तरीके से ये कहा जाता है कि मनुष्य सभ्यता के अंदर, पृथ्वी के अंदर, ये मल्टीकल्चरलिज्म की, मल्टीलिंगुअलिज्म की शुरुआत इस तरीके से हुई कि जैसे ही कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ तो वो बिल्डिंग बनना खत्म हो गई। तो अब भारत के सेंस में बात करेंगे कि भारत की मल्टीलिंगुअलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म की फाउंडेशंस कैसी हैं। आप शुरुआत में देखेंगे हम कि एंशिएंट पीरियड के अंदर देखेंगे संस्कृत मीन्स किस तरीके से हमारे पास बहुत सारी भाषाओं का समृद्ध खजाना रहा है। अलग अलग देश काल स्थितियों के अंदर किस तरीके से भाषाएं अपना अपना योगदान देती रहीं। संस्कृत सबसे पहले प्राचीन काल में, एंशिएंट पीरियड में, एक लिंग्वा फ्रैंका, हमारी बोलचाल की भाषा होती थी। इसी तरीके से कुछ वेद और उपनिषदों की भी भाषा संस्कृत थी। बाद में आते मिडिवल पीरियड के अंदर रीजनल लैंग्वेज का उदय हुआ, बहुत सारी प्रादेशिक क्षेत्रीय भाषाओं का उदय हुआ, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी। मुगल एम्पायर के अंदर आते आते भारत की ज्योग्राफी पर फारसी भाषा का उदय हुआ और धीरे धीरे आते आते ब्रिटिश काल जब आया, ब्रिटिश काल के अंदर इंग्लिश एक लैंग्वेज ऑफ हेजेमनी, लैंग्वेज ऑफ पावर, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बन गई। इसके बाद
पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भारत सरकार ने बहुत सारी लैंग्वेज पॉलिसीज़ बनाई, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिसमें से साहित्य अकेडमी और नेशनल बुक ट्रस्ट और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है। और इसी के साथ साथ एक लैंग्वेज मूवमेंट्स भी बहुत सारे हमने भारत की भूमि पर देखे हैं। मॉडर्न आधुनिक युग की अगर मैं बात करूं, या डिजिटल एज की बात करूं, या अर्बनाइजेशन की एज की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर इंग्लिश एक एज अ इफेक्टिव टूल बनकर अभी भी सामने उभरी है। इसके अंदर अनुवाद की, भारत के समाज को जोड़ने के लिए अनुवाद की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो जिस तरीके से टावर ऑफ बेबल की कहानी में ईश्वर ने जादू करके वो सबकी भाषाएं चेंज कर दी थी, अब आधुनिक समय के अंदर जो एआई है, जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब क्या है कि कान पर हमने एयरपोर्ट लगाया और साथ के साथ ट्रांसलेशन शुरू हो गया। भारत सरकार ने भी एक भाषिनी और अनुवादिनी ये सब ऐप वगैरह लॉन्च किए हैं, तो उसके अंदर भी रियल टाइम ट्रांसलेशन हमारा हो रहा है। एक तरह से ये भाषाओं का बैरियर फिर दोबारा से एक ट्रांसलेशन के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से ये टूटने जा रहा है, टूटने लगा है। ठीक है, तो इसके बाद एक केस स्टडी इंडिया की, कि किस तरीके से इंडिया बहुभाषिक होते हुए भी, बहुसांस्कृतिक होते हुए भी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को, प्रादेशिक भाषाओं पर भी जोर देता है या प्रमुख आग्रह देता है। कर्नाटक की अगर हम बात करें कि वहां पर पूरा कन्नड़ डोमिनेंस है, कि कन्नड़ वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और वहाँ की स्टेट की, मतलब की अस्मिता की पहचान कन्नड़ भाषा को माना जाता है। लेकिन जैसे कि अर्बन सेंटर्स हो गए, बेंगलोर और जितने भी सिटीज़ हो गई वहाँ की, तो वहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, इन सभी का मिक्स यूसेज हमें देखने को मिलता है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसी तरीके से महाराष्ट्र में अगर देखें तो मराठी भाषा का एक अपना ही वर्चस्व है। तो वहाँ पर भी मुंबई जैसे शहरों के अंदर वही हमें ताना बाना भाषाओं का देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल में भी बांग्ला भाषा का डोमिनेंस है, और लेकिन कलकत्ता जैसे शहरों में इंग्लिश, हिंदी और मल्टीलिंगुअल मीन्स भाषाओं का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है कम्युनिकेशन के सेंस के लिए, या आपसी बातचीत के लिए, व्यापार के लिए, हर तरीके से हमें यूज़ करना पड़ता है। इसी तरीके से तमिलनाडु भी एक वहाँ पर तमिल भाषा है, और उसी के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी और मलयालम अर्बन सेंटर्स में जितना भी है तो वो यूज़ होता है। इसके अंदर अब हम बात करेंगे कि ट्रांसलेशन किस तरीके से एक ब्रिज का काम करती है। ब्रिज कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच में एक सेतु का काम करती है। सेतु सबसे पहले इसके अंदर भूमिका आती है ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर क्या है? एक तरह से इस सेतु को बनाने वाला एक व्यक्ति है या एक टूल है। वो क्या करता है? ट्रांसलेशन हमें कल्चर्स के अंदर, डिफरेंट लिटरेचर्स के अंदर वो इस्टेब्लिश करता है ट्रांसलेशन करके। जैसे आलोक भल्ला सर की बहुत सारी बुक्स हैं, पार्टीशन पर सर ने लिखा हुआ है, और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको वो ट्रांसलेशन जब करते हैं तो वो एक सभ्यता की नॉलेज को दूसरी सभ्यता तक पहुंचाते हैं। और उसके अंदर जो मैम बिस्वाल मैम ने भी बताया कि ट्रांसलेशन करते हुए हमें बहुत सारी कल्चरल नुएंसेस को, हमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ट्रांसलेटर्स को फेस करना पड़ता है, जो कि एक ट्रांसलेशन के टास्क को बहुत कठिन काम बनाती है। अब ट्रांसलेशन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम ट्रांसलेशन मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल सोसाइटी के अंदर कल्चरल एक्सचेंज का, ग्लोबल कोलैबोरेशंस का, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और एजुकेशन का, ग्लोबलाइजेशन का एक टूल है। और इंक्लूसिव कम्युनिकेशन की आजकल बात चलती है कि इंक्लूसिव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कैसे होगा मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में। ट्रांसलेशन के थ्रू ही वो हमारा होगा। मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया भी अनुवाद के माध्यम से बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा मैं विषय बात करूंगा कि किस तरीके से बिजनेस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेसिकली
इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है किस तरीके से ट्रांसलेशन के थ्रू वो बहुत मजबूत हो रहा है। जैसे बहुत सारी भारत सरकार ने स्कीम्स बनाई हुई है, साहित्य अकेडमी ने, नेशनल बुक ट्रस्ट ने और भारत सरकार भी अलग अलग भाषाओं के अंदर विदेशी साहित्य का अनुवाद करवा रही है और भारतीय साहित्य का विदेशी भाषाओं के अंदर अनुवाद करवा रही है। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी बात है, वसुधैव कुटुंबकम में भी हम अनुवाद के बिना काम नहीं चला सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम जो भारत की प्राचीन अवधारणा है, हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल से अकबर के ज़माने से मैम ने बताया, तो अकबर के ज़माने में मकतब खाना एक उनका ट्रांसलेशन का हाउस होता था कि वहाँ पर जितने भी भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं उनका ट्रांसलेशन होता था। एशियाटिक सोसाइटी, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये सब क्या था? ये एक तरह से भारत की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी या उसके मल्टीकल्चरलिज्म था, उसको एक तरह से गैप उसको फिल करने के लिए सब संस्थाओं का निर्माण किया गया था। तो आज के समय में बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद और अनुवाद के उपक्रमों की बहुत बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। Thank you very much for, I don't relish the idea of being a timekeeper, so it's nice. I would like to make a suggestion here. Change the metaphor of Babel to the notion of a democracy of languages. I think we need to do that. And this festival of being organized by the Sahitya Academy is a very good example of that. This is the only seminar I know or a festival I know in India which invites writers, not designers or designed writers, but writers from all the languages across the country. And I think we need to seriously think about that. So thank you very much. But I think we need to give up the Judge Steiner's notion of a Babel and think a little differently, but thank you very much. I didn't mean to, that's just a suggestion, a critical suggestion. May I now invite Mr. Reddy for... अध्यक्ष महोदय आलोक भल्ला जी, बिनार श्रीवास्तव जी, हरीश जैन जी, प्रकाश बांतेकर जी, यशादत्तम जी, उपस्थित साहा साहब और चौधरी साहब और जवान भाई बहनों, अब 25 मिनट रह गए हैं और 5 वक्ता हैं तो भूमिका बांधे बगैर सीधे अपनी बात पे आता हूँ। अपनी बातें अनुवाद के महत्व की बातें बहुत होती हैं, अनुवाद के महत्व की भी बातें बहुत होती हैं। उन सब चीज़ों को छोड़ करके मैं एक समस्या की तरफ आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो समस्या हमारे लिए पेक्यूलियर समस्या ये है कि दक्षिण भारत के जो हिंदी अनुवादक हैं तो उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसकी तरफ बहुत लोगों का ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। हम उस क्षेत्र में काम करते हुए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो उस समस्या की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिससे कि उसके लिए कुछ समाधान निकाला जा सके। का उसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। जब से मैं अनुवाद कर रहा हूं तेलुगु हिंदी में, तब से ही मैं इस समस्या की तरफ जो है ध्यान दिलाना चाहता हूं। तो अब तेलुगु में एक कहावत है, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ उसको खाना नहीं देती। तो क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए कि बच्चे को भूख लगी है तभी तो माँ खाना देती, इसलिए बच्चे का रोना ज़रूरी है। तो इसी तरह से हम जो जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो उन समस्याओं की तरफ आप लोगों का ध्यान दिलाना ज़रूरी। अब मैं सीधी बात पे आता हूँ, बाकी भूमिका छोड़ देता हूँ। असंख्य तेलुगु भाषियों के लिए कई दशकों से हिंदी अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति का साधन बनी हुई है, तो मुख्य रूप से अनुवादों के माध्यम से। हम लोग अनुवाद के क्षेत्र में ही थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, इसके अलावा और किसी क्षेत्र में हमारी गति नहीं। जिन लोगों ने तेलुगु में भी कोई रचना नहीं की है
वे लोग भी तेलुगु से हिंदी में और हिंदी से तेलुगु में अनुवाद करके अपनी रचनात्मक तृषा बुझाते आए हैं। इस क्रम में दोनों भाषाओं में परस्पर अनुवाद बहुत हुआ है। तो देता हूं भारतीय तथा अनेक विदेशी भाषाओं का प्रचुर रचनात्मक साहित्य अनुदित होकर हिंदी में आ रहा है। ऐसी रचनाओं की एक बाढ़ सी आती हुई दिखाई देती है हिंदी में। इस बाढ़ में तेलुगु से आई रचनाएं शायद अपना स्थान नहीं बना पाई। कोई कारण की बात करें, जब हम हिंदी और तेलुगु के परस्पर अनुवाद की आदान प्रदान की बात करते हैं तो हिंदी से तेलुगु को आदान तो बहुत दिखाई देता है और तेलुगु साहित्य में हिंदी साहित्य की उपस्थिति स्पष्ट लक्षित होती है, लेकिन तेलुगु से हिंदी को प्रदान अधिक दिखाई नहीं पड़ता, जबकि जैसा कि पहले कहा जा चुका है तेलुगु से हिंदी में अनुवाद बहुत हुआ है। असल में हिंदी में अनुवाद ही हिंदी शिक्षित अनेक तेलुगु भाषियों की सर्वाधिक प्रचलित साहित्यिक गतिविधि है। इतना होने पर भी हिंदी में तेलुगु साहित्य की उपस्थिति आश्वस्त नहीं करती। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है उन अनुवादों में गुणवत्ता की कमी और रचनाओं के चयन में असावधानी। मेरे विचार से लगभग यही स्थिति, केवल तेलुगु की बात तो मैं जानता हूं, और लेकिन ये स्थिति लगभग अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं के संबंध में भी है। दक्षिण भारतीय भाषा भाषियों को हिंदी साहित्य का जितना ज्ञान है उतना हिंदी भाषा भाषियों को दक्षिण भारतीय भाषाओं के साहित्य का ज्ञान नहीं है। यह बहुत बड़ी कमी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होने से यह कमी और भी खलती है। यह कमी देश के शिक्षाविद अनुभव कर रहे हैं और उसे दूर करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में हिंदी पाठ्यक्रम में हिंदी भारतीय भाषाओं के साहित्य को स्थान दिया जा रहा है। अनुवादक, मैं और भी छोड़ देता हूं, समय बिल्कुल नहीं है। अनुवादक दो भाषाओं के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करता है और दो समाजों के बीच भावात्मक एकता स्थापित करता है। विश्व साहित्य के विकास में सदा से ही उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने अनेक भाषाभाषी समाजों को प्रेरित और पुनरुज्जीवित किया है। मैक्स मुलर ने जिस तरह कहा है कि जो व्यक्ति केवल एक ही धर्म को जानता है वह किसी धर्म को नहीं जानता, उसी तरह गेटे ने कहा है कि जो व्यक्ति केवल एक ही भाषा जानता है वह किसी भाषा को नहीं जानता। तो इस दृष्टि से भी अनुवादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उत्कृष्ट अनुवाद सृजनात्मक लेखन की कोटि तक पहुंच जाता है और महत्व की दृष्टि से मौलिक रचना के बाद दूसरा स्थान उसी का होता है। वैसे रचना का पूरा स्वाद तो मूल में ही संभव है। अनुवाद में वह प्रायः अपनी कांति खो देती है। जैसा कि किसी ने कहा है, मूल रचना यदि धारोष्ण दुग्ध है तो अनुदित रचना सपरेटा दही या मट्ठा है। मूल और अनुवाद के आस्वाद में कितना अंतर होता है इसका अनुमान श्री विष्णु प्रभाकर के इस कथन से लगाया जा सकता है। उन्होंने एक जगह लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने, आवारा मसीहा पर काम आरंभ करने से पहले बांग्ला सीखकर मैंने शरद की रचनाएं मूल बांग्ला में पढ़ी। वहां जिस शरद से मेरा साक्षात्कार हुआ वह वे नहीं थे जिनको मैं पहले जानता था, वे तो एकदम नए शरद थे। ऐसी स्थिति में अनुवादक का दायित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि अनुवाद की गुणवत्ता रचना का प्राण हुआ करती है। अनुवादक को कितने प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसकी जानकारी अधिक लोगों को नहीं है। जो कहते हैं ना, जिसकी न पटी बुवाई वो क्या जाने पीर पढ़ाई वाली बात है। जो अनुवाद करता है उसी को मालूम है, बाकी लोगों को तो मालूम नहीं है। कि अनुवाद सोचते हैं बहुत आसान काम होता है, जो लिखा होगा तो उसको अपनी भाषा में लिख कर दो। चूंकि शब्द अपनी भाषा के सांस्कृतिक संभार को वहन करते हैं, इसलिए साहित्य का अनुवाद संस्कृति के अनुवाद के समान होता है, जो निश्चय ही सरल नहीं।
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जिन तेलुगु भाषियों ने हिंदी को अपनी जीविका और अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है, उनमें से अधिकांश लोगों की साहित्यिक क्रियाशीलता अनुवाद तक ही सीमित है। लेकिन अनुवाद के क्षेत्र में भी गतिरोध से बच पाना उनके लिए संभव नहीं है। बहुत बड़ा गतिरोध है, क्योंकि सीखी हुई भाषा में सशक्त अनुवाद करना भी सरल नहीं होता। अनुवाद पुनर्सृजन है और अनुवादक को लक्ष्य भाषा की प्रकृति, मुहावरा और उसके साहित्यिक संस्कार से घनिष्ठ संबंध परिचय होना चाहिए, नहीं तो वह शाब्दिक अनुवाद तक सीमित रहता है और कभी कभी तो उसके भी लाले पड़ जाते हैं। मूल कृति के सौंदर्य का प्रतिस्थापन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। इन कारणों से तेलुगु से हिंदी में अनुवाद करने वालों को अपनी कृति को हिंदी का सहज संस्कार देकर उसे जीवंत रूप में प्रस्तुत करने में बहुत कठिनाई आती है। अनुवादक के दायित्व और उसके भाषा सामर्थ्य के विषय में तेलुगु के अनुवाद चिंतक रामचंद्र रेड्डी ने लिखा है, अपेक्षा की जानी चाहिए कि अनुवादक अपनी भाषा में लगभग निष्णात हो, समस्त भाषा सामर्थ्य का उसे बोध हो और भाषा के चमत्कार तथा उसके चित्र विचित्र प्रयोग उसकी जिह्वा पर रचे बसे हों। वह उस भाषा का सृजनशील लेखक हो तो और भी अच्छा। आप कहेंगे कि ये सब तो शेख चिल्ली के सपने हैं। शेख चिल्ली के सपने भले ही हों, अनुवादक जब इन कसौटियों पर खरा उतरेगा तभी वह सफल अनुवादक हो सकेगा। श्री रामचंद्र रेड्डी की इन अपेक्षाओं को हमारे कितने अनुवादक पूरा कर सकते हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। इसीलिए बच्चन जी ने एक जगह लिखा है, मैं उन्हीं लोगों को अपनी रचनाओं का अनुवाद करने की अनुमति देता हूं जो अपनी मातृभाषा में अनुवाद करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता ओल्हन पामुक कहते हैं, यदि मेरे पाठक दुनिया के अनेक देशों में हैं तो अनुवाद के कारण ही। मैं दुनिया भर के पाठकों के लिए लिखता हूं। मैं अपने अनुवादकों के साथ लगकर काम करता हूं। वे हमेशा सही नहीं होते, इसीलिए एक बार मैं अपने जर्मन अनुवादक पर चीख पड़ा था। चीख कर मैंने कहा था, मैं जो लिखता हूं उसका अनुवाद मत करो, उसका अनुवाद करो जो मैं कहना चाहता हूं। और बताइए, जो लिखा है कहते मैं जो लिखता हूं उसका अनुवाद मत करो, उसका अनुवाद करो जो मैं कहना चाहता हूं। तो मतलब जो लिखा है उसके माध्यम से जो कहना चाहते हैं तो वहां तक पहुंचना पड़ता है अनुवादक को। तो कितना कठिन काम होता है ये। वैसे भी अनुवाद अपनी भाषा में होना चाहिए। संसार में ही होता है, हमेशा अपनी भाषा में अनुवाद पड़ता है कि हम लोग उल्टी गंगा बहा रहे हैं। वैसे भी अनुवाद अपनी भाषा में होना चाहिए और संसार में अधिकांशतः ऐसा ही होता है, क्योंकि साहित्य में क्या बात कही जा रही है उससे अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि वह बात कैसे कही जा रही है। अनुवाद भी हाँ ठीक है। हाँ, इसीलिए बच्चन जी का अपने अनुवादक के संबंध में वह आग्रह असंगत नहीं लगता। बच्चन जी भाग्यशाली थे, उनकी शर्त निभ गई। लेकिन यदि तेलुगु के या दक्षिण की दूसरी भाषाओं के रचनाकार भी ऐसी शर्त रखें तो उनकी 90% रचनाएं हिंदी पाठकों के करकमलों में नहीं पहुंचेंगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ऐसी स्थिति में हम तेलुगु और अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं के हिंदी अनुवादकों को उल्टी गंगा बहानी पड़ रही है, जो अत्यंत समसाध्य ही नहीं, बहुत बार निष्फल प्रयास होता है। मूल कृति अनुदित होकर कुछ न कुछ अपनी हाथप्रप्त तो हुई जाती है। मैं जोड़ रहा हूं, अंत में आ रहा हूं। बातें तो बहुत हैं लेकिन समय नहीं है बिल्कुल। अंतिम पैराग्राफ पर देता हूं मैं। हाँ, अनुवाद को अनुसृजन और अनुवादक को साहित्य का राजदूत, नवीन अभिरुचियों एवं प्रवृत्तियों का संवाहक या भाषाओं के मध्य सेतु, पारदर्शी आईना आदि कहकर उसे महिमान्वित तो किया जाता है, पर व्यवहार में उसकी यह भूमिका प्रायः अनादृत ही है। वह अपने अध्यवसाय के अनुरूप प्रतिफल नहीं पाता। कई निजी प्रकाशक तो अनुवादक का नाम तक देना नहीं चाहते। वे समझते हैं कि
अनुवादक का नाम देने से रचना का महत्व घट जाता है। वे उसे मूल रचना के रूप में ही प्रस्तुत करना चाहते हैं। हिंदीतर भाषी अनुवादकों के प्रति सदैव होकर अनुवादों का केवल यथावत प्रकाशित करना या उनका मन रखने के लिए उसकी प्रशंसा कर देना या पुरस्कृत करना समूचे अनुवाद साहित्य के प्रति अन्याय। आवश्यकता है हिंदी का सहज संस्कार देकर उन्हें सशक्त रूप में प्रस्तुत करने की। यदि यह काम हिंदी इतर भाषी नहीं कर सकता तो उसे यह काम किसी ऐसे हिंदी भाषी से संयुक्त होकर करना चाहिए जिससे हिंदी मुहावरे की समझ हो, या फिर प्रकाशन संस्थानों को चाहिए कि वे अपने स्तर पर योग्य पुनरीक्षकों संपादकों द्वारा यह काम करा लें। दुख की बात है कि ऐसे अनेक कारणों से तेलुगु की श्रेष्ठ कृतियों के साथ अनुवाद में न्याय नहीं हो पा रहा है और वे अपने सशक्त रूप में हिंदी पाठकों के सामने नहीं आ पा रही हैं। इस स्थिति में सुधार तभी होगा जब हिंदी के कुछ साहित्यकार तेलुगु सीखेंगे और तेलुगु की उत्तम रचनाओं को हिंदी में लाने में हमारा हाथ बटाएंगे। हमें उस समय की प्रतीक्षा है, तब तक हम अकेले ही यह आपद धर्म निभाते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you very much. It's running a little tight on time. I like the idea that he used the fact that mothers feed their children only when they behave themselves. I want to say that translators must not feed their readers. They must allow the readers to discover what they want to have. Maybe mothers should do the same, and that is let the children discover the food that they need to eat. Thank you very much. May I just invite now Mr. Prakash Bhatambekar. माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे सामने बैठे सभी सुधीजन, मेरे बहुत मित्र बैठे हुए हैं, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आप यहां पर उपस्थित हैं मुझे सुनने के लिए। दरअसल साहित्य अकादमी का सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूँगा क्योंकि अकादमी की स्थापना के हीरक महोत्सवी वर्ष में 70 साल पूरे हो रहे हैं। उस वर्ष में यह विश्व स्तर का आयोजन अकादमी कर रही है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। ये अधोरेखित करता है अकादमी के कार्य को और इसलिए मैं अकादमी को, सचिव महोदय को, उनके सभी सहयोगियों को और सभी प्रेमियों को, साहित्य प्रेमियों को मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। अब जो रोने की बात शुरू की है रेड्डी जी ने, तो मैं भी थोड़ा सा रोना आपके सामने रोने की ही कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अनुवाद के सैद्धांतिक पक्ष पर सभी विद्वज्जन बोलने वाले हैं, बोल चुके हैं, सब उसी पर बोलने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और विस्तार से रोऊंगा ताकि आपके तक वो बात पहुँचे और भूमिका बिना बांधे कम से कम समय में, ताकि भल्ला जी को घड़ी न देखनी पड़े, उतने ही समय में मैं अपना वक्तव्य पूरा करूँगा। कभी कभी मन में एक विचार यह भी आता है कि वर्तमान समय में हर जुबान या भाषा के सामने जब अपने अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा हो, जीवन आवश्यक हर गतिविधि मोबाइल बनकर उसे डिजिटलाइज करने की हवा जोर पकड़ रही हो, केवल अंग्रेजी हिंदी के रूबरू प्रादेशिक भाषाओं को बोली भाषा के दायरे में सिमटकर अपनी जान बचाने के लिए दुनिया भर की जद्दोजहद करनी पड़ रही हो, किंडल, ई बुक, फेसबुक का महाजाल अब तक की समूची व्यवस्था को तहस नहस करने पर आमादा होता दिख रहा हो, तो अनुवादकीय उपक्रम और प्रयास खोखले और निरर्थक प्रतीत होते हैं। मेरी दृष्टि से फिलहाल अनुवाद की स्थिति एक बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बची खुची कसर मशीनी अनुवाद भयावह तरीके से पूर्ण करते हैं। ऐप और कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे बेतरतीब और बेहुदा अनुवादकों के बारे में जितना भी कहो थोड़ा ही है। ये मुद्दे अति सामान्य तथा गैर वाजिब भले ही हों, किंतु गैर लागू नहीं कहे जा सकते। हर बार भूगोल, संस्कृति, सामाजिक परिवेश तथा अनुवाद सिद्धांतों की उबाऊ उखाड़ पछाड़ से हटकर अन्य व्यावहारिक चुनौतियों की ओर हम कभी मुखातिब होंगे कि नहीं? चलो मान लिया
कि भाषाओं के विकास की दृष्टि से तथा संस्कृति की रक्षा एवं उन्नयन के लिए अनुवाद आवश्यक है, किंतु अनुवाद के मूल्यांकन का कोई वैध पैमाना है हमारे सामने? अनुवाद करने संबंधी सिद्धांतों उपसिद्धांतों की अनावश्यक जुम्बिश में अनुवादक इस कदर बौखलाया सा रहता है कि शब्दानुवाद करना चाहिए या भावानुवाद, इसी दुविधा में पहले वह भरमाया सा रहता है तथा इसी उधेड़बुन में रीत जाता है। स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा के सीधे अनुवाद करने वाले सुधी अनुवादकों की नितांत कमी है तथा अनुवादकों की नई पौध को सुप्रशिक्षित करने के लिए सार्थक प्रयासों की अपर्याप्तता भी तीव्रता से महसूस होती है। यदि इस तरह का बुनियादी ढांचा ही कमजोर हो तो अनुवाद की प्रक्रिया में क्या खोया क्या पाया का सही लेखा जोखा भला कहाँ से सामने आ पाएगा? ऐसे में अनुवादक की विश्वसनीयता आप ही प्रश्नांकित हो जाती है। बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक इस विरासत को बचाए रखने के असली ठेकेदार तो प्रकाशक होते हैं। कुछ एक मौलिक उल्लेखनीय पसंदीदा साहित्य का अनुवाद कर प्रकाशकों से संपर्क करो तो वो मानो हवा में तैर रहे होते हैं और अनुवादक बेचारा हवा में उड़ रहे विमान की ओर टकटकी बांधे देखा रह जाता है। अनुवादक को अपने अनुवाद को पुस्तकाकार देखने के लिए बरसों बरस तरसते रहना पड़ता है। मैं स्वयं भुक्तभोगी रहा हूँ कि 6-8 वर्षों तक अनुदित कृतियां प्रकाशकों के ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं और इस लंबे अंतराल के बाद कोई न कोई बहाना बनाते हुए या तो उन्हें अनुवादक को लौटा दिया जाता है अथवा वे कहीं खो जाती हैं अथवा उनकी समसामयिकता समाप्त हो जाती है। ऐसे में अनुवादकीय पारिश्रमिक की बात तो अप्रासंगिक ही प्रतीत होती है। अनुवादक की बेचारगी का एक और उपेक्षित पहलू भी है। सार्वजनिक मंचों से भले ही वक्ता अनुवाद कर्म की प्रशंसा करते नहीं आघाते, बल्कि अनुवाद को पुनर्सृजन की उपमा देकर अनुवादक मूल लेखक से भी श्रेष्ठ मानते हैं वे, किंतु वस्तुतः अनुवादक अक्सर दोयम स्थान पर ही रह जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी माहौल अनुवादकों के लिए अनुकूल नहीं बन पाया है। और तो और स्वयं साहित्य अकादमी भी इसका अपवाद नहीं है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार का शुभारंभ लगभग 1989 में हुआ था। तब मूल पुरस्कार की राशि 25,000 रुपये थी तथा अनुवाद पुरस्कार की 10,000 रुपये थी। यह 19-20 का खेल अभी भी बाकायदा जारी है, क्योंकि इस समय ये राशियां क्रमशः 1 लाख और 50,000 की दहलीज पर ही अटकी हैं और अंतर भी यथावत मौजूद है। देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों के लिए श्रेष्ठ साहित्य का सृजन यदि अनुवादित कृतियों के माध्यम से किया जाता है तो सांस्कृतिक और भाषिक धरोहर के रक्षक संरक्षक माना जाने वाला अनुवाद और अनुवादक इस कदर उपेक्षित क्यों है? अनुदित कृति के मुख्य पृष्ठ पर मूल लेखक के नाम के साथ साथ अपना भी नाम छपा देखने के लिए अनुवादक तरसता रहता है, किंतु अंदर के किसी पृष्ठ पर ही अनुवादक को मजबूरन समझौता करना पड़ता है। क्यों? इस संबंध में प्रकाशकीय स्तर पर कोई वैध तथा सर्वसम्मत आचार संहिता क्यों नहीं बनाई जाती? अनुवादकों के सामने आज एक चुनौती यह भी है कि वे अपना दुखड़ा रोएं तो कहाँ और कैसे? उनके लिए कौन सा हाइड पार्क है जो उनके अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्हें यथोचित न्याय दिला सके? भाषाई और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा का जामा पहनाने जाने वाले अनुवादक की इस वास्तविकता की ओर ध्यान देने तथा उसका समुचित समाधान प्रस्तुत करने में पहल करने का दमखम भला कोई दिखा पाएगा? गणितीय फार्मूले की तरह अनुवाद प्रक्रिया को किसी विशिष्ट ढांचे में ढाला नहीं जा सकता। यानी कि अनुवाद सिद्धांत की किताबें पढ़ने तथा उच्च श्रेणी की अकादमिक योग्यता को अच्छे अनुवादक या अनुवाद की कसौटी नहीं माना जा सकता, भले ही ये चीजें अनुवादक बनने में सहायक सिद्ध होती हों। किंतु बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक समाज में उन्नति के मार्ग की पैरवी करने वाले महानुभावों को अनुवाद क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों का तथा संबद्ध मूल समस्याओं से कदी नहीं काटनी चाहिए। पर अक्सर ऐसा ही होता है, इसलिए अनुवाद का क्षेत्र धूसर सा नजर आता है। किसी भी मंच से ये अथवा इससे जुड़े अन्य मुद्दों को अक्सर हाशिए पर धर दिया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मूल विषय के तनिक हटकर ही सही
इस वास्तविकताओं को आपके सामने पेश करूं और रेड्डी जी की आवाज़, रोने की आवाज़ को और थोड़ा सा बुलंद करूं। इस संक्षिप्त आलेख में कुछ ही मुद्दों पर गौर किया गया है तथा ऐसे कई मुद्दों को विषय विस्तार को टालने के उद्देश्य से अनछुआ ही रहने दिया गया है। इस बहाने महज सवाल ही सवाल खड़े करना मेरा मकसद नहीं था, बल्कि यह तबीयत से एक पत्थर आसमान में उछालने के दुस्साहस का ही एक हिस्सा है। यद्यपि ग्रंथ संवाद को अक्षुण्ण रखने तथा उसमें विकास लाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं तथा ग्रंथ बिक्री के चढ़े आलेख को हर बार प्रस्तुत किया जा रहा है, किंतु पर्दे के पीछे प्रकाशक अपनी बिगड़ती हालत के दुखड़े रोते नहीं आगाते और नई पीढ़ी में साहित्य पढ़ने में अरुचि की हकीकत भी आए दिन सुर्खियों में चर्चा का विषय बनी रहती है। ऐसे में अनुदित साहित्य की स्थिति भला इससे अलग रह पाएगी? इन विशृंखलित एवं छितरे बिखरे विचारों को इस मंच से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर साहित्य अकादमी ने मुझे दिया तथा आपने भी अत्यंत मनोभाव से सुनने की उदारता दिखलाई। तदर्थ सभी के प्रति मैं आत्मीय आभार व्यक्त करना चाहता हूं और विनम्र अभिवादन भी। धन्यवाद। एक बात और छोटी सी रह गई है। अभी पिछले दिनों भारत रत्न पुरस्कार को लेकर काफी विवाद निकला था। 5 पुरस्कार एक साथ दिए गए और उसमें किसी YouTube पर एक टिप्पणी आई थी कि किसी साहित्यकार को भारत रत्न क्यों नहीं है। साहित्यकार को भारत रत्न क्यों ये कहा, अनुवादक को क्यों नहीं है कोई नहीं पूछता। साहित्यकार तो मानते हैं लेकिन अनुवादक को साहित्यकार नहीं मानते हैं, ये सबसे बड़ा दुखड़ा है। इस पर भी विचार होना आवश्यक है। धन्यवाद। Thank you very much. I'm so happy to hear that somebody is going to say that translators should be regarded as writers. I would also like to add that publishers need to pay translators. At the moment, they don't. All the publishers in India are basically parasites who use the work of others to make profit for themselves. But that's another subject on which I can hold forth with greater anger than I'd have at the moment. Time for. May I request Rumni Laksar Bora to give a talk? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रमुख, उपस्थित सुधीजनों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज तो अनुवाद का ये विषय में मेरा पूर्वोक्त वक्ता ने बहुत कुछ कह डाला है। मेरा भी कहना है क्योंकि अनुवाद मैंने किया है, एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन ये अनुवाद का सिलसिला पहले कहाँ से शुरू हुआ है। हमको गूगल से जानकारी मिली थी। ये जो मीट का कथाएँ है, राजा जो देवता हर्मिस, अनुवाद का जो देवता है वो हर्मिस नाम से जाना जाता है। और देवताओं का दो भाषियों का काम किया करता था। और अनुवाद का जो पिता है उसका नाम है सेंट जेरोम। उसने बाइबल हिब्रू भाषा से, हिब्रू और ग्रीक भाषा से बल्कन लैटिन भाषा में अनुवाद किया है। और इसका भी पुराना जो जानकारी मिला जाता है और 3000 सेंचुरी में ये मेसोपोटामियन एरा में वहाँ पे शिलालिपियों में इसका जो जानकारी इधर से शिलालिपियों से मिलता है। इसका बाद और जो बल्किन जो सेंट बल्किन है, सेंट बल्किन नाम का एक अंग्रेज राइटर था। उसने भगवद गीता को उसने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। ऐसा सुंदर ट्रांसलेशन किया था। ये बल्किन को, उसका भगवद गीता को ही बल्किन का गीता नाम से बाद में जाना जाता था। इसका मतलब है ये अनुवाद का खूबियाँ। इसका बावजूद भी फरासी प्रवाद एक है, ट्रांसलेशन इज़ लाइक ए ओमेन, अदर फेथफुल और ब्यूटीफुल, नॉट बोथ बट नॉट बोथ, ऐसे कहा जाता है। पता नहीं ओमेन को क्यों इतना बदनाम किया है
लेकिन ओमेन तो ऐसा नहीं है, सुंदर होने का साथ साथ फेथफुल भी होता है। ऐसा नहीं है, शायद फरासी समाज में ऐसा होता होगा, जिसको जैसा एक्सपीरियंस मिलता है वो ऐसा ही व्यक्त करता है, ऐसा ही मान लेना ही चाहिए। हाँ, मैंने भी जब अनुवाद करती हूँ तब मुझे ये एहसास होता है, भाषा का भाषांतर है, एक भाषा का एक भाषा तक भाषांतर है या रूपांतर है या भावांतर है। कहा जाए तो ये अगर सारी चीज़ मिला जाता है, ये अगर सारी चीज़ों का यहाँ पे इन्फ्लेक्शन होता है, तभी शायद अनुवाद बहुत सुंदर होता है, लाइक फेथफुल, ब्यूटीफुल ऑल्सो। और हमारा हमारा असम में, मैं असम का हूँ तो असम का एग्जाम्पल मुझे देना आ ही जाते हैं। असम में जब चतुर्दश सेंचुरी में माधव कंडली पहले अनुवादक था। उसने भागवत को, रामायण को पहले अनुवाद किया था, और भागवत को जब अनुवाद करने के पहले उसने आसामीज़ में, तब वो ब्रजावली भाषा बोलते थे। आसामीज़, अभी हम लोग जो भाषा आसामीज़ बोलती हूँ वो भाषा नहीं है, वो ब्रजावली भाषा बोलता था। वहाँ पे लिखा था, एको हरिवंश अमृत साक्षात आरु भागवत कथा मिश्र दिलुता जेन मधुमक्खी दुग्ध अति स्वाद पाए। इसका मतलब है, एक तो हरिवंश कथा और भागवत कथा दोनों को हमने मिला दिया है। जैसे रीडर्स लोग को मधुमक्खियों का मतलब विभिन्न फूलों से रस लेके जैसे मधु बनाते हैं, ऐसे रीडर्स लोगों को जैसे ये मधुर स्वाद मिले। इसका मतलब है अनुवाद का, इससे हमको क्या जानकारी मिलता है, मतलब अनुवाद का जो स्वाधीनता, अनुवाद को ये थोड़ा सा स्वाधीनता तो मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भाषा से एक भाषा तक अनुवाद करने का वक्त कभी कभार ऐसा होता है, विभिन्न कल्चर में, विभिन्न कल्चर का जो होता है, जैसे एक डांस का, जैसे एक खाद्य का, जैसे एक पोशाक का। हम जो इसको, मैं जो पहन रही हूँ इसको सादर बोलते हैं, इसको मेखला बोलते हैं। अगर ये हमारा आसामीज़ का ये ड्रेस का बारे में किसी दूसरा भाषा में ट्रांसलेशन किया जाए, पहनावट का बारे में, तो इसको अगर साड़ी बोला जाएगा तो आसामीज़ कल्चर इसमें नहीं आएगा, तो इसको बोलना ही पड़ेगा, इसको सादर लिखना ही पड़ेगा, उसका ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। आसामीज़ नारी, आसामीज़ वोमेन लोग जो पहनते हैं इसको सादर बोलते हैं, इसको मेखला बोलते हैं। मतलब ये स्वाधीनता है, ये अनुवादक का स्वाधीनता है मेरे हिसाब से। और आप लोग तो बहुत सारे लोग, सब एक्सपीरियंस है, आप लोगों को भी पता ही है। और मैं ज़्यादा 7 मिनट चला गया, बोलने को बहुत था, आती थी बोलने के लिए, लेकिन टाइम देखते हुए थोड़ा ब्रेक मारना पड़ेगा। और एक बात है, जो ये अनुवाद का जो पेशा के रूप में दादा ने बोला था, पेशा के रूप में लोग, प्रकाशक ये नहीं देना चाहता था, रिम्यूनरेशन देना नहीं चाहता था। लेकिन इतिहास में क्या हुआ था, दो भाषियों के लिए, पहला तो बेबीलोनवासी ये अनुवाद को क्या करता था, पेशा का रूप में पहले उन लोगों ने शुरू किया था। इसका बाद जो राजा महाराजाओं का एक का संदेशा दूसरा देश को पहुंचाने के लिए ये जो दो भाषियों को नियुक्त किया था, उन लोगों को भी पे किया करता था। लेकिन आज का ज़माना ऐसा हो गया है, जो ये गूगल आ गया है, गूगल का सीधी जो ट्रांसलेशन दूसरा भाषाओं से इंग्लिश भाषा तक, इंग्लिश भाषाओं से अन्य भाषा तक, ऐसा आसान हो गया है। मतलब अनुवाद का, जैसे रीजनल लैंग्वेज का राइटर्स का बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गया है, फाइटिंग करना पड़ता है, ऐसे ही अनुवादकों को भी अभी ये इस मतलब जोगों का, ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस एरा में बहुत फाइट करना पड़ता है।
और इसका जो सॉल्यूशन है आप लोगों को ऊपर छोड़ दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बात तो तय है, जिसका जो नशा है वो ना करके रह नहीं पाता है। हम लोगों को काम करके ही जाना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। ये भी एक हिस्ट्री होगा, ये भी एक इतिहास होगा। ये ट्रांसलेशन का इस मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन का इस सेशन में मुझे साहित्य अकादमी ने ये मौका दिया है बोलने के लिए। पता नहीं जो और कुछ बोलना था, लेकिन समय का नज़ारा देख के मैं अभी यहाँ पे ही मैं ब्रेक लगा रही हूँ। और उन साहित्य अकादमी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और कृतज्ञ हूँ, और आप सब लोगों से आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you very much. I have a small mischievous thought. Why must there be a correlation between faithful and beautiful? I'm sure we can have a beautiful text which is thoroughly, well, unfaithful. I think my examples in the beginning of Helen were a good one in this context. Helen was thoroughly unfaithful, and yet she caused havoc. Okay, well, I have things to say. We need to move on to, Shri Ratnam is here? Yeah, please. May I invite you please to come. अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन वक्तागण और साहित्यिक बंधु सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद। हम सभी लोग जानते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत तो बहुभाषी देश है और उनकी विभिन्न संस्कृतियाँ भी हैं। हर एक भाषा की अपनी अलग संस्कृति है, प्रांत की अलग संस्कृति है। इसलिए तो अनुवादकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है यहाँ पर, क्योंकि हर एक भाषा को सीखना और उसे समझना और दूसरी भाषा में उसे अनुवाद करना एक कठिन काम है, क्योंकि दो भाषाओं के ज्ञाता होने मात्र से अनुवाद नहीं कर सकते हैं। माने मेरे समझ में तो अनुवाद नहीं कर सकते हैं, अनुवाद तो करते हैं लेकिन वो सफल अनुवाद नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक हम उसके सांस्कृतिक परिवेश को नहीं जानते हैं और गहन उस रचना के प्रति गहन अनुभूति नहीं होती है और उस विषय को हम आत्म साक्षात्कार नहीं करते हैं या हृदयंगम नहीं करते हैं, तब तक हम उसे दूसरी भाषा में अनुदित नहीं कर सकते हैं। ये सभी विषय ध्यान में रखकर जब अनुवाद करते हैं तब तो वो सफल अनुवाद ही होता है। कुछ अनुवाद ऐसे हैं कि मूल कृति से भी बहुत अच्छे निकले हैं, ऐसे भी कुछ ग्रंथ है, अनुवाद के ग्रंथ सभी विफल हो गए, ये घटिया का अनुवाद है, ऐसा नहीं है। और हर एक साहित्यकार चाहते हैं कि अपनी कृति दूसरी भाषा में निकले। क्यों चाहते हैं? क्योंकि विषय जो है उसे दूसरी भाषा में जाने से तो वहाँ के लोग भी इस विषय को जानते हैं, क्योंकि भावात्मक एकता की दृष्टि से अनुवाद की आवश्यकता काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनुवाद की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि वहाँ विचार विनिमय हो या सेतु बंधन हो या आप जो भी कहे, सांस्कृतिक समन्वय कहे, इन सभी दृष्टियों से ये सारी विषयों को दृष्टि में रखकर जब अनुवाद को हम चुन लेते हैं तब पहले पुस्तक का विषय जो है उसे हृदयम करना है, उसका जो सांस्कृतिक परिवेश है उसे जानना है और लेखक क्या कहना चाहते हैं। पहले वक्ता भी कहे थे, मैं जो लिखता हूँ वो नहीं है,
मैं जो कहना चाहता हूँ वो दूसरी भाषा में ले जाना चाहिए। इसलिए उनका विचार जो है उसे हमें आत्मसात करना है। माने एक प्रकार से यह क्लोनिंग प्रक्रिया है। एक कण को लेकर के फिर दूसरे जीव को जन्म देने के जैसे, सृजन करने के जैसे है। एक क्लोनिंग प्रक्रिया है। वैज्ञानिक भाषा में कहने से तो एक क्लोनिंग प्रक्रिया है, या परकाय प्रवेश भी कह सकते हैं। अनुसृजन दूसरे बच्चे को जन्म देने के जैसे है। इसलिए अनुवादक को काफी परिश्रम करना पड़ता है। असल में मूल लेखक जो होता है, मूल लेखक को अपने विषय को सीधे कागज पर उतार सकते हैं, सीधे कह सकते हैं, लेकिन अनुवादक ऐसा नहीं कर सकते हैं। मूल लेखक जो कहना चाहते हैं और विषय वहाँ की सांस्कृतिक परिवेश कैसे है, इसे जानने के बगैर वहाँ के मुहावरे होते हैं और कहावतें होते हैं, इन सभी को जाने बिना वो अनुवाद सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। इसलिए अनुवादक जो होता है वो तो परकाय प्रवेश करके ही अनुवाद को कर सकता है। और जैसे पहले लोगों ने कहा कि ये बहुभाषी देशी होने के अनुवाद की क्या आवश्यकता पड़ी थी आज, क्योंकि हम विश्व भाषा की कल्पना कर रहे थे और हम विश्व गांव की बात कर रहे हैं। ऐसी कल्पना जब कर रहे हैं, हम जिस विषय को यहाँ चुन रहे हैं, जिस विषय में लेखन का कार्य हो रहा है, उन सभी विषयों को दूसरी भाषाओं में ले जाने से तो विश्व स्तर पर हमारे विचार पहुंच जाते हैं। इसलिए वैश्विक स्तर पर हमारे जो विचार है, हमारी जो संस्कृति है, अन्य भिन्न भिन्न भाषाओं की हो सकती है, ये वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए ये तो काफ़ी कठिन काम है और आवश्यकता भी है, इसके महत्वपूर्ण भी है। इसलिए पहले वक्ताओं ने ये कहा कि वो जो अनुवादक को दोहम दर्जे के मानते हैं, इससे मैं भी सहमत हूँ। जब मैंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार लिया तब मैंने भी इस विषय को उठाया था। जब 5 मिनट बोलने के लिए कहा तब मैंने कहा अनुवादक का काम काफी कठिन है और अनुवादकों को सेतु बंधन करने के लिए या भावात्मक एकता के लिए आप लोग कहते हैं, सारी बातें कहते हैं, लेकिन उन्हें दोहम दर्जे के मानते हैं। तब मैंने कहा आप तो मूल लेखक और अनुवादक को अलग अलग कर रहे थे, अलग दृष्टि से देख रहे थे। इसलिए आप वो राशि जो है 50,000 का और 1 लाख का, तब मैंने भी इस बात को उठाई थी साहित्य अकादमी के सामने। आप लोग उन्हें बराबर देखना चाहिए। असल में मूल लेखक से भी कठिन है, क्योंकि ये जब तक दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है तब तक वो अनुवाद ही नहीं कर सकता है। और इससे तो क्या हो रहा है, अनुवाद की महत्ता बढ़ रही है और भिन्न संस्कृतियों को हम जान पा रहे हैं और मूल कृति की जो संस्कृति है उसे दूसरी भाषा में ले जा रहे हैं। इससे तो यहाँ की जो भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं उन सभी संस्कृतियों हमारे सामने आते हैं, क्योंकि भावात्मक एकता की दृष्टि से, क्योंकि वैचारिक साम्यता तो है। सभी विषय आप साहित्य को ले लीजिए, भक्ति आंदोलन को ले लीजिए या वीरगाथा काल को ले लीजिए या बाद में जितने आधुनिक काल का ले लीजिए, उन सभी विधाओं में जो लेखन कार्य हुआ था और उपन्यास आदि स्त्रीवाद, ये सभी उनमें जो मूल विषय है उनमें तो उस समय की मांग के अनुसार ही रचनाएं निकली हैं। माने यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के ही लेखक लोग रचनाएं करते हैं। उन रचनाओं को दूसरी भाषा में ले जाने से
वहाँ की साम्यता माने वैचारिक दृष्टि से वो साम्यता हमें अवगत होता है। इससे तो हमारी ज्ञान वृद्धि भी होता है और इससे तो पहले तो बहुभाषी देश होने के कारण यहाँ के झगड़े होते हैं और वैसे धर्म संस्कृति को लेकर के भी लड़ाइयाँ होती हैं। जब हम इस भावात्मक एकता को समझ सकते हैं तब ये वाद विवाद भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार और आपके विचार में साम्यता है तब विवाद कहाँ से रुकती है, विवाद रुकने के सवाल ही नहीं है। इसलिए ऐसा अनुवाद की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। आज के इस युग में वैश्विक स्तर पर अनुवादकों को काफी उनकी भूमिका को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन उन्हें जो मान सम्मान देना है उस मान सम्मान देने में संकुचित ना होकर उदार दृष्टि अपनाए तो हमारी साहित्यिक समृद्धि भी होता है। हम जो लक्ष्य साधना चाहते हैं भावात्मक एकता और वैचारिक साम्यता को लाने में भी सक्षम होते हैं। इन चंद शब्दों के साथ मैं आयोजकों के प्रति विशेष रूप से साहित्यिक अकादमी की ओर से, क्योंकि आपके सामने बोलने का जो अवसर मुझे प्रदान किया है उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोगों ने मेरे ये 2 शब्द सुन लिए थे, इसके लिए भी मैं आपके प्रति हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। Thank you very much. Translation can sometimes be hurt one's narcissistic sense of oneself. The other day, somebody referring to me said, "वो तो वृद्ध हैं." So I thought he was talking about a बरगद का पेड़, बरगद का वृक्ष, not me. And I was thinking about the ways in which the word वृद्ध could be translated, बूढ़ा, बुजुर्ग, खड़ूस, and a variety of other ways in which one is referred to as when one grows old. We have 10 minutes to go still, so we have time for some questions, but I have one. Oh, sorry. What am I saying? Well, vrid is a good word for me. May I therefore invite Shobna Kumar? Sorry about this. Not at all, sir. Please, not at all. There are some advantages going last because I think you hope that this is the last fag end, so people will continue to listen. It's been such an honor being on the panel with all eminent translators. I am here speaking in the capacity of a translator translating from Tamil to English, working both in the classical Tamil texts and contemporary Tamil. I want to begin with one quote by A.K. Ramanujan that really struck a chord with me. He says, when you translate, you don't just write with the language, you write with all that you have. And he goes on to say, when I write in Kannada, I'd like to think that my English, my Tamil, etc. will be at the back of it. And when I write in English, I hope that my Tamil and my Kannada, like my linguistics and other studies of what I know of America and what I know of India, are at the back of it. And he goes on to say, a poem comes out of all the things one learns, not just a part of you. So much of what we write as poets comes from both the conscious spaces and the unconscious spaces, and it's very difficult to desegregate both as we speak. I'm also going to bring in to context a little bit of my writing from Japanese aesthetics as a haiku and haibun writer.
and the challenges we often face as translators, bringing the elements of these numerous multiple cultures and languages into a seamless whole for the reader. And I want to draw upon 4 aspects. One is the drawing of the metaphor of everyday living. When Priya Sarukai Chabriya and I began working on Thiruvasagam, a 9th century Tamil text by the renowned poet mystic Manika Vasagar, one of the things that we discovered was, for the poet sage, every aspect of daily life becomes a metaphor. And this is so true of all regional languages. So this is what we found. For him, the dragonfly, flowers of worship, the koel, a game of dance and song, very different rituals of deeds of glory. Each of it becomes a metaphor when he beseeches the Lord. And these metaphors make him alternate between different states, from the rapturous to wonder to amazement to pleading to beseeching, but always in relentless pursuit of that ultimate form of divinity that he is seeking in this bhakti poetry. So I'm going to give you one example. We were translating one of these numerous poems, 658 poems in the text called Thiruvasagam. Kuil Pattu, 10 songs of the Kuil, which is the Asian koel. How could we bring about the aspect of a koel that became the emissary for this poet saint? How does a reader who has no understanding of what a koel could possibly sound like, how could we take that oral register that is so rich in the verse and translate it into English? So what we attempted to do was recreate the sound of the koel, koo, which also sounds like Siva, Shiva. So what we did is, for one of the poems, was we used Siva as the background text running all down the page and placed the poem at the center, so that the sound of the koel keeps us a very subtle reminder to the reader of this refrain that the poet is looking for, the call to the divine. And then he sings this song, and I'd just like to present that before you. Koel, you luscious songster, sing of our beloved Lord. Sing of feet that travel through worlds beneath, his flame luminous that transcends the liminal. Sing of his elements that defy description. Sing of him, Siva, Siva. This is, of course, just a very humble attempt on the translator's part. We're not having the reader in mind. But how do you translate such gorgeous verse and hope that the reader will get what Manika Vasagar was thinking all these many centuries ago? So it's merely an attempt. We're not having the reader in mind. The second is using space as a tool in translating poetry. And how does an unfamiliar reader explore the silences that come with poetry? How do you translate the silences? How do you translate what the words are coming down to say? So in the same work, a lot of the poems in the Thiruvasagam are sung at Chidambaram. Chidambaram is the place where Shiva is embodied as space, and where the seeker is actually taken to the abode of the temple, and the physical veil is lifted and you stare into space. So how do we translate space and this seeking into this paucity of expression that often English as a language can become? How do we do that? So here is one example that we took from the Tiruchadakam, a corpus of 100 verses in the same body of work. And this is one stanza where we started the line from with so many words and came down to one line. Do I have to? So here it goes. Not through thought,
questions, debate, discussion, talk, not through pulsing veins of the sensory. By no means have I been able to reach you. This lowly being, this foolish body, has even failed the test of fire of holy Nandanar. There is no shame within that I have not melded with you. Despite all these failings, grant me this boon of merging with you. So this process where the poet Saint Nandanar, whom Manikavasagar sings about, rids everything that is there and finally goes down to the last line, which is just Shiva. So this is what you can do. Again, it's an attempt. The third is the cultural aesthetic that happens even when you're not translating work. So what happens when you are bringing into the English language something like haiku and haibun, which draws from Japanese aesthetic, something that we have not grown up with. So when I started exploring haiku and haibun in 2012, one of the questions that I have constantly been asking myself is, how do we bring the cultural richness of the Japanese aesthetic to our own work? So Makoto Ueda, one of the most prolific translators of Japanese master Matsuo Basho, says, haiku is essentially the art of the blend of sabi, which is the ephemeral nature of life, shiori, which is when life bends and when you are able to sense a deep sympathy for both nature and of humanity, and hosomi, the attunement of the poet to the smallest of most and the most sensitive aspects of natural phenomena. How do you do that? And these are just three elements of the Japanese aesthetics that I found that my work was drawn to. So how do you present this and ensure that the work remains true to the Japanese aesthetic, even if you are writing in another language? So just want to quote one example. Post-mortem. This is a haibun. His postgraduate certificate is tucked away in an old steel trunk. Every other day, he answers calls on his mobile phone and sets out to work. Anything goes. For the last month or so, he's been a painter for a new high-rise. This one has 15 stories. Between orange and pink, a sky full of bucket lists. Between orange and pink, a sky full of bucket lists. Today, he caresses a stray strand of hair from his wife's forehead as he leaves. He slips from the 4th floor, trying to save a fellow painter from falling. They want to file a report saying that he was an alcoholic. She spends the next 5 years fighting to prove he was not. Broken, a kite falls into the sewer. Broken, a kite falls into the sewer. The challenge for me writing this was to eschew every sensibility that I have as a practicing poet. No metaphor, no simile, no literary tools, just write what you see. And in that sense, we're also translating all the time, irrespective of whether we're actually translating one's body of work from one language into another. So much to learn and so little time. And the last is building on tradition that is so typical of the Indian tradition, the Oriental tradition, rather than striving to stand out and as a lone thinker in the whole corpus of the work. And I think in our recent work, Srilata and I had to translate Salma. We found that Salma wrote so much about the fetters of the feminine, and she was borrowing the experiences of multitudes of generations of women before her. And this is what we had to translate. How do you translate the woman bound in fetters beyond time? How can you stay true to that tradition?
So on that note, I'd like to think of translation as this jugalbandi, where the translator is the dancer. You have the composer who's dreamed of this dance in his head, and the music is set to tune. You have an orchestra, and the dancer takes this and leaps and gives it as an offering into a whole new world. On that note, thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. I need to apologize to you again. I'm sorry, but I'm glad to say at the end of this session that almost everybody has proposed that one should honor translators and translations, not only into languages, but also into paintings, poetry, music, something that we need to pay greater attention to. We have been very fortunate in our panel. They have not only given us new insights, but also abided by time, which gives us time for 2 questions from anybody on the floor. Any questions, quick ones? Questions, not comments. Yes, please. Yes. Hello. I missed the initial part of it, but I did listen to you and sir and ma'am also. I wonder whether when you translate the original piece, and when it comes to the criticism and comes to the critiques, they expect that the translation should be better than the original, isn't it? So in that dilemma, how do you see the originality? You got my question? Is it clear? Yeah, that's I want to know. Okay, tough question. I think she explained it beautifully. Do you want a beautiful wife or a faithful one? Surprising that the question is never asked to the woman, though, right? Originality, yes. I think it is a battle, definitely, that you want to be able to hear. I think somebody said that so beautifully. What is it that, I think, sir, you brought it. What is it that you want the audience to hear from the original translator? But having said that, I do think we think of translations as also new work, because you're also bringing your own experiences and your interpretation of the text. And I can speak for poetry. Poetry is an interpretation, right? So originality, yes, you can't completely negate what the original work has said, but can we set it in the cultural context that will resonate? What is there? There is an element that the original writer, the writer wanted to portray. Can we stay true to that original thread of thought? I think that's the challenge, and that's also the deliciousness of translation. One more question. Yeah, yeah, please. Professor. Yes. Hello. No, I'm just going to, I was just thinking of something that, practically happened in the case of a great translator. In his last days, Goethe, when he read his Faust in French, done by Nerval, he said that I prefer to read Faust, not in German, which is the original, but in Nerval's French. Why? Because it produces in me the same vivaciousness.
So the dynamic equivalence in the translation is even overcome to a higher degree by producing even more vivaciousness. This was the criteria that Goethe set for translators. Thank you. I think we've run out of time completely. We have run out of time completely. There is a next session on here. I've just learned something nice, that the one Indian publisher at least has been adventurous enough to publish in a single volume 2 translators together, translating Tukaram, and that is Jerry Pinto and Shanta Gokhale, who started off together but went on their own paths, and both decided that they will make their translation of Tukaram, and the publisher agreed to print them together. I think that's a heartening sign of translation and the adventures that are possible. Thank you very much. Thank you to the Sahitya Academy. साहित्य अकादमी देश को 7 दशकों से अधिक समय से सेवा प्रदान कर रही है. Through translation, the Academy connects various communities and cultures of India and thus plays a unique role in the national unity and development of the nation. Today's session enumerating on the nuances of translation was very stimulating, and we thank all the stalwarts, the eminent panel, for enumerating their views, for giving us insights on this. And we can't thank you enough. We thank the chair and for very efficiently conducting the entire session, and all the panelists, respected panelists. Thank you so much. Namaskar. So we have bags for you. If you can just collect them from here. As we are running out of time, we will not take any break and straight away move into our next session. We'll just pause for 1 minute and wait for everyone to settle down.
29 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें 8 एकल संयुक्त रूप से संपादित पुस्तकें शामिल हैं। आपकी कविता और गद्य विश्व स्तर पर 80 से अधिक पत्रिकाओं और संकलनों में प्रकाशित हुए हैं। His poems are translated in 18 languages and published in 14 countries. He is a recipient of Setu Excellence Award, Pittsburgh, US, and Jayanta Mahapatra National Award. His collection of poems, Alleys Are Filled with Future Alphabets, has received Pan-Asian Yuki Yoto Award. I request Gopalji to kindly join us on stage now. भरत नायक जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं. An eminent Gujarati poet, playwright, and editor. He has authored 3 collections of poetry, 2 collections of creative essays, and 4 plays, 1 book of criticism on melodrama in Gujarati. आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारें. आपकी रुचि के क्षेत्र हैं नाटक, सिनेमा, संगीत, चित्रकला और फोटोग्राफी, और आपको महाराष्ट्र गुजराती साहित्य अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है. Joining us also on this panel is Shri Narendra Pundarik, an eminent poet and critic. He has to his credit many edited books based on Kedarnath Agrawal, apart from Chote Haath, Mere Sakshatkar, and 6 collections of poems besides 2 books on criticism. आपकी पुस्तक चुनी हुई कविताएं और केदार शेष अशेष को शंकराचार्य विश्वविद्यालय कालडी तथा अन्य विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है. आप केदार स्मृति शोध संस्थान बांदा के सचिव, माटी पत्रिका के मुख्य संपादक तथा रामविलास शर्मा सम्मान एवं महेश अंजुम कविता सम्मान के संयोजक हैं. श्री नरेंद्र पुंडरीक जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं. Joining us also on this panel is Shri Rajiv Kumar or Rajiv Bhatia. He is from 2010 batch of Indian Railway Protection Force service. He has also obtained the degree of postgraduate in History, LLB and PhD, and started his writing career through poetry right from his student days. आप विभिन्न साहित्यिक मंचों पर अपनी कविताएं निरंतर प्रस्तुत करते रहते हैं और वर्तमान में आप डेपुटेशन पर दिल्ली में कार्यरत हैं. श्री राजीव कुमार. So we don't see him here. Maybe he'll join us later. सतीश विमल जी भी हमारे इस सत्र के पैनलिस्ट हैं. He's a multilingual poet, critic, translator, researcher, cultural crusader, and art aesthetician. He writes in Kashmiri, Hindi, Urdu, and English, and has authored 30 books and has published 50 research papers. Satish Vimal ji. आपको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और आप राजभाषा विभाग, भारत सरकार, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अखिल भारतीय कवि सभा, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार आदि अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत. Joining us also now is Shri Sharungbam Rameshwar Singh, जिनका मूल नाम है रामेश्वर शारुंगबम. आप मणिपुरी भाषा के 2 कविता संग्रहों इराइबाग किराइबाग तथा कायरबा चाफू मेचत के मचेत के लेखक हैं. As a founder member of Shirang Ba Singhi Apunba Lup Manipur and life member of various literary organizations including the Cultural Forum Manipur, he has contributed significantly to Manipuri literature. We welcome him on this panel, and joining us also is Sri Indrajit Bhale Rao. Has been teaching Marathi in a senior college since 1985. He has been writing poetry. His first collection of poems,
Pikpani was published in 1989, and till date his 10 books have been published. He also writes fine and graceful prose. आपका प्रथम उत्कृष्ट गद्य साहित्य गाय घर आल्या 1995 में प्रकाशित हुआ। तब से अब तक आपकी 5 उत्कृष्ट गद्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। एस रघुनाथ जी भी हमारे बीच इस मंच पर अब उपस्थित होने वाले हैं। डू वी हैव हिम हियर? श्री एस रघुनाथ। He published many works, among them 8 collections of poetry, 3 collections of stories, 2 collections of children's stories, 3 collections of poems, collections of cultural articles, volumes of comprehensive literature, and has translated 20 works from Telugu to Kannada and vice versa. अब हमारे बीच उपस्थित हैं और हम सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। S. Raghunatha? No. S. Raghu. Sorry, he is S. Raghu. We have been given the name as S. Raghunatha. I am extremely sorry for that. और अब मैं निवेदन करती हूँ इस सत्र के अध्यक्ष से कि वे कार्यक्रम का आरंभ करें। आप सबको नमस्कार। कितना अच्छा लग रहा है। कई कवियों को देख रहा हूँ। कवि जब कविता को सुनते हैं और अपने साथी कवियों को सुनते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। और देखिए हमारे बीच कौन है। शीतांश जी बैठे हैं, जयंत परमार बैठे हैं, मैं नाम लेता चला जा सकता हूँ। आप सबका स्वागत। मुझे अभी कुछ और नहीं कहना, केवल इतना ही, क्योंकि अध्यक्ष बाद में बोलता है और बाद में कुछ पढ़ता है। मैं इसलिए खड़ा हुआ, आपने कहा तो मुझे लगा कि आई मस्ट टेल टू ऑल माय पोएट फ्रेंड्स दैट वी हैव लिटिल टाइम फॉर ईच अदर। सो अबाउट 8-9 minutes and 3-4 poems if they are not longer, and I hope most of them don't write longer poems, I believe. तो जैसा भी हो आप हमको सुनाएंगे, हम सुनेंगे। मैं भी सुनाऊंगा आपको। मैं थोड़ा कम समय लूँगा, मैं 2-1 ही सुनाऊंगा क्योंकि आपको समय देना चाहता हूँ। आप लोग आए तो मैं किसको बुलाऊँ सबसे पहले? कोई, हाँ, जो ऑर्डर है उसी पर करते हैं तो अच्छा लगेगा। हाँ नहीं, मैं पढ़ लूँगा। ये तो इतना बारीक भाई पढ़ सकता हूँ, ये वाला है ना। हाँ, तो गोपाल लाहिड़ी जी हैं। He writes both in English and Bengali. He's a very well-known poet, needs no introduction. और मैं उनको बुलाता हूँ, आप आओ और अपनी कविताएं पढ़िए। एक कविता के लिए मैं पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, पढ़िएगा। वो लास्ट में पढ़ें। लास्ट में। Thank you, respected Chair, Shukla ji, and all the distinguished poets on the dais and off the dais. The first poem I'll read, the title is Hunger. I ate garbage day and night. In those days, if I was lucky, got leftover cold rice and salt that would make my day. All was visible and all elusive. I had a bigger heart than anyone. Then my lover was there. We used to share our food. We had no money. We did not count our pain. Once or twice in a week, I got beaten black and blue for stealing hot biryani or lukewarm chow mein from roadside food stalls. My heart was tongue then. All the love is gone now. We lived in our miasma, the morphine of our cracked bones, half for me, half for her. My heart cannot go any longer. I do not know then how much one hand is like another hand. The hand that torments
or rights our wrong. Hunger is the only story I know. The second poem is a small one, Water. Two slum girls, the color of the charcoal, stand at the edge of the pavement. Their hostel, a clump of unkempt hair, their shoulders stoop low, skinny hands and crooked legs go hiding in the smoke raised by the tires of the goods lorries, while they kiss the dry roadside tap in search of water. This poem is Vignettes of Scars. They are not the thing in itself, where silence shrieks in the throbbing pain of the little girl. The sound of cleaving is loud in the chill of the winter evening, slicing the skin and flesh, a mark of camouflage, a floral mask we have not traced. They are only the scent of a flower we have not found. Her voice slowly withdraws out of the fire, the echo of the unspoken prayers we have not heard, the vignettes of scars from a distant country we have never visited. As because I am from Kolkata, so there are a lot of ghats on the bank of Ganges, the Hooghly River. One is such Outram Ghat. There is an epilogue here. Too much sameness and the world turned grey. Sun rays cut in patterned lines on the Howrah Bridge. The sky has turned into an artist's palette, and the moment hung in the air. The boatmen come and go, offer some measures of the past. Their mouths open now and then, transfer melody to the muddy water. All those lovers drink bees, and it stung their lips. They whisper, and their words explode in silence in the middle of nowhere. The walkers slowly let out their deep-chested laughs. The children nibbling peanuts. The women tussle their hair, still assembling shouts into laughter. The bleary evening comes with a soft little pack, weaving stories and anecdotes of the natives. You, me, and the devotees surrender to the holy river. The next one is Kolkata Summer. Every southern evening, Kolkata combs my hair. Always talk about babus and bibis. Trams have delicate eyes and the lips, inviting people for a joyride around the Maidan. Squeezed between houses of broken red bricks, pigeons look more grey, more shaggy and morose. Nor'wester blows once in a while, we dance to the tune of the wind and rain, making our powdered face a wipeout. The hand rickshaw pullers do not have the GPS, but still going strong with bells and whistles. I wander in the morning and evening on the bylanes, not just to escape, but to find novelty, warmth, new smells, and new sensation. A canvas is brought before my eyes. There is so much to take in from the cordon of my narrow balcony, from an unmanned terrace. I'll read one, then the last poem. Slave Cave-In. This actually, when I went to North Carolina in the US, we have heard of the stories in our childhood, Uncle Tom's Cabin. So these are these slave cave-in which we have witnessed as a part of a tourist program. We are on a freedom journey. I stand between old denials and new stories.
Eden Heart, a few branches are there. There will be a lecture to a few tourists, now students. Everyone soaks in the layered histories of the slaves and investigates the Carolina golden rice sample. Some past footstep look for the pine coffin. Some are striving for grief, walking in the swampy rice pond ditches, forest. How many are they? Tens, hundreds, thousands? How many actually survive? Dug, dirty cabins stand like a statue, a pitiful condition. From slave to the bonded laborer, they sing and dance their thrill songs and anthem, and then die on the floor. Children are lying on the grass roll at the top, one small door voids like windows, and the next, and the next. Eyes as intense as black holes. Murky cabin, the density of life gone out, embracing screams. Only malaria, no beating, no shooting, no torture. The bundles of plump bodies then, tell me then what happens? All are ready now for the lecture to know the truth. But someone tells me, no one will tell the truth. It's all lies, it all denials. And the last poem, title is Aqua Fresca. It's Portuguese words, meaning fresh water. Just beyond the leaves and white faces of the sea, the rugged steps invite shadows from the 17th century, sketching the old warships on a large canvas. The past is perhaps out of memory, out of irony. Whispers cluster around walls, thick bushes, history traces the number of attacks and resistances, counting the cannon and gunshots. A still air looms large over the palm groves as if a storm is coming in. Invaders fill the dark chambers with wounds and scars during time. How smooth the weave is, and they do not erase, and they never will. Unknown lovers sit on the ruins, still scared of insects, red ants and spider. Never forget to keep the ball of laughter on the seaside, overlooking the arched pillars of the gateway. The wild flowers trap in the fissures of the granite block. Seabirds look grey, shaggy and morose beneath the grey clouds, threatening to open the torrential downpour. Old and young walkers chase the land's end of sounds and colors. Some throw pebbles unmindfully on the messy foams and splashy waves. I am taking notes minute by minute, hour by hour, in the forward and backward direction, giving my mind harmony and peace. A morning of make-believe, like ancient ships, it is in search of hidden fountains of Agua Fresca. This thank you. This is a poem on Mumbai. सर वैसे बोलिए बार बार कष्ट होगा नहीं कष्ट तो क्या होगा हाँ ये सुविधा तो है ऑन कर दो आवाज हो गया अब आवाज आ रही ठीक इतनी ही दूर रखूंगी तो और थोड़ा और दूर ये बहुत मुश्किल चीज़ है बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल लाहिड़ी जी का कविता आप जानते हो कि आपको किसी जो भी सुनता है उसको किसी स्मृति में भी ले जाती है मैं तो कलकत्ता में जन्मा वहीं बड़ा हुआ आउटरम घाट वाली कविता सुनते हुए मुझे बाबू घाट की याद आ गई जहाँ मैंने एक तरह से तैरना सीखा था
आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सुंदर कविताओं के लिए। और धीरे धीरे भारतीय भाषाओं का संसार आपके सामने खुलना शुरू हुआ है। और आई एम क्वाइट श्योर द काइंड ऑफ पोएम्स, द रेंज, द शेयर रेंज अभी आपके सामने खुलेगा, वो बहुत अद्भुत होगा। मैं ऐसे हर काव्य पाठ को बहुत पसंद करता हूँ जिसमें एक से अधिक भारतीय भाषाओं के कवि होते हैं। भरत नायक जी की बारी है। आई एम थैंकफुल टू गोपाल कि इन्होंने मेरी बात मानी। 8-9 मिनट, अब उसको थोड़ा और कम कर देते हैं क्योंकि जितने हम लोग हैं भरत जी, उसमें अगर 6-6 मिनट लेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो 6-7 मिनट में कोशिश करिएगा कि ये हम कविताएं पढ़ें। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं सबसे कम पढ़ूँगा, हो सकता है एक ही पढ़ूँ। आइए भरत जी। नमस्कार। गुजराती में एक ही कविता पढ़ूंगा, बाकी की जो 2 है उनके एक अनुवाद और फिर बाकी 2 कविताएं अनुवाद के रूप में पढ़ूंगा। शायद गुजराती का एक फील मिल जाए, इसलिए एक ही कविता पढ़। विछोह, splitted, separated. हाँ जी। વિછો હું શાને આ કયા મેળામાં ભૂલો પડ્યો, હું શાને આ કયા મેળામાં ભૂલો પડ્યો, ખોળતો રહ્યો મને કયા ગામ પ્રદેશ, હતી એ ક્યાં ગઈ જનની, હતી એ ક્યાં ગઈ જનની દેવકી, ક્યાં છૂટી ગઈ જનેતા જશોદા, અંધારી રાત જેવા બોગદામાં ગરકતી નદી નાળા વગડા ડુંગરીએ દવ ભેદતી, સુના ઉજ્જડ સ્ટેશનોની સૂનમૂન દીવાબત્તી આંટતી, અટુલા મેદાને વણજારાના તંબુનું તાપણું વટાવી, ધસમસ દોડી રહી છે આ ગાડી, કોણ જાણે નીકળી કયા મુલકથી જાય છે વળી ક્યાં, ગબડતા પૈંડા, ખખડતો ડબ્બો, એમાં ઝોલા લેતા ને ઝોકું ખાતા ઉતારું, ત્યાં સામસામી બેઠકે એકમેકના પડછાયા સમી જાત્રાએ જાય 2 માં, જેમના ઉંચકાયેલા હાથ વચ્ચે આપલેમાં આક્રમથી થીજી ગયેલા નવજાત 2 બાળ, બાળ જે હતો અદલા બદલીનો એક તે હું, મને રહી રહી લાગ્યા કરે છે ગાડી હજુ પૂરપાટ દોડી રહી છે, પાછળ જોટાજોટ પાટા ભેગો બીજો સાલ્યા કરતો પડછાયો લંબાઈ રહ્યો છે, લંબાઈ રહ્યો છે। इसी का अनुवाद है हिंदी में, बिंदु भट्ट ने किया है अनुवाद। जो अनुवादक के सत्र में सुना, उनकी मैं कदर करता हूँ, अनुवादक की, जिन्होंने ये काम किया है। मैं क्यों किस मेले में भटक गया हूँ, खोजता रह गया खुद को किस गांव और प्रदेश में, थी तो कहाँ गई वो जननी देवकी और कहाँ बिछड़ गई माँ यशोदा, नदी नाले जंगल अंधेरी रात जैसी सुरंग में सरकती, नदी नाले जंगल पहाड़ की आग में आग को जो भेदती, सुने देहाती स्टेशन की गुमसुम लैम्प पोस्ट को ताकती, बंजर मैदान पर बंजारों के तंबू का अलावा लांघती, सरपट भागी जा रही है रेलगाड़ी, कौन जाने चली किस मुल्क से और कहाँ ले चली, लुढ़कते पहिए
और भड़भड़ाता डिब्बा, उसमें हिचोला खाते और झपकियाँ लेते मुसाफिर। वहाँ आमने सामने की बैठक पर एक दूसरे की परछाई सी तीरथ को जा रही थी दो माँ, जिनके बढ़ते हाथ के बीच लेने देने में आक्रांत से जम गए नवजात दो शिशु। मुझे रह रह कर लगता है गाड़ी अभी भी सरपट भागी जा रही है और बराबर पीछे पटरियों के साथ कसकती रहती वो दूसरी परछाई लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। अब सिर्फ दो कविता अनुवाद पढ़ूंगा, ओरिजिनल नहीं। मकर संक्रांति, जो पतंग उड़ाने का समय एक गांव में चला गया था और वहाँ पतंग उड़ती नहीं थी, वहाँ से शुरू किया है। मकर संक्रांति, यहाँ सालों से पतंगे नहीं उड़ती। हमारे बीच कुछ जाने माने, हमारे बीच कुछ जानते हैं, उनमें से कई सारे अनजाने हैं। एकदम छोर पर इस एक गांव में, जहां कंटीली पगडंडी और धुमेल झोंपड़े हैं, बस्ती एकदम पतली, उत्सवों की तवारीखें धुंधली है। डोर और पतंगों के जोड़ बीच उड़ान की कड़ी अभी तक बिखरी हुई है। यहाँ फूटे घड़े के जमाए हुए ठिकरों को चिथड़ों की गेंद से पल भर में बिखेर देता नंगा पुंगा एक बालक है, जिसे दूर दूर से खबर मिली तो है पतंग की उड़ने की। पतंग के बारे में उस पोते के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर उड़ते पंछी को गुलेल से गिराने वाले दादा अभी तक ढूंढ रहे हैं। अब आपको क्या बताए प्रियजन, इसमें क्या उड़ाना, पैच लड़ाना या फिर कैसी पलटी लगाकर खींच लेनी है डोर, या कायपोछे नामक उत्सव का कर देना गगन में जयघोष। कई पुश्ते बीत जाने के बाद इसी स्थान पर ऐसे ही एक पड़पोते के प्रश्न को बारे में परदादा को उत्तर में पतंग की खोज खबर मिलती तो है, लेकिन तब अपनी गांठ की खर्ची खत्म हुई थी। पतंग नहीं डोर, नहीं पेच या पलटी, तो फिर कहाँ से आए कायपोछे का जयनाद। उत्सव की बातें तो समझ लो गई गुजरी। अब एक लास्ट पोएम है, मुझे लगता है ये गुजराती पहले पढ़ लेता हूँ, छोटी है फिर। पंच महाभूत लाइक डेथ विश। પવનમાં પાણી છે એમ પાણીમાં પવન, પવન નિરાકાર હોય છે, જેવો એને વૃક્ષ ને નદી ને પહાડોનો ઘાટ મળે, એ વાયુ વા મરુત વા માતરીશ્વા શ્વાસ એવા જૂજવા નામરૂપ ધારણ કરે છે. પાણી મૂળ તો દ્રવણ, છતાં પવન ભેળવા એ ઝરણ સરિતા સાગર રૂપે અવનીથી આકાશ લગનની યાત્રા સિદ્ધ કરે છે. હે સર્વ તત્વોમાં તદ્રૂપ તદાકાર મારા સૂર્ય દેવતા, જેવો તમારી અખિલાઈમાં હું વિલીન થઈશ, સદાકાળ સચરાચરે સ્વયં પ્રકાશમાન હું થઈશ.
There is water in wind, so is the wind in water. Wind is formless, but when shape into tree, sorry. There is water in wind, so is the wind in water. Wind is formless, but when shape into tree, river, and mountains, assumes myriad names of forms of wind, hurricane, typhoon, or breath. Water is an original liquid, yet blended with air, achieves an expedition from rivulet, tributary to ocean, and from the earth to the sky. O God, Son, you have assimilated into all elements, identifying with their form and shape. As I get absorbed into moving an immovable world in totality, I will blaze, always self-luminous. Thank you. आज्ञा करना। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। जब भी गुजरात जाता हूँ मैं इस बात को कभी नहीं भूलता कि वहाँ रोज़मर्रा जीवन में लोग आज भी हवा को पवन कहते हैं। इसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूँ। हम हिंदी में पवन भूल चुके हैं, ये और जो पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे कविता पाठ आपको पता नहीं कितनी चीज़ों की याद दिलाते हैं, भारतीय भाषाओं की, भारतीय भाषाओं के समाज की, और कुछ तुलनाएं होती हैं जैसे अभी मैं कर रहा हूँ सहज ही। तो बहुत सुंदर बात है ये। फिर से दोहराता हूँ कि ऐसे काव्य पाठ आप देख रहे होंगे कि मैं एक कवि के पढ़ने के बाद मुश्किल से 1 मिनट बोलता हूँ, लेकिन वो ज़रूरी लगता है कि हम जोड़ते रहें, इसका आनंद लें। अभी मैं देख रहा हूँ पूरा सभागार भर गया है और ऐसा बहुत कम होता है। मुझे इतना आनंद आ रहा है खाली आप सबके चेहरे देखकर, कितने ध्यान से कविता सुनी जा रही। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। और अब जो है नरेंद्र पुंडरीक जी मेरे बगल में बैठे हैं। अब देखिए क्या संयोग मेरे साथ घटित हो रहा है। अभी मैंने कहा कि कलकत्ता में जन्मा, वहाँ बड़ा हुआ, कलकत्ता की याद आ गई। नरेंद्र जी बांदा के हैं, हमारे पुरखे फतेहपुर के, जो बांदा से लगा हुआ जिला है। आइए नरेंद्र जी। और जब सब लोग अपने अपने समय का ध्यान रख रहे हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ 5 से 7 मिनट। धन्यवाद प्रयाग जी। मेरे सामने बैठे हुए यशचंद जी, उर्मिला सुरेश जी, अमृता बेरा जी, तुलसी रमन जी और सियाराम शर्मा जी। पहली कविता है यकीन करो, और मेरे शहर से आए हुए अंकित कुशवाहा जी भी आए हैं, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। पहली कविता है यकीन करो। यकीन करो यह मुल्क मरे हुए लोगों का मुल्क है। यकीन करो यह मुल्क मरे हुए लोगों का मुल्क है। मरे हुए लोग खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, रोज हाट बाजार जाते हैं, सौदा सुल्फ भर भर कर झोलों में लाते हैं। मरे हुए लोग संख्या में बहुत अधिक होते हैं, लेकिन इन मरे हुए लोगों की बात न पूछिए। मरे हुए लोग आपस में
बड़े 30 मारखां होते हैं। बूंदी का एक किला रोज ढहाते हैं, बूंदी का एक किला रोज ढहाते हैं। गोरी और गजनवी यही थे, अकबर और औरंगजेब की सेना में भी यही थे। क्लाइव और डलहौजी की तोपों में यही गोले भरते थे, यही चुन चुन कर निशाना लगाते थे। मरे हुए लोग रात के अंधेरे में मुल्क का फाटक खोलते हैं, मरे हुए लोग रात के अंधेरे में मुल्क का फाटक खोलते हैं। अपने किले खुद ढहाते हैं, अपने किले खुद ढहाते हैं। मरे हुए लोगों को ईरानी, तुरानी, गोरे और काले से मतलब नहीं होता। जो गद्दी में आता है उससे ही होता है इनका नाता, जो गद्दी में आता है उससे ही होता है इनका सगा नाता। सगा नाता निभाते निभाते ये मरे हुए लोग अपना ताबूत खुद बनाते हैं और खुद उसमें दफन होते हैं। अपना ताबूत खुद बनाते हैं, खुद उसमें दफन होते हैं। ये मरे हुए लोग भूख में हंसते हैं, बेकारी में ठहाका लगाते हैं। भूख में हंसते हैं, बेकारी में ठहाका लगाते हैं। ये मरे हुए लोग विधान के हर खांचे में फिट हो जाते हैं। ये मरे हुए लोग विधान के हर खांचे में फिट हो जाते हैं। वैसे ही मोड़ लेते हैं अपने हाथ पांव, वैसे ही मोड़ लेते हैं अपने हाथ पांव, वैसे ही अपने पेट में घुसा लेते हैं अपना सिर। बेहद कमाल के होते हैं ये मरे हुए लोग। दूसरी कविता है, किस बूते अपनी धरती में टिकते। जब मैं पैदा हुआ था चांद में बैठी बुढ़िया, चांद में बैठी एक बुढ़िया की चर्चा हो रही थी। हर आदमी के बुढ़िया के काम के बारे में हर आदमी के अलग अलग विचार थे। 50 साल के आसपास गुजर रहे पिता इन दिनों काफ़ी हलाकान थे। गांव में चर्चा में थे। देश में इन दिनों चर्चा में थे पंचशील, देश में इन दिनों चर्चा में थे पंचशील, जिन्हें लेकर नेहरू हर हफ्ते विदेश जाते थे। बदले में ले आते थे गेहूं, जो इन दिनों हमारे गांव में पैदा नहीं होता था। हम लगातार 15 साल तक अमेरिका का गेहूं खाते रहे। हम लगातार 15 साल तक अमेरिका का गेहूं खाते रहे, अपने खेतों के कांस कुछ से जूझते रहे। धीरे धीरे नेहरू बूढ़े हुए और हमारी चिंता में घुलते हुए खत्म हो गए। नेहरू जब खत्म हुए उस समय हम भाखड़ा नांगल का पाठ अपनी कक्षा में पढ़ रहे थे। हमारे खेतों में गेहूं उगने की शुरुआत हो गई थी। इन 15 सालों के बीच में मुझे जहाँ तक याद है, गांव का एक भी आदमी अपने खेतों में फांसी लगाकर नहीं मरा था। भूख थी, भूख थी, भूख की चिंता आंखों में नहीं दिखाई देती थी। आंखों में भूख से लड़ने के सपने थे। भूख भी हमारी थी और सपने भी हमारे थे। भूख और सपनों से मिला जुला मन हमें फांसी लटकने से बचाता रहा। भूख और सपने से मिला जुला मन हमें फांसी लटकने से बचाता रहा। हम सब कुछ को सहते हुए अपने सपनों को बचाए रहे। धीरे धीरे हमारी आंखों के सपने खेतों में न उगकर बाजार में उगने लगे। धीरे धीरे हमारे आंखों के सपने खेतों में न उगकर बाजार में उगने लगे। तो किस बूते अपनी धरती में टिकते हमारे पैर। जब आंखों के सपने चुक जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, इसे हत्या कहें तो ठीक, आत्महत्या कहें तो आपकी मर्जी। एक कविता माँ पर है। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन बेधड़क दौड़ती रहती थी। बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों के छुक छुक छक छक। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ, अचानक नहीं टूटी।
पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे कि बुढ़ा रही है माँ। हम देखते रहे और मानते रहे कि बुढ़ा रही है माँ। माँ के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे, उसके बूढ़े होने की आदत। माँ के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे, उसके बूढ़े होने की आदत, और अपनी हर आवाज में धीरे धीरे टूटती रही माँ। हाथों हाथ रहती माँ, हाथों हाथ रहती माँ, एक दिन हमारे कंधों में आ गई। हाथों हाथ रहती माँ, एक दिन हमारे कंधों में आ गई। धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने प्रसव कंधों में माँ का भारी होना। धीरे धीरे हम महसूस करने लगे अपने कंधों में माँ का भारी होना। जब तक जीवित रही माँ, हम बदलते रहे अपने कंधे। जब तक जीवित रही माँ, हम बदलते रहे अपने कंधे। माँ आखिर माँ ही तो है, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ। और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे। धन्यवाद। नहीं यहाँ नहीं। हेलो, सबसे पहले तो आप लोग जो खड़े हुए हो उनसे कहना है कि यहाँ आगे जगह है, आप आकर बैठ जाओ। आगे आगे भी जगह है। आगे आ जाइए और दरवाज़ा कृपया बंद कर लीजिए। दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। मेरे ख्याल में राजीव कुमार नहीं हैं, तो अब मैं आग्रह करूंगा सतीश विमल जी को, कश्मीरी के कवि और हिंदी में भी लिखते हैं और हिंदी के लोग भी इनको जानते हैं। अब सतीश जी, आपसे भी वही आग्रह है जो सबसे किया है कि समय मैं देख रहा हूँ कितना कम रह गया है कि 5-7 मिनट, उससे भी कम। मैं कश्मीरी का कवि हूँ, तो पहले कश्मीरी भाषा में कुछ लाइंस पढ़ना ज़रूर चाहूँगा। भाषा का रसास्वादन कराने के लिए 2-3 लोगों को छोड़ के मेरे बहुत अच्छे कश्मीरी भाषा के प्रतिनिधि लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बोसुस सुइसुकाकुद यत्सल्यूकुत क्रिंचट दग वचस किरमिज गुलालस। बोसुस सुइसुकाकुद यत्सल्यूकुत क्रिंचट दग वचस किरमिज गुलालस। चली छत का तुमशरबत बुरूदुस बस सोहे बावत गहे जानस करा वन बुन गहे रूहस परा मरसी। लबुस मत एक छप दो पहरे मंज पुशरोवनस नारस बजावुस नो अलुकाकुद मतस पल प्रथंगस किरमिज गुलाले तुरूहस लच क्रिंचट। मगर मोतोस वतित उन सोर सु बदनुक नूर समृत तो रूहस मज कोरुन अख्ताब रोशन। छुमोत म्यानन रलन पठ बगरावा शफा दादन खता सावन सुपरिश। तजा फतलन गरा मज आब प्यालन बुछुस तवीज ने मजकत सब्दा जुआ बुनि छुस बसुई तहरीर चोने बोसु सुई सुकाकुत यत्सल्यूकुत। और अब कुछ छोटी छोटी कविताओं के हिंदी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, अनुवाद। आशा आप पसंद करेंगे। एक छोटी कविता है कि नहीं बनी कोई योजना तभी हुई भविष्यवाणी।
नहीं बनी कोई योजना तभी हुई भविष्यवाणी, भविष्यवाणियां नपुंसकों की गीताएं हैं। वो कभी नदी पर नहाने नहीं आया, वो कभी नदी पर नहाने नहीं आया, उसे तैरना नहीं आता था। कहता था तभी नदी पर आऊंगा नहाने जब तैरना सीख लूंगा। एक उम्र के बाद वो मर गया, तैरना सीख गया, तभी अपने श्राद्ध में आया है नदी पर। धूप दिवस में सोने के बाद, धूप दिवस में सोने वाले से सूर्य कभी आग्रह नहीं करता जागने का। धूप दिवस में सोने वाले से सूर्य कभी आग्रह नहीं करता जागने का। बाग से गुजरने वाले रोजेदार से फल से लदा वृक्ष कभी नहीं कहता आहार कर। सत्य गूंगे की तरह गुजर जाता है, उसका कोई साथ चले न चले। शताब्दियां बीत गईं, पंडित सागर किनारे प्रतीक्षा करते रहे नमक के टीलों का। शताब्दियां बीत गईं, पंडित सागर किनारे प्रतीक्षा करते रहे नमक के टीलों का। जो कूद पड़े थे सागर में एक विवाद सुलझाने कि सागर की गहराई क्या है। गहराई जानने वाला किनारे पे लौट के आता कहाँ है। और एक अंतिम कविता, जहां दुनिया समाप्त हो जाती है वहां एक तख्ती लगी है, लिखा है जिस पर दुनिया का अंत यही है। तख्ती पढ़कर लौट जाते हैं सारे यहीं से। उस तख्ती के दूसरे पासे लिखा है एक नई दुनिया आगे है। तख्ती के दो पासे पढ़ना कौन सिखाए। धन्यवाद। हेलो, हाँ चालू। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, सतीश विमल जी को मैंने पहली बार सुना, पढ़ता तो रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा। एक बात कहने वाली है कि भारतीय भाषाओं में से हम हर एक को नहीं समझ सकते, पर उसकी ध्वनियाँ जब सुनते हैं, कश्मीरी अभी जिस तरह सुनी, वही एक संगीत की तरह लगती है और उसकी भाषा ही ऐसी है। आपका बहुत आभार। इतना समय का भी आपने ध्यान रखा, मुश्किल से 7 मिनट 6 मिनट। अब यही आग्रह रामेश्वर से है, नुमाई रेब्रा आइए पढ़िए। सबसे प्रणाम। मेरा पैरा कविता का नाम अंगोबो खुनु मणिपुरी, हिंदी में सफ़ेद कबूतर। मणिपुरी भी जरूर पढ़िएगा। एक कविता एक। हाँ। अंगोबो खुनु खुल्लगा पुरे युमदा लंबीदा तारंबा थमोय अमा अइना। खुल्लगा पुरे युमदा लंबीदा तारंबा थमोय अमा अइना। खंगौदना ओनख्रे थमोयदना अंगोबो इनपी। खंगौदना ओनख्रे थमोयदना अंगोबो इनपी। पाखतुना येंगहल्ली इमादा इसिन इनाउसिंदा मथंग मथंग अइना। मधुदगिदी इंसिनबेरे इनपीदो नुसिरबी इमागी मनंगंदा नुसिरबी इमागी मनंगंदा अंगकपनी अंगकपनी। इनपीदो इलुबदगी ओनख्रे इमादो असिवाक्सांग अमा। हाइनै पाप चेंद्रिबा खुन्ना नुसिबा सेरेंग इरबदी ओलक्कनी अंगोबो खुनु ओलक्कनी अंगोबो खुनु। इरगे खले नुसिबा सेरेंग
इमाद कुबलिबा अंगोबो इनफिदा वलकनबा अंगोबो खुनु नुमित खुदिंग यंगजबा फंगनबा महापु अदुबु खंजानरी लांगतकनरी वाखन ओइरिबराइबु पाप चेंदबा निंथागिनवा अइना सेरेंग इरागा अंगोबइना फिदा हिंगलकद्रा इमाबो अंगोबो खुनु ओइना नुंसीबगी पाउजेन संदोकनबा मालेमदा नुंसीबगी पाउजेन संदोकनबा मालेमदा धन्यवाद। मेरा हिंदी में पैरा कविता का नाम सफेद कबूतर। रास्ते पर पड़ा था एक दिन, उठा लाया मैं उस दिन को, अचानक बदल गया वह दिन। एक सफेद ओढ़नी गबर कर मैंने दिखाया माँ भाई बहनों को, एक के बाद एक मैंने उसे ओढ़ लिया अंशबद्ध। ओढ़ने के बाद माँ बन गई एक लाश। अक्सर कहते हैं अगर पपरित हा सेठ कई कविता लिखे, अपर पपरित का हाथ से कई कविता लिखे तो बदल जाती है वह कविता सफेद कबूतर। सोचो लिखूं कविता उस कफन पर जो माँ को ढक रहा है, तब बन जाए माँ सफेद कबूतर और दिखूं रोज उसको। मगर मैं घबरा जाता, सोचता हूँ क्या मैं पपरित हूँ जैसे माँ के गोद में नन्हा सा बचा। किया मैंने लिखाने के बाद जीवित हो उठेगी मेरी माँ, एक सफेद कबूतर के रूप में शांति का पैगाम फैलाने के लिए धन्यवाद। मेरे दूसरा कविता का नाम तोहफा। कोई देख न ले मेरे खेल मधुर के में, इसलिए हर जगह छुपाकर ले जनता। जहाँ तक कि नना है दोने के भी, माँ दरवा सौंपा गया वह बम। देख लिए मैंने अपनी पत्नी को तोहफे के रूप में, नई बम के ऊपर हेतु। धन्यवाद। मेरे तीसरा कविता का नाम मृत्युलोक। मैं इस बरबुदान स्नान पर खता पिता छोटा सकता। सोचना था कभी यहाँ मृत्युलोक है, इसलिए मैं जीवित होकर भी सुन नहीं सकता, हाथ चला नहीं सकता, अपना विचार पका नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, नहीं हो सकता जीवित व्यक्ति। सोचना था कभी यहाँ मृत्युलोक है, इसलिए मैं जीवित होकर भी सुन नहीं सकता, हाथ चला नहीं सकता, अपना विचार प्रकार नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, नहीं हो सकता जीवित व्यक्ति। मृत्यु की तरह सांस लेना है, खाना है, हिलना है, चलना है, बोना है, गाना है, सुना है, जीवित जीना हूँ इस मृत्युलोक पर, ना बुना है। धन्यवाद। धन्यवाद रामेश्वर, इतनी सुंदर कविताएं आपने सुनाई। अब मैं आग्रह करूंगा इंद्रजीत भालेराव जी से, जो मराठी के कवि हैं। मैं भी इनको सुनने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि इसके पहले इनको सुना नहीं है। दो एक चीज़ें पढ़ी जरूर हैं। और मराठी में एक कविता जरूर पढ़िए, फिर चाहें तो आप हिंदी में पढ़ें, अंग्रेजी में पढ़ें। तशा कविता इथं चालणार नाहीत म्हणून अनुवाद केला नाही.
ठीक. हो. काट्या कुट्याचा तुडवीत रस्ता, माझ्या गावाकडं चल माझ्या दोस्ता. काट्या कुट्याचा तुडवीत रस्ता, माझ्या गावाकडं चल माझ्या दोस्ता. कशी उन्हात उन्हात तळतात माणसं, कशी मातीत मातीत मळतात माणसं. कशी खातात जीवाला खस्ता, माझ्या गावाकडं चल माझ्या दोस्ता. काट्या कुट्याचा तुडवीत रस्ता, माझ्या गावाकडं चल माझ्या दोस्ता. आणि एक गद्य कविता मराठीत म्हणून दाखवतो. बाप म्हणायचा काढलेली नख दारात कधीच नये टाकू. बाप म्हणायचा काढलेली नख दारात कधीच नये टाकू. दाणे समजून खातात चिमण्या आणि मरतात आतडी फाटू फाटू. दाणे समजून खातात चिमण्या आणि मरतात आतडी फाटू फाटू. सुगी संपली की बाप देवळात नेऊन कणस बांधायचा. सुगी संपली की बाप देवळात नेऊन कणस बांधायचा. सुगीत हाकललेल्या चिमण्यांसाठी पाण्याचं मडकं बांधून पुण्य सांधायचा. पाखरं असल्या तरी ओळखायच्या बापाच्या मणीचा भाव. पाखरं असल्या तरी ओळखायच्या बापाच्या मणीचा भाव. तेव्हा सुगी संपली तरी चिमण्या सोडीत नसायच्या गाव. तेव्हा सुगी संपली तरी चिमण्या सोडीत नसायचा गाव. अब कुछ मेरी कविताओं का हिंदी अनुवाद. बहुत छोटी छोटी कविता है. पहली कविता है, ऐ मेरे फटे टूटे लोगों, ऐ मेरे फटे टूटे लोगों, मेरे फटे टूटे शब्द उजले उजले सोने के हो गए. आपका फटा टूटा आंग तन ढांकने से, आपका फटा टूटा तन ढांकने से. और अब जो मराठी में बोली थी कविता वो गौरेया, गौरेया के बारे में. चिमनिया, गौरेया, स्पैरो. पिताजी कहते थे काटे हुए नाखून आंगन में कभी मत फेंकना. पिताजी कहते थे काटे हुए नाखून आंगन में कभी मत फेंकना. दाना समझकर खाती है गौरेया और आंतड़ियां टूट टूट कर उन्हें पड़ता है मरना. दाना समझकर खाती है गौरेया और आंतड़ियां टूट टूट कर उन्हें पड़ता है मरना. फसल कटाई खत्म होते ही पिताजी मंदिर में अनाज के भूटे बांधते थे. फसल कटाई खत्म होते ही पिताजी मंदिर में अनाज के भूटे बांधते थे. फसल कटाई के दिनों उड़ाए हुए पंछियों के लिए पानी का मटका टांग कर पुण्य कमाते थे. फसल कटाई के दिन उड़ाए पंछियों के लिए पानी का मटका टांग कर पुण्य कमाते थे. पंछी होकर भी जानती थी वो पिताजी का मनोभाव. पंछी होकर भी जानती थी वो पिताजी का मनोभाव. फसल कटाई होने पर भी गौरेया तब कभी नहीं छोड़ती थी गांव. फसल कटाई होने पर भी गौरेया तब कभी नहीं छोड़ती थी गांव. और अगली कविता, कविता ही नाम है उनका, मां का छोड़कर जिसने पकड़ा गलत ही महिला का आंचल. मां का छोड़कर जिसने पकड़ा गलत ही महिला का आंचल. कविता ऐसे लोगों की कभी नहीं करती कदर. कविता ऐसे लोगों की कभी नहीं करती कदर. जो पुरुष कभी भी बहन के गौने पर नहीं जाता है, जो पुरुष कभी भी बहन के गौने पर नहीं जाता है, वो कभी भी कविता की मिठास नहीं पाता है. वो कभी भी कविता की मिठास नहीं पाता है. बेटी ससुराल जाते समय जिस पुरुष के आंसू ढलते नहीं है, बेटी ससुराल जाते समय जिस पुरुष के आंसू ढलते नहीं है, उसके तो मृत्यु द्वार पर भी कविता के पांव चलते नहीं है. उसके तो
मृत्यु द्वार पर भी कविता के पांव नहीं चलते हैं। ऐसे पुरुषों से ही इतिहास काल में कविता को हमेशा डर था। ऐसे पुरुषों से ही इतिहास काल में कविता को हमेशा डर था। इसीलिए चक्की पीसती हुई नारियों के गीतों में ही कविता का घर था। इसलिए चक्की पीसती नारियों के गीतों में ही कविता का घर था। अगली कविता, ओ दुर्दैवी किसान। उस गांव के किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए थे, उनके साथ उसे भी गोली लगी थी। उस गांव के किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए थे, उनके साथ उसे भी गोली लगी थी, लेकिन वह उस वक्त मरा नहीं। विकलांग स्थिति में नाहक जिंदा रहा 14 वर्ष। विकलांग स्थिति में नाहक जिंदा रहा 14 वर्ष। अंतिम दिनों में रिश्तेदार तंग आ चुके थे उसे और उसके अस्पताल को। आखिर दिनों में रिश्तेदार तंग आ चुके थे उसे और उसके अस्पताल को। ना उसे जीने का सुख मिला, ना मरने का श्रेय। ना उसे जीने का सुख मिला, ना मरने का श्रेय। गांव में स्थापित शहीद किसानों के पुतले देखकर उसकी पत्नी दुख उमड़ आता था। गांव में स्थापित शहीद किसानों के पुतले देखकर उनकी पत्नी का दुख उमड़ आता था। उसे लगता था तभी मर जाता तो आज गांव वालों ने उसका भी पुतला सम्मान पूर्वक खड़ा कर दिया होता। शायद उसके मृत्यु का भी उत्सव हुआ होता। आते जाते लोग उन्हें अभिवादन किया करते होंगे। समय का निशाना कभी कभी ऐसा चूक जाता है। समय का निशाना कभी कभी ऐसा चूक जाता है कि जीते जी आदमी का सड़कर खाद बन जाता है। जीते जी आदमी का सड़कर खाद बन जाता है। और आखिरी कविता, लोक कथा पिताजी की। लोक कथा पिताजी की। लोक कथा में राजकुमारी का जीवन जैसे तोते में होता है, वैसे ही पिताजी का जीवन भी फसल में होता है। काश्तकार पिता। लोक कथाओं में राजकुमारी का जीवन जैसे तोते में होता है, वैसे ही पिताजी का जीवन भी फसल में होता है। तोते के पंख उतार दिए जाते हैं तो राजकुमारी के हाथ टूटकर गिर जाते हैं। तोते की गर्दन उड़ा दी जाती है तो राजकुमारी की गर्दन भी टूट जाती है। तोते की जान चली जाती है तो राजकुमारी भी मर जाती है। जब भी बारिश ने मुंह मोड़ देने से फसल सूख जाती है तो पिताजी का चेहरा भी सूख जाता है। जब भी बारिश में मुंह मोड़ देने से फसल सूख जाती है तो पिताजी का चेहरा भी सूख जाता है। फसल ने मान झुकाई तो पिताजी की मान भी झुक जाती है। और मान लीजिए कि फसल उगी ही नहीं, और मान लीजिए कि फसल उगी ही नहीं तो पिताजी खुद को मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो पिताजी खुद को मिट्टी में गाड़ देते हैं। अगर पिताजी को जिंदा रखना है, आखिरी कविता का आखिरी लफ्ज, अगर पिताजी को जिंदा रखना है तो कुछ भी करो फसल बचाओ, कुछ भी करो फसल बचाओ, कुछ भी करो फसल बचाओ। धन्यवाद। धन्यवाद इंद्रजीत। ये दिखाई पड़ा कि भारतीय कविता खासतौर पर आवाज आ रही है, बंद हो गई, अब आ रही है, अभी नहीं आई, अब आ गई है आवाज। धन्यवाद इंद्रजीत। ये दिखाई पड़ा आज कविता पाठ में कि भारतीय कविता खासतौर पर जितना हम लोग पढ़ते रहे विश्व साहित्य में, वो अस्तित्व की चिंता करती है, जन्म मृत्यु की भी बात करती है, पर वो लौकिक को बहुत सेलिब्रेट करती है। हमारे पशु पक्षी, खेती, फसलें, हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, ये बहुत सुंदर बात है। ऐसा बहुत कम देशों की कविता में मिलता है। इंद्रजीत की उन कविताओं ने याद दिलाई और सगों की बात की, जिसमें मैं अपरिचितों को शामिल कर लेता हूँ
कि जो सगे हैं वो तो सगे ही हैं, उनके इमोशंस पर जो उतने सगे नहीं हैं, कविता का विषय वो भी है। तो आपका बहुत धन्यवाद। अब बस 2 लोग बचे हैं, एस रघु बचे हैं, और ये तेलुगु भाषा के कवि हैं। तेलुगु मैंने सीखी थी किसी ज़माने में जब हैदराबाद में रहता था, पर वो भूल गया हूँ। आप एक तेलुगु में ज़रूर सुनाइएगा एक कविता, फिर उसके बाद हिंदी में या अंग्रेजी में। थैंक यू सर। हमारा कविता शीर्षक वो तेलुगु में पढ़ रहे हैं। पहले मेघ संदेशम, वो कालिदास का मेघ संदेश ने, वो रघु का मेघ संदेश। విరహాల్ని సందేశాల్ని కడుపు నిండా దాచుకొని కవుల రాయబారాల్ని మోసిన మేఘమా, మా కోసం ఒక్కసారైనా కరిగిపోవా. కదిలే నల్ల మబ్బుల్ని చూస్తే కళ్ళల్లో ఆకుపచ్చని జలస్వప్నం. ఎండిన భావులు, తడారిన గొంతులు, బీడు భూములు నీటి స్పర్శ కోసం నింగి లోతుల్లోకి ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నాయి. మేఘమదనం చేసే గాలి మోటారు హోరులో రైతు రోదనలు వినిపిస్తాయా? వాగ్దానాలు సృష్టించిన అక్షయ పాత్రలో ఎంగిలి మెతుకైనా దొరకడం లేదు. మేనిఫెస్టోల్లో ప్రవహించే పథకాల్లోంచి ఆధునిక కుబేరుల జననం. పొలాలకు హద్దుల్లాగా బ్రతుకుబాటకు సరిహద్దుల్ని కడుతుందెవరు? పొలాలకు హద్దుల్లాగా బతుకుబాటకు సరిహద్దుల్ని కడుతుందెవరు? నిర్బంధ శిబిరాల్లో నిరసన గలాల గొంతు నులిమేసిందెవరు? నిర్బంధ శిబిరాల్లో నిరసన గలాల గొంతు నులిమేసిందెవరు? బియ్యం గింజ మీద ఉద్యమ కావ్యం రాస్తున్నదెందుకు? బియ్యం గింజ మీద ఉద్యమ కావ్యం రాస్తున్నదెందుకు? కరుణించని ప్రకృతి నిశ్శబ్దంలో కరువుగానం, కరుడు కట్టిన వ్యవస్థ మౌనంలో కలలకు కాయం. కరుణించని ప్రకృతి నిశ్శబ్దంలో కరువుగానం, కరుడు కట్టిన వ్యవస్థ మౌనంలో కలలకు గాయం. మేఘమా, ఈ గాయాలను మాన్పగలవా? నా స్వప్నాలను సాకారం చేయగలవా? నీ మనసును కదిలించి ఈ నేలను తడుపుతాను. నీ మనసును కదిలించి ఈ నేలను తడుపుతాను. నీ మదిలో దాచుకున్న మెరుపును భూమిపుత్రుల పెదవులపై నాటుతాను. అవ్యవస్థ గుండెల్లో పిడుగునై దిగబడతాను. నీకోసం సరికొత్త మేఘ సందేశాన్ని రచిస్తాను. ఓ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ అన్న. మేఘ సందేశం. O cloud, you have hidden in your stomach estrangement, messages, diplomatic missions of poets. Won't you melt at least once for our sake? The sight of the dark passing clouds, fill our eyes, dream of evergreen water. Dried wells, parched throats, cracked fields, look deep with hope into the skies for a mere touch of water. Can cries of farmers be heard in the commotion of helicopters churning the clouds? Not even the leftover morsel can be found in the inexhaustible vessel of promises. Schemes that manifestos bring out give rise to modern kuberas. Who is building boundaries across the life like the fencing between fields? Who has throttled protesting voices in the detention camps? Why is a revolutionary poem being scripted on a grain of rice? Song of drought amidst the silence of unkind nature. Dreams wounded in the silence of hardest structure. O cloud, can you heal these injuries? O cloud, can you heal these injuries? Can you help me fulfill my dreams? I will melt your heart to drench this earth. I will plant the lightning hit in your heart on the lips of the sons of soil. I will charge down like a thunderbolt at the heart of disorder. For your sake, I will write a new Mega Sandesha. Thank you.
जो मंच पर बैठे कवि हैं, जिनकी कविताएं हमने सुनी हैं, उनका आभार प्रकट करता हूँ और आप सबका, और ये कह सकता हूँ कि किसी चमत्कार से, जैसे कई बार फ्लाइट में अनाउंसमेंट होता है ना कि हम पहले पहुँच गए हैं समय से, तो वैसी स्थिति हमने कर ली है सफलतापूर्वक। मेरे पास भी अभी 5-7 मिनट हैं, तो मैं आपको कुछ सुनाऊंगा, पर कुछ कहूँगा भी 2-1 मिनट, अध्यक्ष के नाते नहीं, एक कवि मित्र के नाते, कविता प्रेमी के नाते। कविता पाठ और कविता आप जानते हो कि बिल्कुल, और कविता को पढ़ना प्रिंट में और कविता का पाठ सुनना, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। और समय समय पर हम सब चाहते हैं कि हमको स्वर में कविता सुनाई पड़े, उनके जो बोल हैं वो हम सुने, वो भी कुछ बहुत कुछ कहते हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान में आती है, जो हमारे कवि, हिंदी के बड़े कवि शमशेर जी के कारण मेरे मन में आई थी कि कविता अब देखने की चीज़ भी बन गई है। किस पंक्ति में कितने शब्द हैं, अक्सर पूछे तो पाठ बहुत मुश्किल चीज़ है। अब शमशेर जी की कविता लीजिए जो हम लोगों ने पढ़ी, वो धूप कोठरी के आईने में खड़ी हंस रही है। अब इसको अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ दोगे तो वो सारी बात ही चली जाएगी। तो कहाँ धूप है, कहाँ कोठरी है, कहाँ आईना है, इस सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें हुई हैं जिनका हम लोगों को ध्यान आता है और ऐसे पाठ के समय अवश्य आता है। दूसरा ये है कि बार बार इस बात को कहता और दोहराता रहा हूँ कि भारतीय भाषाओं की जो कविता है, जो हमारी रेंज है, जो हमारा भाग्य भी है, इतनी विविधता, इतनी तरह की जीवन शैलियाँ, इतनी तरह के मुहावरे, इतनी तरह की चीज़ें अलग अलग तरह से सबके जीवन में, इन्होंने हमारे कविता संसार को बहुत बड़ा किया है। जो हमारा अपना लोक है जिसमें हम रहते हैं वो तो है ही, पर जो काव्य लोक है, हमारे यहाँ माना गया है कि जो एक काव्य लोक है, उस काव्य लोक के दर्शन ऐसे ही तो कभी कभी होते हैं, कवि को लिखते समय और जीते समय होते हैं। और आज की कविताएं सुनकर एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जितने कवि हैं हमने जिनको सुना, वो 24 घंटे वाले कवि हैं। कभी कभी लोगों को भ्रम होता है कि हम कविता लिखते हैं जिस समय वही कवि होना है। नहीं, कवि होना तो 24 घंटे कवि होना है, लिखने का समय तो 10 मिनट 5 मिनट का होता है। तो वो दिखाई पड़ा इन सबके अनुभवों में, और इन्होंने हमको जो दुनिया, जो अपने अनुभव हैं उससे बहुत संपन्न किया है। हमारी प्रकृति, हमारी समस्याएं, हमारा जीवन, ये सब आज झलका है। और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सबसे मेरा परिचय हुआ, इसके लिए मैं अपने को बधाई देता हूँ कि ये अवसर आया कि कल मैंने एक काम किया था। कई लोग जैसे अपने कार्यक्रमों के बारे में फेसबुक में कुछ लिखते हैं, मैंने कहा ऐसे नहीं, मैं कवियों के चेहरे दिखाऊं। तो मैंने गूगल से तस्वीरें ढूंढी और उनके साथ फिर वो फेसबुक पर सूचना डाली। इंद्रजीत की तस्वीर मिल गई, विमल जी की मिल गई, और नरेंद्र जी की मिल गई, जितनी मिली मुझे, गोपाल लाहिड़ी जी की मिल गई। अब हम उनको सामने देख रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। अब मेरा काम इतना ही रह गया है। कितना बजा है अभी? मैं पोएम तो सुनाऊंगा, पर वैसे बता दीजिए। 5 मिनट बहुत है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा है। एक कविता जो रघुवीर सहाय, आप जानते हो हिंदी के बड़े कवि थे, उनके साथ मैंने 10 बरस काम किया दिनमान नाम की पत्रिका में। ये उनको समर्पित है और इसको मैं अक्सर सुनाता हूँ और आज फिर सुनाने का मोह हो आया है। इसका शीर्षक है व्यंजन पकाने की विधियाँ। व्यंजन कई हैं, व्यंजन पकाने की विधियाँ भी कई हैं, स्वाद भी कई हैं ढेरों व्यंजनों के, पर व्यंजन विधियों को चकमा दे
कब कैसे स्वाद को मधुर तिक्त करते हैं, यही चमत्कार है। चाहे तो हम इसे रहस्य भी कह लें, हाथों का जस वह तो होता है। उससे भी बड़ी चीज लेकिन वह मन है जो व्यंजन पकाता है, वह अदृश्य रहता है। स्वाद जो आता है जीभ पर, जान वह कैसे यह लेता है, किस मन से व्यंजन पकाया गया। सामग्री वह तो होनी होगी, सामग्री बिन व्यंजन यह तो सुना नहीं। हाँ वह भी कैसे जुटाई गई, यह महत्वपूर्ण है। अंत तब यही होगा स्वाद का, कैसे जुटाए गए सामग्री, मन, व्यंजन, विधियां। और एक कविता आपको, बस 2 कविताएं वो 2 मिनट में पूरी हो जाएंगी। मोह तो होता है, मोह तो होता है, वृक्षों वनस्पतियों चिड़ियों से फूलों से मोह तो होता है। बाट उनकी हम जोते, मित्रों परिजनों से प्रेम बंधनों से मोह तो होता है। रहते हैं टोरते गतिविधियां इनकी हम जीवन भर, मोह तो होता है। पशुओं से नदी तट झीलों से छाह भरे रस्तों से मोह तो होता है। पहाड़ों से उनकी पगडंडियों से अंत नहीं मोह का, जीवन को थामे ही रहता है मोह। कभी फूटती रुलाई, कभी खिलखिला पड़ती हंसी, होता है बिछोह तो होता है। आड़े आ रहता है मोह के, मोह की बिछोह की गति बनी रहती है। आरोह अवरोह इनके सब चलते ही रहते हैं, बिछोह तो होता है, मोह तो होता है। और बस आखिरी कविता आंधी। रोज के रास्ते में कभी कभी आती है आंधी भी, धूल के साथ पत्ते न जाने कहाँ कहाँ से उड़कर आने लगते हैं, फिर बिछ जाते हैं सड़क पर, बदल जाता है आकाश का रंग। एक आशंका सी भी तैर आती है, यह जानते हुए भी गुजर जाएगी आंधी। वाहन कुछ चौकन्ने हो थम थम कर चलते हैं, उनकी खिड़कियां बंद की जाने लगती हैं। जो रास्ते में होते हैं वे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कुछ गिरी हुई चीज़ें दिखने लगती हैं उन्हें। कोई डाली टहनियाँ, कभी कभी पूरा पेड़ ही झुका हुआ, कभी कोई तार विलग हुआ खंभे से। ये बताते हैं कि आंधी और आगे बढ़ गई है, पर अभी थमी नहीं है। जो रास्ते में होते हैं उन्हें मिलना ही पड़ता है आंधी से अधिक, उनकी तुलना में जो होते हैं घर में आंधी के समय। धन्यवाद। In the kaleidoscope of Indian languages, the diversity is immense, but the soul remains Indian. Each dialect is a treasure, each voice a symphony of cultures, each poem a lyrical cadence. We thank Prayag Shukla ji, who chaired the session, and all our other respected poets who are present here, We thank you also. who through their poetry made a place in our hearts. भाषा कविता की एक लिमिट नहीं है, यही आज हमने महसूस किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। लंच का समय है। I request all of you to kindly proceed for lunch. Thank you.
हमारा बायोडाटा कैसा है? आप भी आ जाओ। फिर एक कविता के साथ कहाँ है आप दीजिए इधर आइए ऊपर आइए
किया गया है. I request you to kindly be seated as we are about to begin the session. So thank you for joining us for this session where we will be discussing and enumerating on the future of poetry. Can we have your attention, please? So the future of poetry in India seems promising with the changing landscape of social media and digital India. There could be many changes, but the rich literary heritage of India will be providing a strong foundation for poets to draw inspiration from, while also pushing boundaries and experimenting with new styles. This and much more will be discussed here in this session. Chairing the session is Shri Surjit Patarji, प्रख्यात पंजाबी कवि एवं लेखक हैं. आप पंजाब कला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं. आपके साथ कविता संग्रह और गद्य की एक पुस्तक प्रकाशित है और आपने कई प्रख्यात भारतीय और विदेशी लेखकों के नाटकों को रूपांतरित किया है. He is the recipient of many prestigious awards and honors, including the Padma Shri, Sahitya Academy Award, Saraswati Samman, just to name a few. He is a retired professor of Punjabi from Punjab Agricultural University, Ludhiana. On the stage, we also have amongst us Shri Amarendra Khatwaji. Is a career diplomat and writes and publishes in Oriya, English and Hindi and Spanish for many years. He has more than 40 collections of poems. Winner of many awards, he has participated as group chair or a poet in many international poetry festivals, including in Buenos Aires, Sao Paulo, Bogota, Madrid, Prague, just to name a few countries. आपने कुछ स्पेनिश लेखकों की रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद और ज्ञानपीठ के लिए अंग्रेजी में जैन साहित्य का अनुवाद किया है. आप वॉइसेस ऑफ सिविल सोसाइटी और कर्मा जर्नल के संपादक भी हैं. बहुत बहुत स्वागत करते हैं. Sir, could I ask you to please maintain silence, as it may be disturbing the other audience. And let me also remind you to please keep your mobile phones on switched off or on vibration mode. Thank you so much. मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री बसवराज सदर जी को. आकाशवाणी बेंगलुरु से सेवानिवृत्त निर्देशक हैं. आप प्रतिष्ठित कन्नड़ कवि, कहानीकार, समालोचक तथा प्रसारक हैं. आपकी विभिन्न विधाओं में 15 पुस्तकें प्रकाशित हैं तथा इतनी ही संख्या में संपादित कृतियां भी हैं. चिनार वृक्षदा अलू अनुदित कहानी संग्रह है. Or he has interviewed more than 200 eminent writers and has given voice for popular radio plays and features, apart from directing and producing them. He is recipient of more than 20 prestigious awards, including the State Sahitya Academy Award and All India Radio National and State Awards. Presently, he is General Council member of Sahitya Academy. बहुत बहुत स्वागत. हमारे साथ उपस्थित हैं श्री
Brijratan Joshi ji, currently Assistant Professor of Hindi. He has published 6 books and has also edited 16 other works. He is the former editor of Madhumati, a journal published from Rajasthan Sahitya Academy, has received Sanskriti Samvardhan Award from the government of Rajasthan and also several other state-level awards and certificates from media and literary and cultural institutions. आप भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के एसोसिएट फेलो हैं और बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा समिति के संयुक्त सचिव और राजस्थानी अकादमी उदयपुर तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों के शिक्षा मंडली के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए मंच पर स्वागत करते हैं श्री चंद्र प्रकाश देवल जी का, a noted poet, translator, editor, non-fiction writer and lexicographer. He writes in Hindi besides mother tongue Rajasthani and actively involved for the progress of Rajasthani language and literature. He has published 11 poetry collections in Rajasthani, 4 poetry collections in Hindi, and translated 8 poetry collections from various languages into Rajasthani. आपने डोगरी राजस्थानी शब्दकोश, पंजाबी राजस्थानी शब्दकोश तथा मराठी राजस्थानी शब्दकोश भी तैयार किया है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, मीरा पुरस्कार इत्यादि कई पुरस्कारों से विभूषित किया जा चुका है। के सच्चिदानंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। द्विभाषी कवि, आलोचक, नाटककार, संपादक, कथाकार एवं यायावर लेखक हैं। के सच्चिदानंद जी, I think he is not here with us. Okay, sorry. आप अंग्रेजी और अनुवाद अध्ययन के प्रोफेसर, द्वैमासिक पत्रिका इंडियन लिटरेचर के संपादक, साहित्य अकादमी के कार्यकारी प्रमुख और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में इनवाइटेड नेशनल फेलो रह चुके हैं। आपके मलयालम में 32 कविता संग्रह, अंग्रेजी में 10, हिंदी में 7 और अन्य भाषाओं में 30 संग्रह प्रकाशित हैं। वी वेलकम यू सच्चिदानंद जी। श्री शफी शौक जी इज हियर विद अस, कवि, कथाकार, अनुवादक और कोशकार हैं। आपको समकालीन जीवन की जटिलताओं के अनुरूप अपरंपरागत मुहावरों और तकनीकों का उपयोग करने के लिए जाना माना जाता है। श्री शफी शौक जी। मनजिंदर सिंह जी हमारे बीच हैं। I request him to kindly join us on stage. He's a Punjabi writer and scholar and is presently serving as Associate Professor at School of Punjabi Studies, Guru Nanak Dev University, Amritsar. His published works include so many books. He has received Junior Research Fellowship by the University Grants Commission. He's the Chairman of Board of Control, GNDU Amritsar, member Faculty of Languages, GNDU Amritsar, and a member of referee panels in various research journals of Punjabi. So we have all our eminent panelists here with us. I request the Chair, Shri Surjit Pathakji, to kindly start the proceedings. We are discussing the future of poetry in this session. Thank you. ओके सर, आप में दे देना। नीचे उतरेंगे तब हाँ जी, कोई बात नहीं। ये वाली चीज क्या? थोड़ा यहाँ कर दीजिए। ये करना हाँ वहीं पर काम बिकॉज बिल्कुल विजिबिलिटी था ही नहीं, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं था। या
प्यारे दोस्तों, सबको सादर प्रणाम। जल्दी ही वह वक्त आने वाला है जब मैं पंजाबी में बोला करूँगा और सब अपनी अपनी भाषा में सुना करेंगे। रियल टाइम ट्रांसलेशन आने वाला है, तो तब तक मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपसे कुछ बातें करूँगा। जैसे हम सब जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है फ्यूचर ऑफ पोइट्री, तो फ्यूचर ऑफ पोइट्री द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ये दोनों बहुत डीपली इंटरट्वाइंड हैं। इन दोनों का गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जो पोइट्री है, जो शायरी है, वो एट इट्स कोर इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, सैडनेस, हैप्पीनेस, search for meaning, love, loss. So this is the gamut of emotion which make us write poetry. तो मानवता का जो भविष्य है, इसके बारे में इन दिनों में हम बहुत उदास करने वाली बातें भी सुनते हैं, जिनका संबंध जलवायु से है, समुद्रों के चढ़ते सतर से है, जंग से है, और डिस्पैरिटी, जो गरीब अमीर की डिस्पैरिटी है उसके है। ये सब उदास करने वाली बातें हैं। तो किसी ने कहा कि मानव ने ऐसे जहर फैला दिया कि वो माँ के दूध तक पहुँच गया, कि इतनी जहर फैल गई, इतना पॉल्यूशन हो गया। इस सब को हम जानते हैं। और दूसरी, जिस तरह की गवर्नमेंट जैसी कतारबंदी हो रही है, कि कतारबंदी अमीर गरीब के तौर पर नहीं हो रही, वो धर्म के, जाति के नाम पर कतारबंदी हो रही है। और पत्रकारों, कवियों के लिए बोलना दिन ब दिन मुश्किल भी होता जा रहा है। सारी दुनिया में ही ये हाल है। और खुशी की बातें करने वाले भी लोग हैं जो भविष्य के बारे में खुशी की पेशीन गोई करते हैं, कि जैसे मैंने डिस्पैरिटी की बात की, तो एक किताब है जो बड़ी मशहूर, निक सर्नीचेक और एलेक्स विलियम्स की, इन्वेंटिंग द फ्यूचर। उसने लिखा है कि जल्दी ही वो वक्त आ जाएगा कि हर एक शख्स को, जिसको उन्होंने लिखा कि उनको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम हर शख्स को मिलेगी, जिससे वो अपना गुजारा चला सकेगा, जिससे वो अपने पारंपरिक जो काम करते हैं उनसे छूट जाएगा। उसके पास क्रिएटिव काम करने के लिए बहुत समय होगा। ये एक यूटोपिया या एक ख्याल, या इन्वेंटिंग द फ्यूचर, ऐसी बातें की जाती हैं। कि इस दोनों तरह की बातों के बीच, और तीसरी बात है जिसको हम बोलते हैं कि AI। किसी ने लगा कि सुनते थे AI और वह आ गई है, अब हम उसे निकाल नहीं सकते, वह हमें निकाल सकती। कि AI, जैसे कल अमरजीत गरेवाल हमारे स्कॉलर से कि AI विल आउटस्मार्ट द ह्यूमैनिटी, कि वो इतनी इंटेलिजेंट होगी कि जैसे तुलना भी करते हैं कि तब AI और मानव का रिश्ता ऐसे होगा जैसे AI आइंस्टाइन हो और मैं एक तितली हूँ या मक्खी हूँ, कि इतनी AI के पास इतनी इंटेलिजेंस होगी। ये एक
दोनों की खुशी और गम की दोनों की बात है एआई का ऐसे होना, और एआई के चमत्कार बड़े होंगे। एआई ने मुझे कहा कि अब केएल सहगल की आवाज़ में भी आप अपनी गज़ल सुन सकते हैं, कि जो 47 में विदा हो गए थे उसकी आवाज़ में भी अब नए पोइट्स की गज़लें आप सुन सकते हैं, कि ऐसा भी एआई करिश्मा करेगी। खैर वक्त कोई भी हो, बुरे या भले, कविता तो लिखी ही जाएगी। जैसे ब्रेख्त का एक मशहूर कोट है कि इन द डार्क टाइम्स विल देयर बी सिंगिंग, यस देयर विल बी सिंगिंग अबाउट द डार्क टाइम्स। क्या बुरे वक्तों में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, बुरे वक्तों में भी गीत गाए जाएंगे, बुरे वक्तों के बारे में। और ये भी कुछ लोग कहते हैं कि बुरे वक्त अच्छी कविता के लिए अच्छे होते हैं, कि बुरे वक्तों में अच्छी कविता लिखी जाती है। पर एक जगह ब्रेख्त ये भी कहते हैं कि शायरी सिर्फ समय का आईना नहीं होती, शायरी सिर्फ मिरर टू लाइफ नहीं है, शायरी एक औजार भी है जो समय की पुनर्सृजना के काम आता है। सो मैं एक बात ऐड करता हूं कि शायरी आईना भी होगी, शायरी औजार भी होगी, लेकिन शायरी भी होगी। यहां पूछा जा सकता है कि शायरी क्या होती है? शायरी सिर्फ अनुभव नहीं होती, शायरी स्टेटस को के बदलने की चाहत ही नहीं होती, शायरी क्रिएटिविटी का चमत्कार भी होता है। क्रिएटिविटी भी शायरी का एक बहुत बड़ा इशू है। जब गुरु नानक सिद्धों और नाथों के पास गए तो नाथों ने उन्हें बहुत चमत्कार दिखाए, उन्हें पानी को मोती बना लिया, उड़ने लगे हवा में। तो गुरु नानक को कहने लगे कि अब आप भी कोई चमत्कार दिखाओ। तो गुरु नानक ने कहा कि बाजों सच्चे नाम के होर करामात असाथे नहीं, कि मेरे पास शब्द के सिवा और कोई करामात नहीं है, मेरे पास शब्द की करामात ही है, मेरे पास मीनिंग मेकिंग की करामात ही है। तो वह करामात उन्होंने दिखाई भी। जैसे हम सोचते कि जब तक आरती रची नहीं गई थी, गुरु नानक की वाणी में आरती नहीं थी रची गई, तब तक आसमान में सितारे थे, आसमान को बहुत तुलनाएं देगी, हवा भी थी। लेकिन आरती उच्चारण के बाद आसमान आरती का थाल बन गया। गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो, कि उस शब्द के उतारने से एक पल पहले ये ब्रह्मांड आरती नहीं था, ये कुछ और हो सकता है, लेकिन ये एक करामात शब्द की या मीनिंग मेकिंग की एक करामात थी। तो कल शाम के एक बहुत दिलचस्प और सार्थक सेशन इस विषय पर था, टेक्नोलॉजी और साहित्य। तो इसका ताल्लुक हमसे भी होगा डेफिनेटली, कि हम इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। तो उस सेशन में बहुत महत्वपूर्ण बातें अमरजीत गरेवाल, हमारे थिंकर एंड प्ले राइट, पुष्पक जी और अशोक चक्रधर जी ने की। उन सब बातों का ताल्लुक आज के सेशन से भी है। कुछ दिन पहले मैंने जेमिनी आई को एक थीम दिया। मैंने कहा कि मैं लिखा आई एम ए ट्री, कि इस विषय पर मुझे 4 कविताएं दो, एक एलियट के स्टाइल में हो, एक डब्ल्यू येट्स के स्टाइल में हो, एक पाब्लो नेरूदा के स्टाइल में हो, एक ओक्टावियो पाज के स्टाइल में हो। तो बहुत मिलते जुलते स्टाइल वाली उसने 4 कविताएं मुझे एआई ने दी। तो ये भी हैरान करने वाली बात थी। मैं उन कविताओं के मैंने नोट्स भी लिए, मैं नहीं पढ़ता कि उसमें कोई और आदमी जो एनालिसिस कर सकता हो वो कर सकता है। तो एआई कवि को काफिये दे सकती है, जितने भी काफिये उसको चाहिए,
और शब्दों के बदल दे सकती है। आने वाले दिनों में आपकी बहर और छंद भी ठीक कर सकती है। पर्शियन में ये हो रहा है, पर्शियन पोइट्री में, कि वो आपकी बहर चेक कर लेती है, ये कि बहर ठीक है या ठीक नहीं है। सो नई टेक्नोलॉजी जिसका भविष्य के फ्यूचर के साथ है। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदला। किसी ने लेख लिखा कि जब से मोबाइल आया है बेवफाई और आज़ादी बढ़ गई है, कि मोबाइल टेक्नोलॉजी एक हमारे रिलेशनशिप्स पर, रिश्तों पर भी अपना असर डालती है। और नई तुलने, नए कंपैरिजन्स भी उसमें आते हैं। जो आखिरी बात मैं करनी चाहता हूँ वो है मेटाफर्स के बारे में, कि ये फिर मैं यानी ये के साथ मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि कभी जब किसी चीज़ को तुलना देता है किसी चीज़ से, तो वो सिर्फ आर्ट नहीं होती। कि जैसे हाशिम शाह पंजाबी के एक शायर हैं, वो कहते हैं कि सूरज आँख नहीं ये चढ़िया ये चिखा बड़े आसमाने, कि ये सूरज नहीं है आसमान में, ये तो चिता बल रही है। सो ये सूरज के बारे में कविता उतनी नहीं है जितनी हाशिम शाह के अपने मन के बारे में है, कि उसको सूरज चिता की समान ही क्यों लगा, कि उसके मन की दशा क्या होगी, या उसके टाइम्स क्या होंगे, तब किसका राज होगा। तो वो सबको मेटाफर एक मिस्टीरियस चीज़ है कि आपको यानी मेटाफर जो है वो हम कहते हैं कि सब कॉन्शियस से आता है, कि उसका ताल्लुक कला से भी है लेकिन आपकी साइकोलॉजी साइकी से भी है। और एक मेरा और तजर्बा है कि एक कविता थी कि झरना बहता, किसी कवि ने कहा कि झरना बहता इस तरह लगता है जैसे किसी की पीठ पर लंबे लंबे केस लहरा रहे हों। एक तुलना है या एक कंपैरिजन है मेटाफर। और जो दूसरा कंपैरिजन था उसमें है कि एक चीनी कवि लिखता है कि जो वाटरफॉल है, जो झरना है, वो बहता ऐसे लगता है जैसे कि रब मेरी भाषा में कविता लिख रहा हो। कि जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ वो नीचे को मैंडी लिखी जाती, कि जैसे रब मेरी भाषा में कविता लिख रहा हो, और ऊपर से आती नीचे सतरें और अनदिसदे इनविजिबल हैंड से वो लिखा जा रहा सब। लेकिन जो एक कविता ज़ेब निसा जो औरंगज़ेब की बेटी थी, वो कवि भी थी तो शायरा थी। सो उसने कहा, यानी उसकी जो लाइनें हैं वो लिखती है कि झरना बहता इस तरह लगता है जैसे पत्थरों पर माथा पटक पटक के कोई रो रहा हो। सो ये झरना ज़ेब निसा को ऐसा क्यों लगा, उसके पीछे ये बात है कि ज़ेब निसा ने क्या कुछ देखा था अपने जीवन काल में, कितने दुख देखे, कितने जुल्म होते देखे, अपने दादा को कैद हुआ देता। सो ये जो काम है ये एआई की बस का काम नहीं है कि इस ऐसे मेटाफर पैदा करने में जो ह्यूमन माइंड जो दिल होगा वही उसका वो काम कर सकता है। तो कल अमरजीत गरेवाल ने कहा कि जो एआई है वो कवि की हेल्प कर सकती है कविता लिखने में, कि एआई और कवि मिलके कोलैबोरेशन कर सकते हैं पोइट्री में। कि वो यानी एक आइडिया है कि वहाँ वो कहीं हेल्प कर सकती है कि उसको अगर उसने किसी जंग की जो जंग के बारे में कविता, तो जंग में क्या क्या होता वो शायद उसके पास बहुत मटेरियल होगा एआई के पास जो मेरे पास नहीं होगा। तो एक जो आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ भविष्य की पोइट्री के बारे में को, एक तो यह है कि पोइट्री का भविष्य हमेशा ही रहेगा जब तक हम में कामना, चाहत, इमोशंस, विषकाम के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी हैं, तब तक भी पोइट्री रहेगी और पोइट्री को
पढ़ने वाले भी रहेंगे। लेकिन एक जो बहुत किसी ने मुझे ऐसी बात कही कि एक जैसे उसने कहा कि एक वक्त आएगा कि ऐसी एक चिप बन जाएगी जो आपके जिस्म से चिपका दे, तो जो आप सोच रहे हैं वो भाषा में अनुवाद हो जाएगा। कि हम सब जैसे पोइट्री है कि हम पोइट्री में हम मेटाफर में बहुत छुपा के बातें कुछ कहते हैं कि मैं इसको कुछ को हाइड भी करना चाहता हूँ, मैं कुछ शो भी करना चाहता हूँ। तो वो एक खेल है। और इस सब से हमारे रिश्तों में कैसा असर होगा, हमारे लव में कैसा असर होगा, तो ये सब चैलेंजेस जो हैं वो भविष्य की पोइट्री के, फ्यूचर की पोइट्री के आगे हैं। तो हमारे साथ बहुत बड़े कवि, चिंतक और बहुत सी लैंग्वेजेस के कवि हैं। तो ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग होने वाला है। सो इन शब्दों के साथ मैं अब जो जैसी लिस्ट जो मुझे मिली है उसके अनुसार मैं अमरिंदर खटका जी को अपनी बात कहने के लिए बेनती करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. We are 7 speakers. All are eminent. I'll take my 10 minutes. The eminent conductor coordinator spoke a lot about artificial intelligence. Few days back, 2 days back, A.J. Thomas has edited a book, Greatest Short Stories of Malayalam Language. In that discussion, it was pointed out that first short story fiction in Malayalam literature came in 1891. Before that, poetry used to express everything. The play, the short story, the novel, everything. Second part, why AI approach is limited, we are talking about India. 1450 million population, 550 million poor who are perpetually struggling for defining dreams. 450 million middle class, perpetually in the market of crisis of expectations. 350 rich public sector government employees, they work as per the roster. This is vertically divided by rural India, urban India, horizontally rich India, poor India. Which India we are talking about? Which AI we are talking about? Our AI is our beginning. So, I am basically a poet. I write in 4 languages, but I'm in touch with thousands of poets all over India, all the languages, people who are here. What I will talk about in the future of poetry, what is happening now and what is the future. Say, few definitions like bhakti as poetry, protest as poetry, self-searching as poetry, existential angst as poetry, those have not changed at all. What has changed? Expression, the way we express it. Say, for example, Dalit poet, I won't tell you the name, the poet from Nagpur, he has written like this: now the land is free, my legs are broken. Can you hold my hands? The fingers are pointed towards you. This is transitional poetry. There is no opposition, no nothing, not shouting against anybody. But say transgender poetry, like partly it is my role to bring transgender writers to Sahitya Academy. In fact, Mallika, she's not here. She just got the award in Kerala government, Sahitya Academy member. She has written, same emotion enacted inside an acceptance is you. My waiting just began. Again, these powerful things were there, continuity were there, but now the expression has become sharp. Tradition is playing a big role, but we are rediscovering it. We are redefining it. We are trying to make it convenient to our AI generation, our modernity, our going out, our diaspora mentality.
Then, when we are talking about poetry, unlike prose, poetry depends too much on pretext. Text and context that is common to all literary forms. But this pretext is very, very important because the poet is trying to define not only the language, not only the expression, not only the imagery, but the gamut of emotion is going to bring to the readers. That's not an easy task at all. Some of the major future poets, like I was just talking to before coming here, like Telugu poet K. Siva Reddy, Tamil poet R. Cheran, Bengali poet Indranil Ghosh, Dalit poet Urmila Pawar, transgender Vijayaraja Mallika, Northeastern Ravin Gangam. I was speaking to them and saying, what do you think about future of poetry? He says that in Sahitya Academy you can talk about many things. AI controlling poetry, mass movement creating poetry. But end of the day, poetry also will remain essentially an individual act. Through acceptance, through readership, it will become bigger. Post-COVID, book publication has gone down by 37%. Poetry publication almost by 47%. Today, to publish your poetry book, many people pay, which is very strange, but this is the truth. So therefore, when we are talking about future of poetry, we should not be worried at all. Poetry will continue, but the continuity is affected by crisis of expectation of the youth, protest which is coming all over Indian society, because as I told you, it is unity in diversity. When you are talking about diversity, there is transition, there is suffering, and there is different kind of expression, plus experimentalism. I believe future of poetry in India will be good as it was. Thank you. सो अमरिंदर खटको जी के बाद मैं गुजारिश करता हूँ ब्रजरत्न ने आपका बसवराज सादर। सो बहुत बहुत शुक्रिया बसवराज सादर। Respected chairperson and senior writers and distinguished audience, good afternoon to everyone. Originally, I have written my speech in Kannada since I belong to Karnataka. That's the language problem. And this has been translated in English by one of the senior English professor, Dr. C. Nagarna, who is from Mysore University. So I straightway present my written scripts. I am starting with a personal example to talk about the future of poetry. It is an episode dealing with a tragic incident of corona and an additional infliction of black fungus. Both gripped me almost simultaneously, making me have a glimpse of death, not once but thrice. They had put me in the ICU. Whenever the doctors came and talked to me, whenever I opened my eyes, I used to be jotted with fear. They used to inject to me through tubes the most effective drug called amphotericin, which was also very costly. This drug was supposed to destroy the viruses once, not only once, but for all. In order to conceal the flow of the drug, the tube they wrapped with an opaque sheet. Since the sheet was accidentally torn at a place, I was able to see the dripping of the drug. Observing that, I have screamed aloud, "Oh God, something is happening here." Hearing that, the nurse had rushed in and asked her what has happened. As an answer, I said, "Sister, see there, something is dripping there."
She said, laughing, "Sir, you mean that tottu?" Tottu means drop in Kannada, tottu. You mean that tottu, drop? It is the self-same medicine which is saving you from the death. Nothing will happen, sir. You just relax. She went away after consoling me and covering the tear on the wrapper. The moment she uttered the word tottu, that is drop, it raised a wonderful feeling, and even amidst the unbearable pains and half-consciousness state, it had fallen on my ears as a life-saving voice. I don't know where that poem tottu, drop, was residing within me. It just jetted out at once. The small poem is like this, drop. This dripping drop is bringing a rebirth. Now I should come out overcoming shyness. Now I should come out overcoming shyness, resolving to live again. At the moment when my life force was ebbing away, the word tottu, that is drop, has created two effects in me. One was that I was beginning to recover slowly, and another was that a new genre of poetry called tottu, that is drop, had sprouted within me. That drop, tottu, which came into being in such a fashion, caused me to write tottu, drop poems, a new type of poems in Kannada, and from that time, I started to write that tottu poem. It went up to 365 days. After 365 days, I was able to bring out the collection in the name of tottu, that is drop, and still it is going on. And even today, every day after 4 p.m., that tottu is being written and uploaded to thousands of Kannada people, and they are admiring it. This incident has made me realize that poetry is every day fresh and ever new. Through this personal experience, I have understood the poetry moves forwards continuously, acquiring new words and phrases and new forms and structures. Such a development is an indicator of future of poetry. But it is impossible to say that in future it will continue to stay in the same fashion, because so many factors come into play determining the flow of the poetry. When we are dealing with the future of poetry, we cannot refrain from referring to the most important thing called tradition. Because poetry of a given period will not result all of a sudden. It assumes its new dimension from its old incarnation and moves on. Apare kavya samsare kavireva prajapatihi yatheva rochate vishwam tatedham parivartate. Although we can endorse this opinion of aestheticians, what we must remember is that even if a poet of a particular period is extraordinarily gifted, what guides his talent and inspiration is his tradition. Therefore, it is imperative that in determining the future of poetry, the literary tradition of the past plays a very significant role. Poetry in general is a response and reaction by the writer to his times. Therefore, the future of poetry is determined by the development of a given period. Considering this truth, we have to infer that the poets of the current period are not reflecting the reality in their creations as expected. The marauding wars in the world at present have been horrific and deadly. Because of political conflicts, world peace has become a mirage. Racial violence against women and children have crossed all limits. Corruption, violation in the election process have been compounded by the developments that are undermining the very basis of the culture and language. When such anti-life developments are taking place, it is saddening to note that the poetry of the protest and rejection of the violence is not being produced in an adequate measure. Looking at all this, one wonders whether our writers' freedom of expression is controlled by invisible hands, or may our writers are afraid of encountering the forces which have grown larger than life. This is sure indication that it is detrimental to the emergence of creative writing itself. Additionally, one sets feeling whether the writer is working towards selfish ends
keeping an eye on rewards, positions, recognitions, besides minority games. Human sensibilities and fraternal feelings are to be brought in the poetry of the present time. Otherwise, we will be facing myriad questions by our own surroundings. I am reminded of a poem, little poem of a Tamil poet, Soundararajan. It's a very tiny poet. The title of the poem is Why. It goes like this. Trees mumbled among themselves. Trees mumbled among themselves. These men cut and make many crosses. Trees mumbled among themselves. These men cut us and make many crosses. But they have not been able to produce even a single Jesus. Why? This is the question he is asking. This poem shows how man has reached the depth of the degeneration in which he is indulging in self-destruction, and what is need of the hour is rejuvenation of the man and the world. If you look at the human history, man has been stumbling all along. Should he continue to stumble even now? If we don't want this stumbling, what is the role of a writer? This question needs to be addressed by the literary world urgently. If we ought not to stumble, we ought to be vigilant. This vigilance is to be guaranteed by the poets, writers, and those who belong into cultural world. Many unspeakable things have occurred in the past due to our ignorance and human cruelty. If we don't want to repeat those, it is necessary to build our present with great caution and circumspection. Bendre, the Jnanapita Award winner poet of Kannada, says very meaningfully, let the past remain in the tales. Let the past remain in the tales, the present in our palms. The present in our palms. As we are the lords of the future, as we are lords of our future, then why this hesitation? He is asking this question. If we ought to be lords that are going to create our future, let the past rigmarole remain in the tales, he says. The great poet wishes that we should not vitiate the health of the present. The poetry of the present must show to the world all anti-human works through it. It must build sturdy bridges between human communities. That means it must forge human values which are necessary for human life. This must become the first priority of the poetry. Although we have several challenges, poetry must face them in order to construct in future. Importantly, human sensibilities ought to receive the importance in poetry. The future of poetry is determined only when we take up such positive thoughts. Poetry is facing another big challenge, that is artificial intelligence. According to this new scientific invention, machines themselves are beginning to produce poetry and literature. The machine which ought to work complementary to literary and cultural world is now moving forward quite autonomously. The poetry created by such machines will be soulless and bereft of sensibilities. Such poetry could cause endless damage to the world. Besides, it can give a deadly blow to the human creativity. Only man can understand Please, Sadarji, conclude your lecture. 2 minutes, last. Only man can understand the plight of complexity of man, not machines. A poetry that is resulted from the word hard will not able to understand human predicaments. Poetry is created eternally afresh. At the same time, it needs necessarily to possess the timeless character. Keeping this in mind, the present-day poets must write poetry that is pro-life, safeguarding the peace and tranquility of the world with a lot of sensibility. Therefore, it is imperative that the exploitative forces must be faced squarely and opposed bravely. A little poem by Bertolt Brecht, at the end I will quote it. A little poem Bertolt Brecht is appropriate to present here. It is the title of this tiny poem is about a Chinese carving of a lion. He is standing in front of that carving of a lion and he utters these words. Good people respects its dignity. Good people respect its dignity. Bad people are afraid of its paws.
I want people to say the same about my poetry. That is my wish. I want people to say the same about my poetry. That is my wish. If our poets could possess such a wish and desire, it is possible for them and their poetry to have a glorious future. Thank you for patiently listening. Thanks, Sadaji. So, I request every speaker should stick to the scheduled time and be brief. So, now I request Brajratan Joshi ji to share his thoughts. सम्मानित मंच और अति सम्मानित आप सब, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि निर्धारित समय की सीमा में मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूं। भविष्य की कविता या कविता का भविष्य, जैसा कि कहा गया मन से अभी, कि एक तरह से मनुष्य जाति का भविष्य भी उसी से ही जुड़ा है, या मनुष्य जाति के भविष्य से जो चीज़ें जुड़ी है वह कविता के भविष्य से भी जुड़ी है। इसमें जो टर्म भविष्य है उस पर विचार करने की जरूरत है। ये जो पद भविष्य है ये भव से आता है, और भव जो है भू धातु से आता है, और भू का मानी है ये लोक, ये जगत, ये दुनिया जो निरंतर उत्पन्न होता रहता है और बदलता रहता है। तो उसकी व्याप्तियां, परिव्याप्तियां, उसकी पहचान, उसकी अस्मिताएं, उसके वैशिष्ट्य को लेकर मनुष्य के मन में निरंतर एक चेतना के अंदर चैतन्य रहता है, और वो उसको विचार करता रहता है कि ये जो सारी प्रक्रिया है ये देश, काल, वातावरण, भूगोल और अन्य अन्य कारणों से कितनी परिवर्तित होगी, कैसी परिवर्तित होगी। तो एक खास किस्म की चिंता, जैसे हम कह सकते हैं, भय तो नहीं कहेंगे, चिंता एक मनुष्य के मन में रहती है। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि भविष्य मूलतः, जब भविष्य है या अतीत, ये दोनों ही वर्तमान से जुड़े हैं। इन मूल जो अस्तित्व है वो वर्तमान का है। वर्तमान जो क्षण बीत गया, अभी थोड़ी देर में हम कहेंगे कि एक सेशन था जो कविता के भविष्य पर था, और थोड़े दिन बाद ये कहा जाएगा कि कविता के भविष्य पर ऐसा सेशन होगा जिसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा। यानी बात वही है कि जो वर्तमान है उसी को भविष्य में रूपांतरित होना है और उसी को अतीत में रूपांतरित होना है। तो कोई बहुत चिंता जैसी या उदासी जैसी कोई बात नहीं है, भय जैसी नहीं है। सृष्टि के आदि कवि से लेकर आज के कवि तक की यात्रा में कविता के विचार करने के तरीके, यानी जैसे आप कहते हैं कि कविता का जो शिल्प जो है मूलतः उसमें भाव में, यानी कथ्य में, और फिर उसकी प्रस्तुति में तीन बड़े चरण हैं जिनमें परिवर्तन आता है। तो भाव में तो जब आएगा तो ये होगा कि अब हमें इतने दिन तक तो यथार्थ से साक्षात्कार किया, अब एक नई चुनौती जो आएगी वो होगा वर्चुअल यथार्थ, जो एक जैसे कहते हैं आभासी यथार्थ। उस आभासी यथार्थ के साथ मनुष्यता कैसे अपना तादात्म्य बैठाती है। शिल्प, जैसे मैं कहता हूं अनुभव की आकृति, तो अनुभव की आकृति को मनुष्य कैसे मतलब उसको पकड़ेगा, अपने अंदर जो घटित हो रहा है और प्रतिपल जो घटित हो रहा है, और जो हर क्षण जो लड़ाई हो रही है तकनीक और मनुष्य के बीच में, यह तय है कि मनुष्य ने ही एआई को इजाद किया है। तो मनुष्य की सृजनात्मक संभावनाओं के आगे एआई की क्षमताएं कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं उसी का उत्पाद है, उसी की सृजनशीलता का ही परिणाम है। इसलिए उसको लेकर इतना चिंतित या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि किस तरह यह लड़ाई होगी, किस स्तर पर होगी और उसे कैसे लड़ा जाएगा, खासकर भाषा और उसके उपकरणों के माध्यम से। तब हमारे सामने ये चुनौती होगी कि अगली जो कविता होगी, सर उसको एल्गोरिदम्स क्या है, उसके एल्गोरिदम्स, जैसे अब तक हम जिसे सांगीतिक कविता का पक्ष कहते थे वो बड़ा भारी, यानी जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री कहते हैं, काव्य की संरचना जैसे कहते हैं, वो संरचना बड़ी प्रभावित होगी और उसमें आपको एल्गोरिदम्स देखेंगे, वो सुर और ताल का काम करेंगे। जो पुराने संगीत में सुर और ताल कर रहा था, छंद के साथ जो चल रहा था काम, वो काम एल्गोरिदम तय करेगा, वो आपका डेटा तय करेगा। उस पोएट्री के अंदर डेटा भी होगी, डेटा का एक डेटा कविता करके एक पूरा मूवमेंट पश्चिम में शुरू हो चुका है। तो वो सारी चीजें मिल गए और वो बनाएगी। तो भाव के स्तर पर हमें आभासी यथार्थ से चलना है, क्योंकि विषय बड़ा व्यापक है और चीजें बहुत ज्यादा है, तो और सब चीजें एक दूसरे से गहरी जुड़ी हुई है, लेकिन समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं आपको बहुत संक्षेप में ये चीजें कहते चल रहा हूं। और तीसरी जो चीज बड़ी बात होगी वो ये है कि हमें कविता के रूप को पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा।
ये जो हम परंपरा से लेकर अभी तक चलते आए हैं, इन जो सारे नए रूप हैं, इन नए रूपों को ध्वस्त करते हुए हमें एक नए अनुभव के साक्षात्कार और नई जो चुनौतियां हैं या नए जो हमारे सामने रास्ते के जो रपटीले मार्ग हैं, उन रपटीले मार्गों का एक नया नक्शा बनाना पड़ेगा, क्योंकि यात्रा पुनः एक तरह से नई होगी, एकदम अद्वितीय होगी, अलग होगी। और फिर इसमें महर्षि अरविंद की एक किताब इस विषय पर है, फ्यूचर ऑफ पोएट्री, और महर्षि अरविंद के विचार है, मुझे लगता है वो काफी ठीक है। वो कहते हैं कि चेतना के विकास की दिशा उत्तरोत्तर सृजनात्मक की होगी। ऐसा देखिए वो पूरी मैनकाइंड को देखते हुए बताते हैं कि आप देखिए कि मनुष्यता अब तक जितने युद्धों को, अकाल को, दुर्भिक्षों को, सबको झेलते हुए आगे बढ़ी, तो अंततः उसका रास्ता सकारात्मक ही रहा है। ठीक है, ये बीच में विचलन आते रहेंगे, संस्कृतियों में विचलन आते हैं और संस्कृतियों के विचलन को दूर होने में समय भी लगता है, लेकिन उसकी दिशा सकारात्मक और उच्चता की होगी। उसे वो अध्यात्म कहते हैं, और वो इसलिए मानते हैं जो इस रूप में, अगर जैसे कि सुरजीत सर ने शुरू में बहुत अच्छा अपना वक्तव्य रखते हुए कहा, मैं उसको समर्थन में कह रहा हूं कि वो जो जैसे जैसे आपके जीवन में तकनीक का प्रवेश होगा, या जिस तरह से वैश्विक मानव की आय का जो इन्होंने उल्लेख किया, तो मनुष्य के पास जो बहुत छोटे मोटे काम हैं वो हट जाएंगे। और जैसे ही वो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी तो अध्यात्म की परंपरा में क्या है कि मनुष्य ने अपने आप को निर्भर कर दिया, चाहे बुद्ध थे या महावीर थे या जो भी बड़े लोग हैं, उन्होंने स्वयं को जब सब चीजों से मुक्त किया तो चेतना की दिशा उनकी ऊपर उठी। तो भविष्य इस दृष्टि से सकारात्मक होगा और उसकी दिशा हमारे लिए फलदायी साबित होगी। हाँ, कुछ विचलन जरूर आते रहेंगे। हाँ, रिश्तों को लेकर एक बड़ी समस्या आएगी, रिश्तों को लेकर, आपको भावों को लेकर, और इनकी जो एक तरह से पुनर्परिभाषाएं आप करेंगे और इसके रास्ते पर जो चलेंगे, वहां कुछ द्वंद्व होंगे, मतलब जैसे कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन, जो आपसी संबंध है, उनका द्वंद्व जो है वो बहुत नए नए तरह के अनुभव प्रकट करेगा। जैसे अभी ब्रिटेन में एक मुकदमा दर्ज हुआ है अवतार के थ्रू कि भी मेरे अवतार के साथ छेड़छाड़ की गई, इसमें आप पुलिस को अब सोचना पड़ रहा है कि उसको कैसे हैंडल करें। तो साइबर एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपकी छवि के साथ कोई अगर बलात्कार करे या कुछ ऐसी हरकत अश्लील करे तो उसको क्या दंडित किया जाए। तो ऐसी चुनौतियां कविता में भी आएगी कि जब एल्गोरिदम, जब डेटा और सी चीजें जो जिन्हें वो जब आपके भाव के साथ, वो जब आपकी लय के साथ, आपके ताल के साथ, पुराने स्वर के साथ और उनको साथ टकराएगी, तो अनुभव का जो नया स्फोट होगा उसको, उसके रूपाकार को, जैसे मैंने कहा अनुभव की आकृति, उस अनुभव की आकृति को पकड़ना हमारी बहुत बड़ी गहरी रचनाकार की चुनौती होगी। और रचनाकार का पूरा इतिहास, रचनाओं का इतिहास बताता है कि उसने समय समय पर ऐसे कई मोड़ों को पार किया है, इसलिए इस मोड़ को पार करने में भी इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जितनी करनी चाहिए वो तो करेंगे ही करेंगे। हालांकि न्यूरो लिंग्विस्टिक्स का जो एक पार्ट है पूरा, वो इस पर अब काम शुरू कर चुका है और काफी चीजें हमारे सामने बहुत जल्द होंगी। इसके अलावा एक लास्ट चीज में जिसके ध्यान दिखाना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये जो, जैसे हम अभी कह रहे हैं पोस्ट ट्रुथ समय, हमें लगता है कि ये सारी चीजें जैसे कविता का अंत, नैरेटिव का अंत, उसका अंत, दरअसल वो अंत नहीं है, वो सीमाओं का बोध है। आपको सोचने के लिए नए अवकाश देने के लिए उन विचारकों ने कहा कि अब ये जो अब तक आप रटे रटाए या पारंपरिक डरे पे चल रहे थे उससे कुछ नया बढ़िए। तो वो चुनौती भविष्य की चुनौती है। तो जो पोस्ट ट्रुथ जो समय आ रहा है, उत्तर सत्य का जो समय आ रहा है, उत्तर मानववाद का जो समय आ रहा है, इन दोनों के संयुक्त जो प्रभाव से मनुष्यता को कविता जो है वो सत्य की सबसे बड़ी संवाहक बनेगी। ऐसा दूसरे अर्थों में अरविंद फ्यूचर ऑफ पोएट्री में कह रहे हैं कि वो आपको अपने आत्म प्रतिनिधित्व का विस्तार देगी, आपकी आत्मसत्ता को प्रतिष्ठित करेगी। और जब आपकी आत्मसत्ता और आत्म बोध जो आपका बढ़ेगा गहरा, तो निश्चय ही आप तय मानिए कि किसी भी तरह की तकनीकी हो, किसी भी तरह का विचलन हो, मनुष्यता उसे आसानी से सामना करेगी और हमेशा की तरह सफलता से निकल जाएगी। आपने धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू जोशी जी, was a nice lecture. तो अब मैं चंद्र प्रकाश देवल जी, जो राजस्थानी के बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं और बहुत स्कॉलर भी, सो उनको गुजारिश करता हूँ। चंद्र प्रकाश देवल जी। सम्माननीय अध्यक्ष जी और मंच में उपस्थित सारे बुद्धिजीवियों
और साहित्य जीवियों। असल में तो मैं आज के आपके इस सत्र के लिए पूरा का पूरा जो मुझे कहना था, कविता का वर्तमान, क्योंकि आप भविष्य की बात जब तक नहीं कर सकते जब तक आप वर्तमान की बात ना करें। तो वर्तमान, फिर कविता क्या क्या करती है, कविता के कितने कितने रूप हैं, मतलब एक मेरे ख्याल है अगर ईश्वर के जितने रूप हो सकते हैं उससे अधिक रूप कविता के हैं। तो इसलिए हम कौन सी कविता पर बात करें, ये एक बहुत ही विशाल विषय है जिस पर ये सत्र चर्चाएं कर रहा है। तो मैं एक कविता लिख के लाया था कि जो वर्तमान स्थिति क्या है, कविता के दबाव क्या होते हैं और उन दबावों से क्या कविता में विचलन आता है और ये विचलन कैसे भविष्य में आगे बढ़कर कविता के स्वरूप के लिए घाटे का सौदा होगा या नहीं होगा। तो ये सब कुछ, लेकिन अगर अध्यक्ष जी आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कविता पढ़ दूं और आप ना कहें तो मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। कविता लंबी है, चलिए। कविता का वर्तमान स्थिति क्या है वो सबसे पहले तो आप ये जानने की ज़रूरत है, और मैं जिस समय में, एक कवि जिस समय में कविता रच रहा है वो अपने समय को कैसे इम्बाइब करता है अपनी कविता में, और समय कैसे कवि को परेशान करता है और उसमें बदलाव लाता है, ये कुछ एक संकेत है। मित्रों, मैं सबसे पहले तो इस बात से आज यहाँ आते वक्त सर्वाधिक आश्चर्यचकित, प्रफुल्लित और उद्वेलित रहा जब मुझे ये पता लगा कि साहित्य अकादमी ने एक इस साहित्य उत्सव में लगभग 175 भाषी कविताओं में, मैं उसमें भाषा को आप गौण कर दें, 175 तरह की कविताओं का समागम किया है यहाँ। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है और कविता के लिए तो बहुत बड़ी बात है ही। ऐसा मुझे नहीं लगता, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि बाहर कौन से देश में इतनी कविताओं के सुर हैं, पर मैं जानता हूँ बहुत कम देश होंगे जिसमें 175 सुर में कविता अपनी बात कहती होगी। तो कविता जो अब तक उन बोलियों में, उन वानियों में, उन भाषाओं में जिनको अभी भी संविधान की या मैं जानता हूं कि 22 भाषाओं को सरकार ने मान्यता दे दी। सरकार क्या करती है, कोई भी सत्ता हो, या आज जो मैं प्रफुल्लित हो रहा हूं और वो जो मेरे कवि आए हैं वो अपनी कविता पढ़ कर करके बहुत ही उद्वेलित होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे कि उनकी कविता को उनके सुर में, उनके अंदाज में सुना गया। लेकिन मैं जानता हूं कि जो सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है वो सत्ता उसके सामने एक चुनौती खड़ा करेगी। वो बहुत शीघ्र, बल्कि आपको पता ही नहीं लगेगा, और उन सारी की सारी 150 भाषाएं जो हैं उनको मारने की चेष्टा की जाएगी ताकि ये कि उनकी कविता मुखर न हो। अगर 150 भाषाओं की कविता मुखर होती है तो सत्ता के लिए खतरा होता है। सत्ता को क्या करना होता है? सत्ता एक काम बहुत सुविधा से करती, कोई भी सत्ता हो, वो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का अनुकूलन करती है, उसे रचनात्मकता को अपने वश में करती है। वो चाहती है कि क्रिएटिविटी वही करे जो मेरी विचारधारा है, या मैं जैसा सोचता हूँ, या मैं जैसा आदेश देता हूँ। इससे इतर कविता या और कुछ भी उसे पसंद नहीं होता। और दूसरा काम करती है कि वो शुरू से कल्पनाशीलता को एक सीलिंग में ला कर करके उसे समाप्त कर देना चाहती है, उसे मिनिमाइज कर देना चाहती है। क्योंकि कल्पनाशीलता अगर रहेगी, खुली रहेगी, तो हो सकता है वही कल्पना एक दिन सत्ता का विकल्प सोच ले, इसलिए उससे डरती है। और उससे डरती का मानी यह है कि अब बच्चों को भी
इतने खिलौने दे दिए जाएं, टीवी दे दिया जाए, वो कंप्यूटर दे दिया जाए, फोन दे दिया जाए कि और उनके सामने हर चीज का निचोड़ दे दिया जाए, वो कोई कल्पना नहीं कर सकें। क्योंकि वो कल्पना जो है, मनुष्य की कल्पना सत्ता के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। और ये काम मनुष्य जो है वो कविता के माध्यम से करता है। मित्रों, राजनीति इन दिनों इतनी ताकतवर हो गई है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं कटवा साहब, मैं दूसरा विदेश की बात नहीं कर रहा हूं। वो इतनी ताकतवर बन चुकी है और वो ये चाहती है कि उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगे क्योंकि उसे सबसे ज्यादा खतरा कविता से लगता है। यही कविता साहित्य है, यही कविता। लेकिन कविता एक शब्द, एक जुमले में मैं एक बात कहता हूं तो सर्वाधिक अगर सत्ता किसी से डरती है तो कविता से डरती है। और आज से लगा करके कई अरसे पहले से सारी सत्ता सारी कविताओं का अपने अनुरूप अनुकूलन करती आई है। फिर भी ये कविता ही है कि जो अपना सर उठाती है। ये जो 150 ये कविताओं का सुर हैं, ये मैं जानता हूं कि थोड़े दिनों के बाद यदि आपने पढ़ी हो तो मुझे मेरे मित्र कवि मित्र सच्चिदानंदन की एक कविता याद आती है, हकलाहट। अगर आप लोगों ने सुनी हो तो ये 150 ज़बानें कविता के सुर के बाद हकलाने लगेंगी। और ये हकलाहट सत्ता के लिए आनंददायक चीज है, उसे खतरा नहीं होता। तो इसलिए मुझे अपने ही मित्रों की कुछ कविताएं याद आ जाती हैं, तो इसलिए मैं उनका प्रयोग कर रहा हूं। कविता में बहुत बेधक ताकत होती है, चाहे धर्म हो, राजनीति हो, आर्थिक स्थितियां हो, सामाजिक स्थितियां हो, एक उसमें इतनी अणुविस्फोट की ताकत होती है कि उसकी एक पंक्ति आपके आर पार निकल जाती है। और उस एक पंक्ति को ही कोई भी सत्ता है जो यथास्थिति बनाए रखना चाहती है वो बर्दाश्त नहीं करती। मेरे मित्र बैठे हैं, अर्जुन देव चारण मेरे राजस्थानी के पोइट हैं। ये एक सामाजिक धुंध जो आप लोग तो सब जानते होंगे, जो दहेज की समस्या है, एक पंक्ति में वो उस पूरी की पूरी उस स्ट्रक्चर को वो धराशायी कर देते हैं, उस धुंध को हटा देता है। ये सामाजिक, कोई कहता नहीं सामाजिक बदलाव ला सकती, बदलाव नहीं लाती है कविता। कविता सिर्फ बताती है। एक पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं, माँ हम तुझे लेने नहीं आए थे, हम तो दहेज लेने आए थे और तू दहेज का हिस्सा थी। अब आप कल्पना करिए, कविता इससे अधिक और क्या कर सकती है? कितने ही मुलम्मों में, कितने ही विनम्र आवरणों में ढक कर करके भी हम कविता को कहें, लेकिन उसकी मारक ताकत जो है, उसकी जो शक्ति है, वो समाप्त नहीं होती। तो मैं कविता को जो सबसे ज्यादा डर है वो है उसकी हकलाहट का। अगर एक जनतंत्र में, और हमारा समाज क्या हो गया है कि समाज जिसे हमारी जनतंत्र और हमारी आज़ादी की रक्षा का सबसे बड़ा काम करना था, वो समाज आज एक नया नारा गढ़ रहा है कि वोट और बेटी तो जात के आदमी को ही दी जाएगी। कैसे बचाएंगे लोकतंत्र को? कैसे बचाएंगे हमारी आज़ादी को? ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और मानवाधिकार, और ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जो चीज मनुष्य के लिए चाहते हैं। और कविता क्या करती है, एक छोटी सी बात कह करके मैं वो कविता पढ़ना भी बंद कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कविता जो स्मृति के सहारे अपना काम निकालती है। ये स्मृति क्या है? मनुष्य को अपनी स्वयं की मृत्यु से आगे निकल जाने का संघर्ष ही मनुष्यत्व का सार है। अस्तित्ववादी भावनाओं के मूल में भी यह एहसास है कि मृत्यु से हर चीज की समाप्ति नहीं होती। मृत्यु का प्रतिरोध करते हुए हम दरअसल विस्मृति का विरोध कर रहे होते हैं, उसका प्रतिरोध कर रहे होते हैं। और इसका उलट भी सही है कि विस्मृति का प्रतिरोध एक तरह से मृत्यु का प्रतिरोध है। कजान जाकिस इसे हमेशा रचनात्मकता में ढूंढते रहे
और इसीलिए मेरी नज़र कविता की ओर गई। उनका कहना था कि जाने या अनजाने में एक सर्जक के भीतर इस आत्मविश्वास का होना जरूरी है। कोट, रचकर मैं मृत्यु का प्रतिरोध कर रहा हूं, कविता हमें यही आश्वस्ति देती है। पुराणों में एक संदर्भ आता है कि एक बार मृत्यु ने, देवताओं के लिए कहा जाता है कि वो अमर हैं, नहीं मरते हैं, तो उन्होंने, मृत्यु ने उन पर आक्रमण किया देवताओं के ऊपर, और देवताओं ने, और कुछ उनके पास उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने छंद पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा घटाटोप छंद की एक छतरी बना ली कि उसको मृत्यु भेद नहीं पाई और देवता बच गए। कविता मनुष्यता का परित्राण है। ये इस बात की तायद होती है और इसीलिए हम कविता के प्रति अधिक उदार और अधिक आशान्वित होते हैं कि कविता है तो हम होंगे, कविता रहेगी तो मनुष्यता बचेगी। तो इस तरह की स्मृति की अभिव्यक्ति की कविता जो किसी भी शून्य में अपना अंत होने से हमें बचाती है। कविता हमारा जीवन है, जीवन शक्ति है जो बीच में चुकती नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे रहते कविता भी रहती है और इसका उलट भी सत्य है कि कविता रहेगी तो हम भी रहेंगे। हमारे आदि शंकराचार्य ने एक बार एक जगह कहा है कि जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। इसे मैं यूं समझता हूं कि संसार एक कोलाहल है जिसकी वजह से हमें सुनाई देना बंद हो जाता है। यह कोलाहल भी एक तरह की विस्मृति लाता है कि उस विस्मृति को जगाने के उपक्रम हैं ये कोलाहल। और एक सच्ची कविता कवि की पुरअसरार चीख की शक्ल में उभरती है। यह जोरदार चीख जो कवि अपने पूर्वजों उसके समकालीनों और उनकी भाषा के ऊपर मंडराते विस्मृति के बादलों के प्रतिरोध में कवि के गले से फूटती है। मुझे पूरी विनम्रता से आपके समक्ष यह कहने की इजाजत दीजिए कि यह चीख ही ब्रह्म है और यह चीख और कुछ नहीं, कविता है। मुझे अपनी एक कविता की 3 पंक्तियां याद आ गईं। चीख भारी पड़ती है हमेशा संसार की सारी इबारतों से और सभी भाषाओं की वर्णमाला से। ये पहुंच जाती है जस का तस दूसरे तक और वो सब छोड़ करके अंत में इस चीख को सहेज कर रखो, ये सताए जाते लोगों की भाषा है। तो यह शायद मानसिक और शारीरिक हिंसा भविष्य के लिए, बस अब मैं समाप्त कर रहा हूं, हिंसा के चलते पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और उसका हर रूप, हमें उस हिंसा का हर रूप देखने को मिलता है। इस खतरे के चलते कदाचित यह संभव है कि भविष्य में संवेदनाओं को पकड़ने की काबिलियत मनुष्यता खो बैठे। देखिए, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने एआई और उसके संदर्भ में और उन तकनीकों से काफी कुछ डराने की कोशिश की, लेकिन मैं ये संभव है कि ये एआई और कुछ करे या ना करे, एआई का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। एटम बम बना था या हाइड्रोजन बम बना था या नैपम बम बने थे, तब भी कविता तो हमारी उसी तरह से उसी ढांचे में चलती रही है और उसको जो काम करना है वो करती रही है। तो ये जो काबिलियत मनुष्यता खो बैठे और यह मानवता की समाप्ति होगी, पर संवेदनाओं को जीवित रखने का काम कविता करती है और इन अर्थों में कविता मानवता का अंतिम परित्राण है। कविता हमारे भविष्य की आशा है, कविता हमारे आगामी समय की भाषा है। जब तक भविष्य में मनुष्य रहेगा, उसकी भाषा रहेगी, उसकी पीड़ा रहेगी, तब तक कविता रहेगी। आश्वस्त रहें। कविता ये कोई कामों का मिथ ऑफ सिसिफस नहीं है, न सार्थ का नौसिया है, न आलू का बोरा। कविता गरीब की रोटी है और आतंकी की बंदूक का निशाना नहीं। अंत में हमारे यहाँ ये माना जाता रहा है, बस समाप्त करना, बस 1-2 लाइन। अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ ये माना जाता रहा है कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी महाशून्य में नाद था, और जब हमारी सृष्टि
नहीं रहेगी तब भी शून्य में सिर्फ नाद रहेगा। मित्रों, यह अमर नाद ही कविता है। अध्यक्ष जी, मेरे एक पंजाबी मित्र सुरजीत पातर की पंक्तियां याद दिलाता हूं। देखो रे लोगो, ये मेरा कुखो जाया अपना दुख कागज से कहता है, मेरे रहते ये दुख आया कहां से। अनकोट। संवेदनशील मनुष्य जब भी घबरा कर अपना दुख कागज से कहेगा, उसका दुख कविता हो जाएगा और उसकी अनपढ़ माँ भी इस कविता अर्थात दुख को समझ जाएगी। कठिन दौर में घबराएं नहीं, बस आपके साथ कविता है और रहेगी। इस तरह से उम्मीद पर रहिए। यद्यपि मैं जानता हूँ एक कवि के पास में जब कविता होती है उसके लिए एक, ये श्रीमान हमारे उस्ताद बैठे हैं, एक उर्दू की 2 पंक्तियां याद आई। एक हल्का सा फेरफार के साथ कहना चाहता हूँ कि जब तुम मेरे पास होते नहीं, जब तुम मेरे पास होती हो तो कोई दूसरा नहीं होता। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया देवल जी, हाजिर और गैर हाजिर शायरों को इतनी शिद्दत से याद करने का, प्यार करने का। अब मैं बहुत प्रसिद्ध शायर और आलोचक के सच्चिदानंदन जी को गुजारिश करता हूं अपने विचार आपसे साझा करने के लिए। ये इस एकेडमी के पूर्व सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और बहुत जाने माने कवि और बहुत प्रिय दोस्त के सच्चिदानंदन। Dear Suljit ji and dear friends and admirers of poetry, I know I do not have much time, and generally I don't write my speeches, I improvise, but this time I have something written so that I don't go beyond the time allotted to me. I'll begin with a poem and end with a poem and say something in between. This is a poem that most of you know, Gandhi and Poetry. One day, a lean poem reached Gandhi's ashram to have a glimpse of the man. Gandhi, spinning away his thread towards Ram, took no notice of the poem, waiting at his door, ashamed, as he was no bhajan. The poem cleared his throat, and Gandhi looked at him sideways through those glasses that had seen hell. "Have you ever spun thread?" he asked. "Ever pulled a scavenger's cart? Ever stood the smoke of an early morning kitchen? Have you ever starved?" The poem said, "I was born in the woods, in a hunter's mouth. A fisherman brought me up in his hamlet." Well, me and VYASA, obviously. "Yet I know no work. I only sing. First I sang in the courts, then I was plump and handsome. But I'm on the streets now, half starved." "That's better," Gandhi said with a sly smile. "But you must give up this habit of speaking in Sanskrit at times." I don't mean the language Sanskrit, I mean it's a Malayalam idiom, which means saying something which nobody can understand. Give up this habit of speaking in Sanskrit at times. Go to the fields, listen to the peasant's speech. The poem turned into a grain and lay waiting in the fields for the tiller to come and upturn the virgin soil moist with the new rain. So the question of the future of poetry is not unrelated, I believe, to the past and the present of poetry, as time, after all, is a continuum. Nor is the question disconnected from the future of languages and of mankind itself. Because the major question now being asked is whether poetry will have a future, but whether mankind, human species, will have a future at all. This question is not new, as it has been raised by critics and thinkers from time to time. For example, Theodor Adorno, the Frankfurt thinker, had stated in the context of the Nazi concentration camps that poetry is impossible after Auschwitz,
the notorious concentration camp, which is like admitting that massive genocide is the limit that poetry can hardly cross. This could well have also been said in the aftermath of the 2 world wars, or after every genocide in our time, from Vietnam to Iraq to Gaza to Ukraine to Gujarat. Even the partition of India had meant infinite loss of human lives and homes on either side. And there are streams of refugees across the world, even now, helpless people who had to leave their country because of war or persecution in the name of religion, race, or even opinion. But the instructive irony is that all these tragic turns of history have produced great poetry. Spanish Civil War and dictatorship in Latin America made a Lorca or a Pablo Neruda possible. The same can be said of Paul Celan, Nelly Sas, or Abba Kovner, who survived the Nazi Holocaust. Anna Akhmatova from Russia, or Beidavo from China are other examples. Palestine is now producing some of its most intense poetry. So is Ukraine. India's partition and various kinds of genocide that happened later also produced some of our best literary works, including poetry. All this means that Adorno's declaration was more a socio-political statement than a literary aesthetic one. That's why the great Polish poet Rosewicz said that there will be poetry even after Auschwitz, that he qualified as a poetry for the horror-stricken, for those abandoned to butchery, for survivors created out of a remnant of words, salvaged words, out of uninteresting words from the great rubbish dump. What is evident from this is that poetry has a moral responsibility towards all those who suffer diverse forms of injustice, oppression, exile, and violence. History has proved beyond doubt that every ideology, whatever its stated objective, can turn into an instrument of suppression and torture. And it is the poet who first comes up to protest this degeneration. When James Joyce says about artists and writers, including himself, "Excuse us, we are olives," he means the art yields its best in tragic times. That may also be why tragedies, whether those are Sophocles or Shakespeare, Valmiki or Vyasa, I think they also wrote tragedies, are often considered great classics. The question of the future of poetry has also been proposed from other points of view. Many consider ours an age more of fiction than of poetry. It is based on a kind of head count of readers. But poetry has seldom been a very popular form of literature, except when that was the only or major form of expression, as in the case of oral poetry, epic poetry, or Bhakti and Sufi poetry, which were primarily oral. Prose forms came up later. Poetry is more subtle and suggestive, and its metaphors and images are not always easily accessible to the inexperienced or insensitive to nuances. Earlier, poems told stories, which they seldom do now. Instead, they most often express moods, emotions, fleeting experiences, and visions, as the function of storytelling has mostly been taken up by various forms and genres of fiction. Still, like drama, poetry remains unique, as it can carry within it rudiments of stories. Work at times like drama can contain a painting in words, or assume the form of a sculpture or a work of great architecture, and yet remain different from all of them. It is the densest expression of literary sensibility and the most suggestive. It can articulate in a line a thought or feeling or experience that other literary forms may need pages to express. That is one reason why mankind will always need poetry. Poetry is also the surest carrier of tradition, as it encapsulates, as also innovates. As A.K. Ramanujan had summed up by retelling a Kannada folktale, there was a woodcutter who claimed that the axe he used
had been there in his family for hundreds of generations. And he was asked, has not the blade been changed? Yes, of course, the woodcutter said it has been changed many times. What about the handle? Yes, the handle also has been changed many times, but the axe is the same axe. This contains, of course, it looks humorous, but it also contains a major lesson about tradition and innovation. Because in spite of changes, ultimately something remains in poetry that tells you that this is poetry. This is not a story, not a play, not an essay. Something which is essential that defines poetry, even though that itself is perhaps indefinable. So tradition is not something that is finished and dead, but it is something living. It is lived. It goes on changing. It goes on growing. What was modern or new or even subversive to an earlier generation is part of their tradition to today's upcoming writers. We were all supposed to be modernists who brought a new kind of poetry, but for a boy writing today, we are actually ancients, no more moderns, because that fast poetry as an art keeps on changing. In fact, only that part of tradition that still lives and inspires new writers can be called tradition in the real sense. And something dead and kept in a coffin out there that is not tradition. In poetry, it consists of works that still speak to us and make sense to us in a changed world. In other words, those works are ever contemporary. During the COVID years, I was translating mainly Bhakti and Sufi poetry. I have 5 books in Malayalam of Bhakti and Sufi poetry. So Kabir, Basava, Tukharam or Bulle Shah, to take some examples from our tradition, still make sense. Even greater sense than when they spoke those lines about the degeneration of religion into an instrument of political power. Perhaps even more sense than they had made to their contemporaries, as today we live in a climate of religious hatred and blind rituals, when their message of the oneness of all religions and the need for dialogue and not conflict that later Gandhi, Srinarayana Guru and other saintly figures spoke of has gained a new relevance. The way we read poets may change with time. We may understand more about the futility of wars when we read Mahabharata today than when read earlier. At the end, after reading the whole of Mahabharata, that is how it ends also. Pandavas wonder, what was this war for? Just to get this desert, to see this bloodshed, to see the dead bodies of our children. So there is a sense of irrationality, a sense of total waste at the end of Mahabharata. And also about the ethical dilemma of Rama caught between Rajadharma and Padidharma, the duty of the righteous king and the loving husband, as we read Ramayana from a contemporary moral perspective. Hamlet's soliloquy, to be or not to be, may appeal to the modern human being caught in an ontological dilemma. We still read the classics to discover the meaning of the human condition. Such works are polyphonic and can yield themselves to multiple readings at different times and with different readers. Poetry has the rare ability to resolve contradictions and go beyond all binaries. I have already touched upon the dialectical relationship between tradition and innovation, showing how tradition and modernity form a continuum and are full of movement and change, the latter soon getting absorbed into the former. Poetry also resolves the duality of form and content. As in poetry, the form itself is the content, and if one wants to see them as two entities at all, they can only be seen in an organic kinship with each other, bound together inseparably. So is the relationship between the individual and the social. Once an experience enters language, however private, like love for a particular person or the death of a personal friend, it immediately turns into a collective experience, as language is not an individual product, and each word carries the memory of the many past contexts in which it was deployed. The aura of the collective envelops every word, even when the poet tries his or her best to personalize it. What makes a poem committed is only the way you read it. If it can be read merely as a playful combination of words,
or as a social comment on a person, event, or context. There is little distance between the magical and the revolutionary in poetry, as Pablo Neruda or Gajanan Madhav Muktivedha would prove. When you write about a particular evil, you are making a comment on the existence of evil as a part of the human condition. As when you condemn a murder, you are speaking out against all violence, symbolized in that murder, by that single murder. Even nature and the human being get inextricably bound together in a symbolic relationship and share a common destiny, as poetry is but an extension of nature. That may be why poets are the most concerned when it comes to the destruction of the environment triggered by human greed that in these terrible times of climate change might easily lead to the extinction of the human speech itself. I'm concluding, I do admit that the forms of poetry might change. We are living at a time when small languages and tribal and community dialects have entered poetry with a bang, interrogating the very concept of a standard language. Open forms are often preferred to closed forms, and this points to a return of the oral element in poetry. Extended further, it tends to be performative, bringing in organic rhythms and movements into the presentation of poetry. Poetry may no more inhabit the printed page. It may turn visual, as in a lot of performance poetry, or into an auditory experience, as in the case of sung poetry, both of which also use technologies of expression and communication. There are a lot of experiments happening in the poetry of the young, like using lines, figures, and objects, an extension of the American concrete poetry of the 1960s. There are two collages and installations. In fact, the new trends begin right from Baudelaire, who, along with Rimbaud, Bertrand, and Lautréamont, began to use new rhythms or write in prose. The visual poetry of Mallarmé and Apollinaire, the sprung rhythms used by Hopkins, the collage forms used by Max Jacob, news-like statements as in John Updike, machine rhythms as in Mayakovsky, cubism as in Gertrude Stein or Picasso, who was also a poet, the declamatory poetry of futurism found in poets like Klebnikov, not to speak of futuristic, expressionist, surrealist, or hermetic schools found in 20th century poetry. So new technologies have provided, in fact, new means for poets, and the cyberspace has opened up a whole new range of possibilities for young poets who want to freely experiment with poetry. That the printed book and also the forms of reading have changed from the printed book to e-books and audiobooks. What I find comforting, in spite of the uneven quality of a lot of new poetry, is that more and more young people find poetry their preferred medium of expression. And there is no better guarantee to the survival of poetry than this. And as long as poetry exists, violence in any form has little chance to take over the world, as poetry in every form is also a cry against injustice, tyranny, and violence. Let us hope that poets will continue their conversation with themselves, others, nature, and the universe as long as mankind exists. Poetry will come back. We need rice, salt. I just end with this. We need rice, salt, chili, firewood. We can do without poetry. Yet poetry will come back. Like rice, the seed of the earth, boiled and cleaned of husk and ban, overflowing every measure and every granary and go down. Like salt, the memory of the sea, watering our mouths, burning us with pain in order to heal our wounds, nourishing our roots. Like chili, the lust of the clay, turning hot our lips, tongues, breasts, waists, veins, and nerves. Like the firewood, the bones of the forest, their marrow melting, sizzling, burning, slow, with tiny flames, chanting in a single breath, rice, salt, chili, firewood, poetry. Thank you. Wonderful. Thanks, Sachida. Wonderful. बस दो वक्ता. There's no session after this session, so we are taking liberty. So, अब डॉक्टर मनजिंदर सिंह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और हमारे
नौजवान समालोचक और नई तरह सोचने वाले, नई बात करने वाले और बहुत संवेदनाशील दोस्त डॉक्टर मनजिंदर सिंह। परम आदरणीय सुरजीत पात्र जी और बहुत मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं सीधे अपने विषय पर आता हूँ क्योंकि जो समय है उसकी जो सीमा है। तो जब ये विषय मुझे मिला कविता का भविष्य, तो एक हमारे स्कॉलर हुए हैं रोमन जैकोब्सन, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था ग्रामर ऑफ पोइट्री एंड पोइट्री ऑफ ग्रामर। तो इससे इंस्पायर होकर मैंने इस टाइटल के बारे में सोचा कि एक तो है फ्यूचर ऑफ पोइट्री, एक पोइट्री ऑफ फ्यूचर है, और इन दोनों के संदर्भ में मैं बात करूंगा। जब ये सवाल होता है कि पोइट्री का क्या फ्यूचर है, तो ये प्रश्न है कि आने वाले समय में क्या कविता ऐसे ही सार्थक रहेगी, ऐसे ही रेलेवेंट रहेगी। और जब हम कहते हैं कि पोइट्री ऑफ फ्यूचर क्या है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो भविष्य की कविता है वह कैसी होगी, उसका रूप, उसका रूपाकार कैसा होगा। तो जो पहला सवाल है ये तो कविता की एग्जिस्टेंस से जुड़ा है, कविता के अस्तित्व से जुड़ा है, और ये सवाल कोई नया नहीं है। इसके बारे में मैंने देखना शुरू किया जब, तो इस पर डिटेल्ड आर्टिकल्स मिल जाते हैं फ्यूचर ऑफ पोइट्री के बारे में। और 1944 में यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के एक प्रोफेसर लुई पॉन्ड ने एक लेख लिखा था द फ्यूचर पोइट्री, और इससे पहले श्री अरविंदो जी का भी जिक्र आ गया, जिनकी किताब बड़ी चर्चित है द फ्यूचर पोइट्री। तो अब लेटेस्ट जो इसके बारे में चर्चा छिड़ी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इसके बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है। और एक जो इसके बारे में पेपर लिखा थॉमस वुल्फ नाम के व्यक्ति ने, उसमें उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम का जिक्र किया जिसका नाम है रेक्टर, जो इंग्लिश में कविता भी लिख देता है और प्रोज भी लिख देता है। तो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि जैसे किसी समय डेथ ऑफ ऑथर की बात चली थी, अब डेथ ऑफ पोइट की बात भी चल सकती है। और इसमें उन्होंने जो रोबो पोइट्री और मेटा पोइट्री जैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो इसके बारे में जैसे पात्र साहब ने बात की कि जब हम कहते हैं कि कविता का भविष्य क्या है, और कविता के भविष्य के बारे में जब हम चिंतित होते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो ये सवाल एक तरह से मनुष्य के सामने भी है कि मनुष्य का भविष्य क्या है अगर कविता का भविष्य चिंता का विषय है। इसका मतलब यह है कि विज्ञान के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में असल में कला का भविष्य क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इसके बारे में मैं एक एग्जाम्पल से अपना व्यू इसके बारे में रखना चाहूंगा कि कहते हैं कि जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो ये कहा गया कि अब पेंटिंग का युग खत्म हो जाएगा, क्योंकि कैमरे के लेंस में जो मनुष्य की तस्वीर परफेक्शन से खींचने की कैपेसिटी है वो ह्यूमनिस्टिक परफेक्शन कहते हैं कि ब्रश से की गई पेंटिंग में कभी नहीं आ पाएगी। लेकिन ज्यों-ज्यों कैमरे की टेक्नोलॉजी ने अपने आप को विकसित किया, तैसे तैसे चित्रकला का महत्व और बढ़ता गया। उसका कारण यह है कि कैमरा अपनी टेक्निक से व्यक्ति के शरीर की तस्वीर खींच सकता है, पेंटिंग व्यक्ति की आत्मा की तस्वीर खींचने की समर्था रखती है। सो मैं समझता हूं कि कला का जो दायरा है, जो कला की का सामर्थ्य है,
वो देह से आगे जाता है, वो मटेरियल से आगे जाता है, वो आपके मन की तस्वीर उसमें नजर आती है। इसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमारे एक बहुत बड़े भाषा विज्ञानी हैं नॉम चॉम्स्की, उनकी एक स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि AI systems can't generate knowledge because true knowledge requires being able to provide explanation through deduction, whereas AI can only provide description through induction. तो इसके बारे में हम सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन नॉम चॉम्स्की ने अगर ये बात कही है तो इसे महत्व देना बनता है। दूसरी बात, जब चॉम्स्की ने TG ग्रामर का मॉडल दिया था, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर का, तो तब उन्होंने ये भी कहा था कि ग्रामर जो है वो अब तक लिखे या बोले गए वाक्यों की व्याकरण ही नहीं होती, वो उन सेंटेंसेस की व्याकरण भी होती है जो अब तक लिखे या बोले नहीं गए हैं। जो भविष्य में लिखे या बोले जाएंगे उनकी भी ग्रामर वो होती है। AI जो है अब तक के अवेलेबल डाटे पर बेस्ड रहेगी, जो अभी डाटा भविष्य में आएगा उसे वो टच नहीं कर पाएगी। कवि जो है वो समय से ट्रांसेंड, ह्यूमन इंटेलिजेंस समय से ट्रांसेंड करने की इसमें कैपेसिटी होती है। और पीछे थोड़े दिन पहले पात्र साहब की प्रधानगी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमने मीटिंग की, और जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माहिर हैं उन्होंने यह कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो डाटे की भूखी है, उसे जितना डाटा दोगे वो उसे रिप्रोड्यूस करेगी, उसे डिस्क्राइब करेगी। लेकिन जो डाटा उसके पास नहीं होगा उसे वो टच नहीं कर पाएगी। जैसे एक पीछे फिल्म आई थी, मैं एक आसान किस्म की एग्जांपल देना चाहता हूं। एक थी मुन्ना भाई MBBS 2। उसमें उसका जो नायक है, हीरो है, उसने गांधी जी के बारे में इतना पढ़ा कि उसे गांधी सामने साक्षात नजर आने लगे, और उससे जो भी सवाल पूछा जाता था वो गांधी जी से पूछता था, गांधी जी उसका जवाब दे देते थे। फिर जो साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने उसे कोई ऐसा सवाल पूछा जो उसने अभी तक नहीं पढ़ा था, उसका जवाब गांधी जी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपको गांधी जी उसी बात का जवाब देंगे जो आपने कहा ना कहा पढ़ा है, और आपके ये जो डाटा आपके अंदर गया है वही रिप्रोड्यूस होता है और आपको गांधी जी नजर आते हैं। मेरा ख्याल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे ये लगता है, मेरा ये व्यू है जो मैंने इसके बारे में पढ़ा, कि इसमें भी कुछ इस तरह की बात है। जैसे कविता के बारे में बात चल रही है, तो पंजाबी कविता में एक तो मध्यकाल की कविता है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ अपनी बात को यहां क्लियर करना चाहूंगा कि एक कविता लिखी बाबा फरीद ने, और वो था कि फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे नेह, चला ता भिज्जै कंबली रहा ता टुटे नेह, भिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसे मेह, जाए मिला ते ना सज्जना टुटो ना ही नेह। फिर फजल शाह ने सोनी महिवाल का किस्सा लिखा, और उसमें उसने बताया कि सोनी जब महिवाल को मिलने जाती है तो तूफान आता है और एक तरह से बादल आकाश से गिरते हैं नीचे, वो कच्चे घड़े पर चिनाब दरिया पार करके उसे मिलने चली जाती है। ये डाटा मेरा ख्याल है कि AI के पास हो तो वो प्यार की ऐसी कमिटमेंट की कविता ही लिखेगी, क्योंकि उसके पास डाटा ये है। लेकिन आधुनिक समय में प्यार की कमिटमेंट को क्या हुआ, ये पात्र साहब पेश कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो नया एक्सपीरियंस है ह्यूमन का, मनुष्य जिन नए अनुभवों में से गुजर रहा है, उसको कवि जो है वो आत्मसात करता है। और इस पर हमारे बहुत संवेदनशील कवि SS मीशा जी ने एक कविता लिखी थी, उसकी मैं कुछ पंक्तियां पढ़ने चाहूंगा जो इसके संदर्भ में है, जो मैंने फरीद जी की कविता आपको सुनाई। और टाइम हो गया जी, अच्छा। सो उसमें मीशा जी ने कहा कि आप प्लीज इस कविता की तरफ थोड़ा तवज्जो देंगे तो मेरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। मीशा जी ने लिखा
कि मेहरा परिया कृष्ण कन्हैया वर्गे रंग दे बदला सौण दिया, मन ले मेरी एक अरजोई ऐतवार दी छुट्टी कर ले एक दिन मीह ना पा। तैनू सच्ची गल दसदा हां कीता है चंचल गोरी ने ऐतवार नूं मिलण दा वादा, शर्त लिखी है नाले ऐ पर मैं नहीं आउणा बदला जेकर किणवण दित्ती ला। किसे सहेली दा पज पा के उसने रिक्शे विच है आउणा, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਧੀ ਤੁੱਲੇ ਦੀ ਡਿਗ ਡਿਗ ਪੈਂਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕੜੇ ਨੂੰ ਹਿੱਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਠਿਲ ਪਏ ਤਰਨ ਚਨਾ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਕੱਛ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਚਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਆਹਰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹਾ। सो प्यार का ये अनुभव जो बदल गया, प्यार की कमिटमेंट जो समय के साथ बदल गई, जब तक ये डाटा उसके पास नहीं जाएगा ये कविता एआई नहीं लिख पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और इससे एक और बात कि ये एआई मनुष्य से ज्यादा कविताएं लिख सकती है। इसे आप कहो कि 100 कविताएं लिख दो तो 100 लिख देगी, लेकिन ये मनुष्य से आगे की कविता नहीं लिख सकती है। इसे जब कहोगे वो कविता लिख देगी, और हो सकता है कि कवि साल भर कविता ना लिखे, उसे कविता की आमद ना हो। इसलिए एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की नेचर और इसकी नेचर का एक बुनियादी फर्क रहेगा। दूसरी बात, अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूं कि जो भविष्य की, एक तो है कविता का भविष्य और एक भविष्य की कविता, कि जो वर्तमान युग है ये साइंस टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्ट का युग है, और इसमें अभी ये और बढ़ेगा। और इसमें इसलिए जो कविता है अब केवल इमोशंस पर बेस्ड नहीं रह पाएगी, इसमें इसका जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है वो बढ़ेगा। इसलिए जो आधुनिक कविता है या आने वाले समय की कविता है ये प्रोज के ज्यादा नजदीक होती जा रही है और होती जाएगी। इसका जो पुराना छंद नियम है वो उससे ये पार जाएगी। बेसिकली कविता क्या है कि मनुष्य के अंदर 2 पासार होते हैं, मुझे लगता है, एक उसका इमोशनल पासार है, एक उसका इंटेलेक्चुअल पासार है। कविता इमोशंस और इंटेलेक्ट में, इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट में एक संतुलन क्रिएट करती है। जिस व्यक्ति जब बोलता है तो अपनी इंटेलेक्ट से बोलता है, लेकिन जो वो एक्शन करता है वो अपनी इंस्टिंक्ट से करता है। इसीलिए जो वो बोलता है और जो करता है उसमें डिफरेंस होता है, हमेशा ही डिफरेंस होता है। लेकिन कवि जब कविता लिखता है तो वो इस इंटेलेक्ट और इंस्टिंक्ट की जो डाइकोटमी है, उसका जो द्वंद्व है, उसे खत्म कर देता है। और कवि की कविता में उसकी बौद्धिकता जो है, वो जो इंस्टिंक्टिव रियलिटी है उसमें से गुजर कर पैदा होती है। और श्री अरविंद जी ने भी जो फ्यूचर पोइट्री है उसमें उन्होंने यही कहा है कि आने वाली कविता जो है उसमें इमोशनल सेल्फ और इंटेलेक्चुअल सेल्फ की जो यूनिटी जो है वो बनानी जो है वो जरूरी रहेगी। एक बात सर बस लास्ट में, कि जो भविष्य की कविता में पंजाबी के संदर्भ में आखिरी बात करना चाहता हूं, कि जो हमारी थोड़ी अतीत की कविता है उसमें कभी कभी हमारी कविता किसी एक एब्सोल्यूट ट्रूथ के पक्ष में खड़ी नजर आती है। वो एक निरपेक्ष सच को दूसरी वॉइसेस हैं उनके ऊपर डोमिनेट कराती नजर आती है। जैसे इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूं, जैसे चात्रिक जी की एक कविता है मेले विच जट। लेकिन जो आने वाला समय है ये मल्टीपल वॉइसेस का युग है, इसलिए इसमें कविता किसी एक निरपेक्ष सच पर स्टैंड नहीं कर पाएगी, और वो करेगी तो वो उसका हाईली क्रिटिकल एनालिसिस सामने आएगा, उस कविता को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी आने वाले समय में। इसीलिए अब देखिए, पहले ऐसी कविताओं का ईडियम हमें मिलता है जिसमें वुमन की वॉइस नहीं है, जिसमें दलित नहीं है, लेकिन वो कविता उस समय एक्सेप्ट हुई, पॉपुलर हुई और चली वो कविता। लेकिन आज के समय में वो कविता अब क्वेश्चन के अधीन है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय की कविता में किसी एक निरपेक्ष सच की तानाशाही नहीं रहेगी,
उसमें मल्टीपल वॉइसेस जो हैं वो अपना स्पेस लेंगी, और ये जो मल्टीपल ट्रूथ्स हैं इनका एक रिलेटिव सेलिब्रेशन जो है आने वाली कविता में हमें नजर आएगा। और कविता जो है वो विविध मुखी जो ट्रूथ है उसका डिस्कोर्स जो है आने वाले समय में पेश करेगी। हमारे एक कवि हैं जसवंत जफर जी, उनकी एक दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने कहा था कि जो अदर का ट्रूथ होता है वो भी वैसा ही रेलेवेंट होता है जो हमारा सच होता है। उन्होंने कहा कि जो दूजा पासा होता है वो असल में दूसरा होता है, वो उल्टा पासा नहीं होता। दूजा पासा दूजा हुंदा, वो पुट्ठा नहीं हुंदा। दूजे ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਐਨ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ किस्म ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ मैं समझता हूं कि संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मनिंदर। सो आज के हमारे आखिरी वक्ता जैसे शफी शौक जी, जो बहुत बड़े शायर और बहुत प्यारे इंसान, शफी शौक। कुछ नहीं है, वही पेपर ने वो बंद रखा, मैंने वो बैग में बंद रखा, इसलिए आप घबराइए मत। तो ये सारी बहस सुन के मैं ये देख रहा था कि किस तरह हम सब यहाँ बोलते हैं जैसे आप हमारे बंदी हैं और वी कैन होल्ड यू हॉस्टेज फॉर एज मच टाइम एज वी लाइक। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। I am the last speaker of this session, but my word should not be taken as the last word. मैं ये कह रहा हूँ कि सारे माहौल के अगेंस्ट एक बहुत ही पेसिमिस्टिक नोट, that poetry has no future. Poetry has no future. मगर ये मत समझिए कि पोइट्री नहीं लिखी जाएगी। देवल साहब मुझे मारेंगे, ये क्या कहा? पोइट्री लिखी जाएगी, लेकिन only that kind of poetry has a future which deals with the present. जो प्रेजेंट के साथ बिल्कुल कटी हो, हमारी फिल्मी शायरी की तरह, हमारी गज़लिया शायरी की तरह, वो कौन सी शायरी हुई? पोइट्री के बारे में बहुत सारी थेरीज हैं, राइट फ्रॉम द ग्रीक्स टू मॉडर्न डे, लेकिन उनका एक ही सब का क्रक्स जो है, the only truth about poetry is Aristotle's, that poetry, or tragedy, is an imitation of action. Imitation of action. उससे कोई आज तक नेगेट नहीं कर पाया that poetry is an imitation of action. वरना ऐसा हो जाता है कि जिस तरह गज़लों में शोखियों में घुला जाए थोड़ी सी शराब और उसमें मिलाई दी जाए, वैसी पोइट्री कौन नहीं लिखेगा। और ये लाखों करोड़ों गाने जो लिखे जा रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नहीं है, बल्कि रिदम की वजह से। म्यूजिशियन रिदम देता है और वो बोल चढ़ा जाए। वही बात हमारे जो मॉडर्निस्टिक पोइट्स हैं, थोड़ी सी जला दो तशद्दुद, थोड़ी सी बात कहो धर्म की, थोड़ी सी बात करो प्यार मोहब्बत की, तो बन गई कविता। ये कोई कविता नहीं है, इट इज़ नॉट लास्टिंग। अगर हम सोफों से आज के कवियों तक ले लें, billions of poets in different languages, billions of poets have written so far, but कितने सारे लोगों को हमने पढ़ा? मेरे ख्याल से 1 डज़न से ज़्यादा नहीं होंगे। और उनको भी कहाँ तक पढ़ा, कितना पढ़ा? बिलियंस ऑफ पोइट्स में से 10-12 लोगों को पढ़ा, मजबूरी सिलेबस की वजह से, क्या वरना कौन पढ़ता है? हाँ, लॉ बुक्स की तरह वी कीप बिग टोम्स ऑफ पोइट्री इन आवर लाइब्रेरीज एज ए शो पीस, और दहेज में भी देंगे बेटियों को कि ये लाइब्रेरी ऑफ पोइट्री हो गई तुम्हारी, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं। वो कहाँ ज़माना गया जब शोलोखोव पढ़ा जाता था, प्राउस्ट पढ़ा जाता है, रिमेम्बरेंस ऑफ द थिंग्स पास्ट, इतना वॉल्यूमनस बुक पढ़ा जाता था। अब कोई नहीं पढ़ने वाला है। लेकिन
मैं ये कह रहा हूँ, पोइट्री हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर only when all of us learn to write about the present situation, what we are, what people around us are, what the things around us are, तभी मैं ये गारंटी देता हूँ कि शायरी होगी। मेरे ख्याल में प्रश्न तो कोई नहीं है। तो बस हम इस सत्र को का अब इति पढ़ते हैं और 2 बार कहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि मैं सहमत हूँ कि AI कभी कविता नहीं लिख सकती, क्योंकि AI को कोई दुख नहीं है, वो उसको कोई परेशानी नहीं है, कविता दुख से ही आती है। AI इतना करती है कि मैंने कोई चीज़, जैसे पहले मैं ग्रंथ बोलता था कि मुझे एक दिन भूल गया कि भी 5 द्वाब कौन से हैं, मैंने फटाफट उसे 5 द्वाब का मुझे नक्शा दे दिया। सो एक वो ऐसा काम कर सकते, लेकिन पोइट्री तो वही लिखेगा कि जिसके दिल में दर्द होगा, दुख होगा। बाकी दूसरा है कि हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है, महफिल लगती रहें, तो वर्चुअल आंगन से हम बाहर ही रहें ज़्यादा, सो असली बेड़े में मिलते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक शेर है, उर्दू का शेर है किसी का, कि जब बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, कोई कह नहीं सकता, तो उर्दू के उस पोएट ने एक बात कही, रात को मुशायरा हो रहा था, उसने कमेंट भी किया और उसको कोई पकड़ भी नहीं सका। उसने कहा, मैं यहाँ रात को हूँ रात समझने वाला, मैं यहाँ रात को हूँ रात समझने वाला, है कोई मेरी यहाँ बात समझने वाला। सो दिस इज पोइट्री। और हम अपने सभी बुद्धिजीवियों का जो मंच पर हमारे साथ आज उपस्थित हैं उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आप सभी का कि आपने इस सत्र में हिस्सा लिया और बहुत चाव से हमारे वक्ताओं को सुना। साहित्य अकादमी की ओर से ये दूसरे दिन का जो कार्यक्रम है समाप्त होता है। Tomorrow we will begin our sessions in this hall again at 10 a.m. Thank you.